Okay, screen is not visible. Okay, let me just confirm. Okay, so this is the first time I'm using this Loom, so maybe okay. So I'm going to write something on the screen. You have to tell me if you are able to see. Okay, can see now. Good, good, good. So I have opened this OneNote software, and you can see recursion is written on it. Okay, backtracking we will maybe keep another session. So yes, I am speaking, right? So some other students are able. Okay. So agenda for today is, let me. Okay, so we will solve recursion problems. We will revisit the idea of recursion in using one easy problem. So we will solve one easy question, and we will solve two medium questions. And these type of questions can be asked in interviews as well. And we will be solving one hard problem, and this problem I'm taking from Spots. Okay, and here also one problem is from Spots. Okay, so this is what we are going to do, right? So can you provide a list of problems through which I can develop recursive thinking step by step? So, okay. So list of problems, I think we have given you problems in the course. First, you have to solve those problems, then you can solve some more advanced questions, right? Okay, so let me begin. I think, so webinar, you can expect somewhere around 1 hour 30 minutes, somewhere around 90 minutes, okay? So this is the expected time duration for today's webinar. Okay, yeah. So let's begin. Okay, let's not wait. Let's begin. Okay. So the very first question is the easy one. So I'm not going to discuss what is recursion. Recursion, you have already seen a lot of my videos on the course. And in general, you can say it's a way of solving problems. It's a tool that allows you to solve problems in a easier manner, right? So it's a tool that comes with the programming language to solve problems easy way, or you can say it's a technique to solve problems in a easy way. Okay, so the basic idea in any recursion problem is, okay, you have to break the problem into a sub problem. For example, the factorial problem, right? So if you want to find n factorial, you say, okay, we can break this problem into a smaller sub problem. We can say we will compute it like this: n minus 1 factorial into n. So what you do here is you do solve a smaller sub problem, and this problem is solved using recursion. Okay, so this is the whole idea. So you need to find out some kind of recurrence, and using the smaller sub problems, you form a solution for a bigger problem. And similarly, in case of Fibonacci, if you want to find the nth Fibonacci number, you say f of n is nothing but sum of smaller Fibonacci numbers. So you add the n minus 1th Fibonacci along with the n minus second Fibonacci. So in all recursion problems, you will see this kind of a recurrence. Okay.
So we are going to solve with the first problem, that is greedy money change. Okay. So what is this problem? So this greedy money change is nothing but the Indian money change system. For example, you go to the shop and let's say you buy something. Let's say you buy some bananas and apples, and shopkeeper says, okay, give me 128 rupees. Okay. Let's say you want to make a change for 128 rupees. Okay. Okay. So can you tell me how do you make 128 rupees using Indian currency? Okay. And by using minimum number of coins, using Indian currency, by having minimum notes or coins. So yes, Dipanshu, great. So Nihirge has given me a greedy algorithm using the high denomination first. Great, 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 great. All right, all right. Just confirming, audio is there now. So one of the student is saying audio is not coming. So everyone is audible. I'm audible to everyone. Great. All right, good. So you want to make 128 rupees. Now we can solve this problem greedily, and we can also use recursion. Okay. So recursion is optional. And all problems that you can solve using recursion can also be solved using loops, but recursion makes the problem code easier. Okay. So recursion code is always easier than the loops code. So what do you need to do? Yes, DP we can also use, but for this problem, if you have two solutions, if you have one using DP and one using greedy, so greedy solutions take less time because you don't have to explore too many choices, and DP solutions take more time because you explore all possible options and then you find out what is the best choice. Okay, so we will not use DP this time. We will avoid using DP, although this is correct, but this will take more time to solve the problem. Okay, and greedy solution will take less time because greedy choice is optimal in this case. Okay, so DP solution is always optimal, but it takes time. So, and the greedy solution that we are going to talk about is optimal for our case. Why? Because if I say, okay, I want to make a change for rupees 128, the first thing in my mind is, okay, I have denominations of 1, 2, 5, 10, 50, 20 also, 100, 200, 500, and 2000. So these are the denominations available in the Indian currency. So to make a choice, so DP says DP is dynamic programming. Okay. Yes, greedy will not work for currency of any other country. That's correct. So that is why I have specifically written in the question, we are talking about Indian money change system. So in this case, we can easily implement a greedy solution using recursion. So what you need to do, you don't need to do a brute force kind of a thing, right? So brute force is you try out all possible cases. If I take rupee 1, then what will happen? If I take rupee 2, then what will happen, right? So when I say we will talk about DP or dynamic programming, we will make lot of calls from 128. If you pick 1 rupee, you will say, okay, I have already taken 1 rupee, so let's find out a way to make rupees 127. Or I have already picked 2 rupees, let's find out a way to make 126 rupees, and so on, right? Similarly, if I pick rupees 100, let's find out a way to make rupees 28, and so on, right? So you can see, if you use recursion this way or you use dynamic programming, this will be a very large tree, and that is why it is going to take more time. Okay. So what we can do, we can say, okay, let me find out the largest currency I have, which is less than equal to 128. So clearly we can use binary search. Okay. So what we will do, binary search to find out lower bound of 128. So what is the lower bound of 128? Clearly it is 100. So you subtract 100, you are left with 28 rupees. Then you find out lower bound of 28 rupees. So that is clearly 20. You are left with 8 rupees. What is the lower bound of 8? It is 5.
Okay, so 5 is, you're left with 3 rupees. The lower bound is 2, and you're left with 1 rupee, and 1 minus 1, it is 0 rupee. Okay, so clearly you need these denominations. Okay. Okay. So why this is greedy? Because at every step we are making a greedy choice. We are making a greedy choice. So the lower bound function that we are going to call is a greedy function. You're not worried about what will happen if I choose 3 rupees or 5 rupees. You're just worried what will be the amount left if I pick the largest note that is less than equal to the current amount. Okay. So this is a greedy choice, and clearly to make a greedy choice you just need to do this. If you have T type of coins in Indian currency, you have to do binary search. That will take log T time, and since T is constant, you can say whatever is the value of n, whatever is the amount, this T is constant. So you can also say this is nothing but O1. So to make a greedy choice, you just need to do a constant work. So how to know whether DP will work for a or greedy will work? So remember, to make sure that greedy will work, you have to make certain test cases and see if greedy is the optimal solution or not. So a lot of times it comes by intuition, but if you're not sure, you can make counter test cases and see if greedy will work or not. So in this case, you cannot make any test case on which this will fail, right? So take any example. Suppose you want to make 44 rupees, right? So again, you will say it will be 20 plus 20 plus 2 plus 2. So again, this comes by greedy. So you can not have a test case where greedy will fail for Indian currency, but for other currencies, it may fail. Okay. So Yashpreet has given me correct answer. We can subtract instead of including in recursion. Yes, we can do something like that. Yes, greedy will not work for any other currency. So now my idea is, what we are trying to say is, if you want to use recursion, you will generally have a problem of size n, and in every recursive call you would be reducing the size of the problem. For in our case, n is, let's say, 128. So I did some work. What work I did? I picked a 100 rupee note and I reduced my problem size to 28. I picked up a note of rupees 20. I reduced my problem size to 8, and so on. So we will keep on doing do something unless we get a problem whose size is very small. Right? For example, if n is 0, we need to stop, because you do not need to do anything if you have a 0 rupee. Okay, so 0 rupee means you don't need to make any change, so you will have to stop. Okay, so what we will do now is we will see how to do lower bound. Okay, so one important concept used in this problem is the concept of lower bound, and I hope you have seen my binary search videos also. So this time we will see how to use C++ STL to find out the lower bound. Okay. What is greedy and DP? Can you repeat? Okay. Can you explain why greedy does not work for any other currency? Good question. Okay. Why it is not possible for any other currency? Okay. So let me answer these questions. Why greedy will fail? Greedy will fail for other currencies. In that case, you have to um, do the DP thing. Okay. So for example, let us say you go to USA, and USA, let's say the currency is like this. You have a $1 note, you have a um, $7 note, and you have a $10 note. Okay, and let's say I will ask, give me a change for $15. So Kushagra, can you tell me how do you make a change? So is greedy algorithm same as recursion? So first of all, greedy is an algorithm, recursion is not an algorithm, right? So greedy is a uh, okay, so greedy is an algorithm, and recursion is a way to implement an algorithm in the form of a code, right? So okay, so let me just clarify.
So any recursion problem can have the greedy component, it can have a divide and conquer component, it can have a DP component. Okay, so DP problems use recursion, because if you talk about top down DP, it's nothing but recursion with memoization. If you talk about divide and conquer algorithms, those are also recursion, right? So okay, one more category is brute force. So brute force means you have to generate all possible uh, type of choices, right? So these are four major categories of algorithms, right? So brute force, greedy, divide and conquer, and dynamic programming. So those who are beginners in the course, they will see these categories later on. But if we talk about algorithms, so these are more four major types of categories in which algorithms are broadly divided. Okay, so all of these algorithms can be implemented using recursion, okay, for many problems. Okay, so do not confuse recursion with this, because I'm saying this is a greedy algorithm which can be implemented either using recursion or it can be implemented using loops. That's what I'm saying. Yes, so Yashpreet has given me correct answer. Now, if in this case, what will happen? If you say, okay, I will use a greedy strategy, you will pick the largest node that is $10, and now you are left with $5. So how do you make $5? You will add $1 plus $1 plus $1 five times, and clearly this is not the optimal solution. So optimal solution would mean by using minimum coins. So minimum coins would be $7 plus $7 plus $1. So in such a case, you have to try out all possible choices. So you will say, okay, from $15, if I pick $1 coin, I can end up at $14. If I pick $7 coin, I can create a sub problem where I have $8 left, and I can create a sub problem where I have 15 minus 10 $5 left. So again, these would be sub problems, these would be smaller sub problems. So this is also a recursive breakdown. So in the both the cases, in both greedy and DP, we do have a recursive breakdown, but the DP solution will look for all choices. Here you can see we are looking for all choices, and this gives me the correct solution always. This is always correct, but it may be time consuming. Okay. So for the original problem that we are discussing, we are only worried about the Indian currency. So in this case, if you want to save time, you can implement a greedy solution also. Okay. So let's start by why it will not fail in the case of Indian money system. Okay. Can you please repeat the recursion breakdown? Okay. Okay, let me just tell you. So for greedy, what we will do, let's say the problem is f of n, we will just make one call. Okay. So from f of n, we will make a call on f of n minus largest node, which is less than equal to n. Okay. This is one call, a single call at every step. Single call at every step. In case of DP, or if you want to do some kind of a brute force, let's say if you want to make a change for n rupees, so f of n will be nothing but you will be making three calls in this case, 1, 2, and 3. So you will be making multiple calls. Okay, and let's say you have t type of coins. For ith coin, I can say this is of the type coins I. So you would be making calls on n minus coins of 0, n minus coins of 1, and then you will be finding out which one is the minimum. Okay, so this will be nothing but minimum of f of n minus I, sorry, n minus coins of I for I going from 0 to t, something like this. So is this recurrence clear? So now tell me, which recurrence will be fast? 1 or 2? Greedy one or the DP one? So clearly, greedy one will be fast. Yes, great. Okay, but the advantage of DP one is it is true for all currencies, true for all, but slow. Okay,
And here we have true for some, but it is fast. Okay. So we have to see if our problems lies in this sum category. Only then we can solve this problem using greedy. Otherwise, we have to go with the deep. So Utkar says, got it. Great. Any non-example for greedy? So I have already how greedy can be false for some problems. So I have already given this example, guys. So for example, this example, right? So if you apply greedy here, you will end up having 6 coins. You will say, okay, for $15, I will pick $10, and then I will pick 5 coins of $1. That will make 6 coins. Instead, you can do pick 7, 7, and 1. So this is non-greedy and it is optimal. Non-greedy is optimal in this case. So how do we know whether to apply greedy or DP? So for greedy, if you want to see greedy will fail, make some test cases. Okay, make some cases and see. Like I made this case, I came to know this is not optimal. Make some cases and see. So greedy problems are hard to prove mathematically, right? So remember, this is the easiest option, right? What is the difference between recursion and iteration? Okay. So recursion for problems where iteration is hard, right? In sub problems, writing the iterative solution is hard, right? So although both of do the same work, but iterative solution can be hard. So in that case, in order to simplify our logic, we can use recursion. For example, if you have not gone through, look at this problem of Tower of Hanoi, right? So if we get time, we will discuss. But if you write an iterative solution for Tower of Hanoi, it will be very hard, right? But using recursion, it is just 3 lines of code. Okay, so let's do one thing. Let's do one thing. Let us implement the greedy solution first. Let us implement the greedy solution. Okay. So let me just talk about the lower bound. Okay, we will be saying, okay, if I give you 128 rupees, you have coins 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, and so on. So can you tell me what is the lower bound of 128? Okay, Shubham, I will take one example. Okay, lower bound of 128 is 100. Correct. Now let us write a code which helps us to find the lower bound. So I'm just going to open up Sublime Text. So we will be using STL in today's class. Okay. Where give more time on intermediate and hard problems. Okay. I will come to it very soon, right? So let me just quickly go through this one, and then we will come to intermediate and hard problems. Okay. So I have this Indian currency, and let me include one file hash include algorithm, and let us do one thing now. Let us make a function called void. Let's say this is the function, and here we are getting the money. And what we will do, we will not count. We will also see how it is represented, right? So let me do one thing now. So when you're doing recursion, you need to think of two cases. One is a base case, and one is a recursive case. Can you tell me what is the smallest case for which we will make our base case? So what is the smallest value of money? So if money is 0, we don't know, we don't need to do anything. That is the base case, right? For any other amount of money, we have to find the largest node, not the lower bound. So for that,
we will be using a lower bound function. So I can say okay, header file is already there. So this lower bound function I'm using is from the algorithm header file that is available with C++ standard template library. So I call this and I give this array Indian currency plus n, where n is the number of possible denominations I have. So I will be searching for lower bound in this entire array. And then we have to give money, and okay, let's do one thing. Okay, and let's say this minus Indian array. Okay. Indian currency. So guys, if you're not aware about this lower bound function, this function accepts a array, the starting point of the array, the ending index of the array, and one position after that. So it searches in this range, start to end. So start is included, end is excluded. So I'm giving array plus n, and the money is the amount for which I want to find the lower bound. So this is 128, and it returns an iterator. It returns a pointer to this particular position, and this Indian currency is a pointer to the starting index. So this I'm just doing something like this. So minus Indian currency. So this is the start of the array. Okay. So if you subtract two pointers, you will get the number of boxes in between. Okay. So you will get the number of boxes which is same as the index. So since I want to find out the index, I'm just doing this subtraction here. Okay. So let us see what lower bound gives us. Okay, let me just show you what lower bound is going to do. And let me do see out Indian currency of largest node, or let's say node index, largest index. We will make some comparators now. I will show you what problems we have here. Let me do say, let's say n is a number or money is a number, and I do see in money, and then I do see out or count nodes function, and here I give money. So suppose I give the money as 128, I get the lower bound as 200. So clearly that is the problem here. And if I give the money as 100, then I'm getting the lower bound as 100. So can you tell me what is the problem here? Why the lower bound is not working correctly as expected, right? So this is the way how the predefined lower bound function works. So it will find out a value that is not less than equal to money. Okay, so if you want to see the documentation of it, I will show you. So C++ lower bound. So it returns a pointer to the first element in the range, which does not compare less than value. Or let's see on the c++.com website. Okay. So it returns an iterator pointing to the first element in the range, first to last. So last is excluded, which does not compare less than value. Okay. So there is unwanted noise coming from the background, not getting the point. Okay. Let me see. So lower bound will return an iterator. So iterator is like a pointer to a particular position for which the given value is which does not compare less than value. So anything which is not less than value. Okay, so it's not less than equal to. So for example, if I give you an example of 128, okay. So lower bound will return me an iterator to this because 200 is not less than 128. Okay.
And if I give you the value of n as 100, lower bound will give me 100 because 100 is not less than 100. Okay. So I hope this is clear. Yes, it will return bigger if not found. But in our case, we have to return 100 for 128 also. Okay. So what we can do, we can make a comparator. Let's make a comparator function. So this is similar to what you make in sorting. So I can say, okay, uh, return a less than b. So in this case, what we will do is we will pass this comparator to the lower bound function. So I pass compare function, right? And if I build my code now and run it, and let me say I'm giving 200, so I get 500. And if I give 100, then I get 200, which means I'm getting the just next larger value, right? So what I can do to fix this problem now is, at least I'm getting something consistent. So what I can do, I can subtract 1 from this index so that we get the one value which is less. Okay. So we can do this thing in log n time. So this is log of t time, log of t, where t is the type of coins you have. If I give 100 now, I get the 100 as the answer. And if I give 200 as, so I get 200. And if I give 128 now, I get 100. So you can see we have fixed the lower bound function by using a comparator. Okay. So please tell the problem statement, bhaiya. So lower bound is based upon binary search. It is based upon it works only with the sorted arrays, and in this case we have a sorted array of Indian currency, and our goal is to find out the minimum coins needed to make a change for a Indian rupee. Okay, so let us see what we can do now. So we have find out the largest index, right? So what we can say, okay, the currency that we have is now M, and that is the largest Indian currency corresponding to that largest index. And what we can do is, now we want to make a change for remaining currency. So we can say count notes, and here I can do C out M, let's say NDL, and we can make a call on a smaller problem. So smaller problem will be money minus M. So this is actually a recursive call. This is a recursive call. Okay. So why we are entering so many parameters in the lower bound function? So lower bound function takes the start of the array, the ending of the array, the number for which you want to find the lower bound, and how to make the comparison, right? So these are the 4 parameters in the lower bound function. So let me show you now. If I build the code and call this, what I get. So you can see we are getting a change like this: 100, 120, 5, 2, and 1. So this is how easy it is, right? And if I get some other amount, let's say 447, so I will have 200, 200, 20, 25, and 2. Right?
So I just solved for one case, and rest everything is solved using recursion. So if I dry run here now, so if I give you 447 now, so we find a lower bound of 447, which is 200. So we are left with a problem where this is 227. Again, we found the lower bound using recursion. So this is 200. So we are left with 27. Again, it's 20. We are left with 7. It's 5. We are left with 2. It's 2. We are left with 0. So once we reach 0, we stop. And this is what goes in the recursion call stack. Okay. Okay. So we are calling function two times. We are not calling function two times. It is repeatedly getting called inside recursion, right? So we are not calling two times. It is a recursive call. Okay. Why there is a compare function? Okay. So compare function says if you find something like this, let's say you are finding a lower bound of 128. So can I say something like this? While a is less than equal to b, and let's say j is 0, you do j plus plus. Okay, something like this. So maybe you are incrementing j until this point. This is something lower bound is doing, but it is not using a linear search, but it is using a binary search, something like this. Okay, so you find a number which is just greater or equal to the current number. Okay, so you keep on incrementing your j while it is less than or equal to the current number. Okay, what is a and b, right? So for that you have to watch my comparator videos, right? So if you have not seen the sorting section and the compare functions, please see that. Only then you will understand. Okay, so this is a comparator concept, so you have to see this in the sorting section in the online course. How we will be getting number of times function called for optimal solution. Okay, I know comparator why it is used here. So because the actual lower bound that is written in C++ was not giving us the correct solution that we wanted. We wanted to modify the comparison that is written in C++. That comparison is written something like this, but we also want to handle the equality case. So that is why I have overwritten the compare function. Why we are subtracting Indian currency? To make it smaller. ठीक है, कुशाग, when you go to shop you ask, okay, give me milk, so he give you smaller denominations, so he subtracts in his mind how much you have to pay. Okay, so I think this is clear. Let's move on to the next problem now. Okay, so the second problem, since people are having exam, so second question I'm going to take is a harder one. I'm going to discuss a problem from Spodge, and this problem is subsums. Okay, and this is again a very good question because it also involves binary search. Okay, and then it involves brute force. So there are two ways to do the brute force. Either you can use recursion here, or you can do bit masking. Okay, so I will follow the second one because bit masking is slightly more efficient. Okay, so you can also do it using recursion, but I am going to do it using binary search plus bit masking. Okay, so let me show you what this question is. Intermediate problems we will do, don't worry. So first we will do this question, then we will come to the intermediate problems. Okay, don't worry, I will share this code. Okay,
So let me put this code on ID and I will share the links with you. So please read this question now. Given a sequence of n numbers 1 to n, so you are given an array and the maximum size of the array can be 34. So you can have maximum elements in the array as 34. So you have a sequence of numbers. You want to find out how many subsets of S, including the empty one, have a sum between A and B, where A and B lie in this range. Okay, inclusive. सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन है, एरे के ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनका सम ए और बी के बीच में होगा और ए और बी इज आल्सो गिवन टू यू. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एरे लाइक दिस 0 1 and 2 and I can say a is, let's say, 1, b is 2. So how many subset of the array will have sum which lies in the range 1 to 2? So we need to find out वो सब arrays जिनका sum 1 है. So in that case we have only one array and between 1 to 2, so those arrays whose sum is 2, so that array can be 2, it can be 2 comma 0, it can be 1 comma 0 also, right? And you will have 4 such arrays. Are you getting this question now? Okay, so first of all let me सबसे पहले give me this information. How do you find subsets? Okay, if I give you three numbers like 1 2 3, how many subsets you can have for this array? How many subsets you can have? So yes, everyone is saying 8 subsets because for every number you can have two options. Okay, so 2 into 2 into 2, you can have 8 possible subsets. Very good. Now you have to find out how many subsets have this particular sum. Okay, so if I say, if I take 1 and 3, this is a subset. Okay, so 1 and 3 is a subset. 1 is also a subset. 1 and 2 and 3 is also a subset. 2 and 3 is also a subset. So you have 8 possible such subsets. Okay, so this subset has a sum 4. This subset has a sum 1. This subset has a sum 3 and 2, 5 and 1, 6. This subset has a sum 5. Now, if I give you two numbers, let's say A and B, okay, let's say A is 4 and I say B is 8. So you have to tell me how many subsets have the sum between 4 to 8. So from these examples, I can see there are three subsets which have a sum between 4 to 8. You can have more also. Okay, so you have to count the number of subsets which have a sum between 4 to 8. This is what we want to do. Okay. Now you may say we can do this in 2 raised to the power n as when 10 is saying. Okay, so what is 2 raised to the power 34? Okay, so what is the order of 2 raised to the power 34? So can you tell me how many comparisons it would be? How many computations it would be? So यशप्रीत बल्ला कह रहे सेगमेंट ट्री या फेनविक ट्री बना सकते हैं. So बिल्कुल ठीक है. Everyone is saying 10 raised to the power 9, greater than 10 raised to the power 9, which is fine. Why? Because 2 raised to the power 10 is 10 power 3, 2 raised to the power 20 is 10 power 6, and 2 raised to the power 30 is 10 power 9. So 2 raised to the power 34 is definitely going to be greater than 10 power 9, and you can not pass this complexity on an online judge. Okay, so this complexity will take greater than 10 seconds to execute because 10 raised to the power 8 takes 1 second in any online judge. So if you do it in more than 10 seconds, you are going to get a TLE error. So clearly we cannot generate all subsets. Yes. So can you think of any other solution now if you cannot generate all possible subsets now? Divide the array. Good hint.
something in that direction. Good going, Parikshit. 0 to 34 binary search. Binary search, Jatin. Okay, how do you apply binary search? By bit masking, branch and bound, go for every number bit. So that we will do. Okay. So bit masking is again brute force. Okay, bit masking and recursion I will use to generate subsets. Sort the array. Sorting से क्या फायदा होगा? What is the benefit of sorting, सालिल? कडेन सेल को कुछ भी कडेन से कैसे होगा भाई? कडेन इज फॉर सब एरेज नॉट सबसेट्स. यस, सनिध्या ने कुछ अच्छा हिंट दिया है. वो कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को. ठीक है, चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं फिर इसको. ठीक है. अरे प्रणब भैया क्या कर रहे हो तुम? अगर मैंने बोला 100 रोटी खाने के लिए 10 लोग चाहिए, तो 1000 रोटी खाने के लिए कितने लोग चाहिए? प्रणब भैया. अरे तुम क्या कर रहे हो? 100 रोटी खाने के लिए लेट से 10 लोग लग रहे हैं, तो 1000 रोटी खाने के लिए कितने लोग लग रहेंगे बनाने के लिए? लेट से 100 लगेंगे ना. तो ऐसी टाइम लिमिट का कॉन्सेप्ट है. अगर 10 पर 8, 10 के साथ 8 जीरोस हैं, 1 सेकंड लग रहा है, तो 10 के साथ 9 जीरोस है, तो कितने सेकंड लगेंगे? 10 लगेंगे. सिंपल सा फंड है. इट्स अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम. क्यूमुलेटिव सम एरे हेल्प इन दिस. क्यूमुलेटिव सम हेल्प नहीं करेगा बिकॉज आप सबसेट्स की बात कर रहे हो. क्यूमुलेटिव वहां लगता है जहां पे आपके पास सब एरे टाइप का कुछ हो कि ए से बी, मतलब ऐसा कुछ करना है कि इतने पार्ट का सम निकालना है. ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम छोड़ छोड़ के भी सम ले सकते हैं, तो क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे नहीं लगेगा. चलो देखते हैं फिर कैसे इसको अप्रोच करना है. ठीक है. गॉट इट, प्रणव सेज. ठीक है, गुड. तो देखो, ये बहुत ही एक मतलब ट्रिकी प्रॉब्लम है. ठीक है. एंड ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने पहले कभी किया हो, इसलिए आज करवा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग ध्यान ध्यान में रखो इसको. तो क्या करना है, देखो, n इक्वल टू 34 एक बहुत बड़ा हिंट है, मतलब यहाँ से थोड़ा आइडिया लग रहा है. एंड ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपका n लेस देन इक्वल टू 20 होता है, वहां पे हमें पता होता है कि 2 की पावर n में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बिकॉज 2 की पावर 20 जो होगा दैट इज समवेयर अराउंड 10 रेज़ टू द पावर 6. अगर इस कॉम्प्लेक्सिटी में हम प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, 34 को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. ठीक है. तो अगर आपको एक एरे गिवन है जो कि 34 लेंथ का है, उसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. तो पहला एरे मैंने बोल दिया ए और दूसरा एरे मैंने बोल दिया बी. ठीक है. इस एरे में कुछ नंबर्स होंगे 3 4 7 1 समथिंग समथिंग. सिमिलरली इस एरे में भी कुछ नंबर्स होंगे. ठीक है. एंड इसका साइज जो होगा, इसका लेस देन इक्वल टू 17 होगा, इसका साइज भी लेस देन इक्वल टू 17 होगा. तो मैं क्या करूंगा, इस एरे के सबसेट्स बना लूंगा 2 रेज़ टू द पावर 17 सबसेट्स. इस एरे के भी सबसेट्स बना लूंगा 2 रेज़ टू द पावर 17 सबसेट्स. एंड ये तुम्हें पता है कि लेस देन इक्वल टू 10 पावर 6 होंगे, ये भी लेस देन इक्वल टू 10 पावर 6 होंगे. ठीक है. अब उन सारे सबसेट्स का मैं सम भी निकाल लूंगा. सम ऑफ ईच पॉसिबल सबसेट. ठीक है. तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को 10 रेज़ टू द पावर 6 वो मिल जाएंगे. क्या मिल जाएंगे? 10 रेज़ टू द पावर 6 सम्स मिल जाएंगे. ठीक है. एंड सिमिलरली बी वाले एरे से भी मेरे को 10 रेज़ टू द पावर 6 सम्स मिल जाएंगे. तो मान लो ए वाले एरे से जो सबसेट्स बने और उनका जो सम है वो कुछ ऐसा आ गया, लेट से 3 5 7 आ गया एंड सो ऑन. बी वाले एरे से जो सबसेट बने उनका कुछ सम आ गया, लेट से 10 12 15 18 ऐसा कुछ आ गया. और मान लो मैंने इसको सॉर्ट कर लिया. अब सॉर्ट करने में टाइम कितना लगेगा? 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 6 विच इज डुएबल. एंड लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी में तो हम सॉर्ट कर ही सकते हैं. ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 6 विच इज 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. सो ये लेस देन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 होगा. ठीक है. क्या ये बात समझ आ रही है?
क्या अभी तक जो मैंने किया वो समझ आया है मैंने क्या किया है? सो आई एम मेकिंग डिवाइडिंग दिस एरे इनटू टू सबसेट्स और दोनों के मैंने सम निकाल लिए एंड 10⁻6 मैक्सिमम सम्स इसमें होंगे, 10⁻ मैक्सिमम सम्स इसमें होंगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपको वो सारे एरेस निकालने हैं जिनका सम लेट से 13 और 15 के बीच में है, लेट से 13 और 18 के बीच में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि वो एरेस बताओ जिनका सम 13 और 18 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ए में से वो एरे पकड़ो। आपने बोला ठीक है, एक मेरे को सबसेट पता है ए में, वो सबसेट है जिसका सम 3 आ रहा है, और क्योंकि मेरे को पूरे एरे में से सबसेट बनाना है, इसका मतलब क्या है, ए वाले सबसेट के जो कुछ एलिमेंट्स आपने पिक किए हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको बी वाले एरे में से भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कोई मेरे को ये बता सकते हैं बी में से मिनिमम सम मैं कितना उठाऊं और मैक्सिमम सम कितना उठाऊं ताकि टोटल जो सबसेट का सम है वो 13 से 18 के बीच में हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 and 15, 10 and 15, 10 and 15, बिल्कुल ठीक है। Everyone is correct. So it means I want to find out those arrays जिनका सम एटलीस्ट 10 हो। ठीक है, और आई वॉन्ट दोज एरेज जिनका सम मैक्सिमम 15 हो, ताकि उनको मैं इस ए वाले एरे के साथ कंबाइन कर पाऊँ। ठीक है, सो अगर मैं 10 का लोअर बाउंड निकाल लूँ, लेट से इस इंडेक्स को मैं आई बोल दूँ, और 15 का मैं अपर बाउंड निकाल लूँ और इस इंडेक्स को मैं जे बोल दूँ, तो इसके बीच में भी जितने एरेज आ रहे हैं ए से बी के बीच में, लेट से 12 आ रहे, सो 12+3 कितना होता है 15, वो इस रेंज के अंदर लाई करेगा। तो आई से लेके जे तक जितने भी एरेज आ रहे हैं उनका जो नंबर ऑफ एरेज अगर मैं ये निकाल लूँ, तो ये मेरे को वो एरेज मिल जाएंगे जो ए में 3 वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, मिनिमम इज 13-3 एंड मैक्सिमम इज 18-3, बिल्कुल ठीक है। सो इफ यू पिक 3, यू कैन से मिनिमम एलिमेंट इज नथिंग बट a-3 एंड द मैक्सिमम एलिमेंट दैट यू हैव टू फाइंड इन b इज b-3। तो ये आपको निकाल, इसका फिर लोअर बाउंड निकालोगे आप तो आपको i मिलेगा, इसका आप अपर बाउंड निकालोगे तो आपको j मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है सर, वाई वी डिवाइडेड द एरे इनटू टू पार्ट्स, कुशागर बिकॉज अगर तुम पूरे एरे के सबसेट्स निकालोगे दैट इज 2⁻34, एंड अगर इतना कंप्यूटेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻9 एंड इट विल टेक एटलीस्ट 10 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट द कोड, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी सबसेट हैं। अच्छा, इसको एक्स और वाई बोल देते हैं यार। ठीक है, मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी लिया था, कैपिटल बी क्वेश्चन में गिवन है। लेट से एक्स में वो सारे सबसेट हैं जो ए एरे से बने हैं, बी में वो सारे सबसेट हैं जो बी, वाई में वो सारे एरे हैं जो एरे के सेकंड पार्ट से बने हैं। अब ठीक है, हाउ टू असाइन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। अजय शर्मा, वाई आर नॉट डूइंग बिट एक्सट्रैक्शन बिटवीन 0 to 34। अजय भैया, अगर आपने 34 बिट का वो ले लिया और उसके साथ तुमने बिट मास्किंग स्टार्ट कर दी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी 2⁻34 होगी, दैट विल गिव यू टाइम लिमिट एक्सीडेड इन दिस क्वेश्चन। सर, कैन वी टेक टू सम्स इन एरे ए, व्हाई डू यू नीड टू सम्स? ठीक है, तो अब ये देखो यार कि एक्स एरे में वो सारे आपको सब एरे स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सम चाहिए। अगर आपने बोला 3 और 7 एक सब एरे है तो आप इसका सिर्फ सम स्टोर कर लो 10। 3, 1, 8 अगर एक सब एरे है तो आप इसका सम स्टोर कर लो 8 और 1 9 और 3 12, बस सिर्फ आपको ये चाहिए। ठीक है, अब सॉर्टिंग मैंने यहाँ पे क्यों की, क्योंकि मेरे को बाइनरी सर्च लगाना है। अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? फाइनल आंसर ऐसे निकलेगा कि आप एरे एक्स के हर एक एलिमेंट पे जाओ, आपने बोला ठीक है अगर मैं 3 लेता हूं तो मेरे पास ऐसे 3 सब एरेज हैं, अगर मैं 5 लेता हूं तो लोअर बाउंड क्या होगी और अपर बाउंड क्या होगी, बताओ मेरे को। ठीक है, अगर आपने बोला इस एरे से मेरे को 5 सम मिल रहा है और मेरा मिनिमम सम 13 होना चाहिए, तो इसमें से बी एरे में से मिनिमम सम मेरे को 8 उठाना पड़ेगा, और मैंने बोला मैक्सिमम सम 18 होना चाहिए, तो इस बी एरे में से मैक्सिमम मेरे को 13 उठाना पड़ेगा। 8 और 13 के बीच में जितने
सब एरेज के सम होंगे उनको मैं काउंट कर लूंगा बाय डूइंग आई माइनस जे काइंड ऑफ अ थिंग, और उसको मैं अपने फाइनल आंसर में ऐड करूंगा। तो हमने 5 के लिए निकाला, सिमिलरली 7 के लिए निकालोगे। सिमिलरली मैक्सिमम एलिमेंट्स एक्स एरे के अंदर 10⁻6 हो सकते हैं, और उन सब के लिए आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो फाइनली आपका जो काम हो रहा होगा 10⁻6 इंटू लॉग ऑफ 10⁻6। ये एक्स एरे पे आइटरेट करने का टाइम है, ये बी एरे पे आइटरेट नहीं करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे, उसका टाइम है। ठीक है, सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन लॉग एन टाइप, एंड ये आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? लक्ष्य कह रहा है 3 और मोर पार्ट्स में कर सकते हैं, कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी। ठीक है यार, एक बार मैं इसका कोड लिख देता हूँ, तो जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुलदीप क्या डाउट है तुम्हारा? भैया जो ए एंड बी है उसमें सबसेट्स हैं या एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल एरे? यार ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ओके, सो ए एंड बी आर टू नंबर्स विच आर गिवन की कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखाऊं जो इन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इस एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। इन्होंने बोला है एरे में 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, और 3 नंबर्स कौन से होंगे? 1 -2 और 3, बिल्कुल ठीक है। अब उसने बोला कि कितने सब एरेज हैं जिनका सम -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ए और बी इसने कुछ भी दे दिया, कुछ भी हो सकता है। ए इज -1, बी इज 2। ठीक है, सो -1 का मतलब, अब तुम अगर ये वाला सब एरे ले लो, अगर किसी को भी नहीं लेते, सॉरी सबसेट ले लो, सब एरे नहीं, सबसेट, सबसेट, ठीक है। व्हाट इफ n इज लार्जर देन 100? तो इस केस में हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम लेटर बनाएगा ही नहीं जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। It might be possible we don't choose any from x and choose any subset from y. ध्रुव का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऐसे केस में जब आप सबसेट्स बना रहे हो, यू ऑलवेज गेट अ सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो वो सबसेट आपका x में भी होगा, वो सबसेट आपका y में भी होगा, एंड दैट इज द जीरो सबसेट। ध्रुव, इज इट क्लियर? एंड जब आप जीरो के लिए केस बनाओगे तो y में से कुछ ना कुछ आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। सो इस एग्जांपल के लिए यू हैव 5 ऑप्शंस। अगर आप किसी को भी नहीं लेते, द एम्प्टी सबसेट पहला ऑप्शन। अगर आप सिर्फ 1 लेते हो तो वो इसके अंदर लाई करता है, दैट इज द सेकंड सबसेट। अगर आप 1 और -2 लेते हो तो इसका सम कितना आ रहा है? -1, वो भी इसमें लाई कर रहा है, दैट इज द थर्ड सबसेट। अगर आप -2 और 3 को ले लेते हो, इन दोनों को ले लेते हो, तो सम कितना आ रहा है? 1, दैट इज द फोर्थ सबसेट। अगर आप तीनों को ही ले लेते हो, 1 -2 और 3, so that sum is 2, that is the fifth option because it is less than equal to b. So this is the question। ठीक है, तो मैंने एक टेस्ट केस आपको और क्लियर कर दिया है। ठीक है, प्रांशु कह रहे रिकैप, सो हाउ मेनी पीपल आर आस्किंग फॉर रिकैप? क्विकली बता दो मेरे को, तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोड लिख लेते हैं, आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स डू कोड फर्स्ट, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ओके, सो कोड में आपको थोड़ा थोड़ा बिट मास्किंग यूज करूंगा। तो अगर रिसेंटली मैंने बिट मास्किंग के नए लेक्चर्स भी ऐड किए हैं कोर्स में, सो तो वो पहले भी थे बट मैंने फिर से रिकॉर्ड करके ऐड किए हैं। ठीक है, लेट्स डू सबसम्स स्पॉच। ठीक है, सो ठीक है, पहले थोड़ा सा इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि फिर हम कोड लिख लें। ठीक है, तो मैं पढ़ लिया है।
अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो we will need some header files, बाइनरी सर्च करेंगे तो ये हेडर फाइल चाहिए होगी, और प्रॉब्लम के लिए मैं चीज़ों को लॉन्ग लॉन्ग में रख रहा हूँ। हो सकता है इंटीजर में जब तुम सम लो तो ओवरफ्लो हो जाए, तो इसलिए मैं एक मैक्रो डिफाइन कर रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग के लिए, ठीक है। सो लेट्स मेक अ फंक्शन जिसका काम है एक सबसेट्स निकालना, ठीक है। सो आई एम सेइंग देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सबसेट्स जो कि रिटर्न क्या करेगा, एक वेक्टर रिटर्न करेगा और इनपुट भी एक वेक्टर लेगा। सो इनपुट वेक्टर इज अ एरे, एरे होगा, और लेट्स से इनपुट वेक्टर इज फ्रॉम द क्वेश्चन, आउटपुट इज अ वेक्टर ऑफ सम ऑफ पॉसिबल सबसेट सम्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कॉम्पिटिटिव में ऐड कर रहे हैं बिट मास्किंग के, यस आई हैव एडेड द लेक्चर्स, राइट। वीडियो इज नॉट visible, video should be visible, okay। So let's do one thing, let's create a vector that will store the answers for the sums, and okay, so guys मैं सबसे पहले एक हेल्पर फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका काम क्या है, अगर मैंने आपको एरे दे दिया 1 2 3, इसका काम है कि इसके सारे सबसेट्स बनाना, जैसे कि द नल सबसेट, और उन सबके सम्स को स्टोर करना, जैसे एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट ये हो गया, ऐसे ही 2 3 एक सबसेट हो गया, ऐसे 1 2 3 एक सबसेट हो गया। इन सबके सम्स क्या होंगे, इसका 0, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 एंड सो ऑन, ओके। सो ऐसे सारे सम्स को एक वेक्टर में स्टोर करना, वेक्टर ऑफ सम्स। सो दिस वेक्टर इज नथिंग बट माय आंसर, एंड दिस इज माय इनपुट वेक्टर। सो क्या ये चीज क्लियर है? Yes, we will take 2 more questions. Yes, this webinar is for interview prep also. Okay. ठीक है, तो let's do one thing now. Let's find the size of our input array that is given by v dot size, and एक काम करते हैं, for int I equals to 0, I less than n, I less than 1 left shift n, I plus plus. So यहाँ पे I am making use of bit masking. Okay? बिट मास्किंग में सबसेट फाइंडिंग मैंने बता रखा है वीडियो में, तो उसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक क्या क्या कर रहे हैं, एक क्विक रिकैप। अगर मेरे को सेट मेरे पास ये है और इसके सबसेट्स निकालने हैं, तो मैं 0 से लेके 7 तक, विच इज 2 raised to the power 3 minus 1, 7 तक का लूप लगाऊंगा और सबके बिट्स निकालूंगा। सो 0 के बिट्स 0 0 0, 1 के बिट 0 0 1, 2 के बिट 0 1 0, ऐसे 3 के बिट, 5 के बिट एंड सो ऑन, ठीक है। एंड जहां जहां पे सेट बिट होगा उसको उठा लूंगा। तो इसके लिए अगर सबसेट बनाना होगा तो BC बन जाएगा, इसके लिए सबसेट बनाना होगा तो C बन जाएगा, इसके लिए बनाना होगा तो ABC बन जाएगा, ठीक है। सो 1 लेफ्ट शिफ्ट n इज नथिंग बट 2 raised to the power n। तो मैं सबके सबसेट्स बना रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। सो 0 से लेके 17, 2 raised to the power n, ओके। सो इन दिस केस n विल बी लेस देन इक्वल टू 17, उसको मैं मेन से हैंडल कर लूंगा, मेन से मैं एरे को डिवाइड करके भेजूंगा। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 10 पर 6। सेट बिट के लिए सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सो यस, सेट बिट के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, जे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो डिनोट कर रहा है कि हमने करंट एरे के इंडेक्स को इंक्लूड किया या नहीं लिया, मतलब जे डिनोट्स द करंट इंडेक्स ऑफ द एरे जिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड एक सम ले लेते हैं विच इज 0। तो सम को मैं लॉन्ग लॉन्ग ले रहा हूँ बिकॉज बड़े नंबर्स हैं और बहुत सारे नंबर्स का सम अगर करें तो हो सकता है इंटीजर का ओवरफ्लो हो जाए, तो सेफ्टी के लिए मैंने ले लिया है, हो सकता है इंट से भी सॉल्व हो जाए। तो क्या करेंगे, फॉर नंबर इक्वल टू आई, एक पर्टिकुलर नंबर पे आए, जब तक वो 0 से बड़ा है उसके बिट्स को निकाल के डिस्कार्ड करते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर उस नंबर का लास्ट बिट 1 है, इफ नंबर इन 1 लास्ट बिट इज 1, तो आई कैन से ठीक है उस एरे के इंडेक्स को अपने सम में ऐड कर लो। तो मैं पूरा एरे स्टोर नहीं कर रहा, सिर्फ उसका इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको सम में ऐड कर रहा हूँ, और J++, ठीक है।
This will give me the sum, answer dot pushback sum, and return answer. So आंसर एक वेक्टर है एंड मैंने उसमें ये चीज कर ली है. क्या यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? ओके, वेक्टर भी ले लेते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर. ठीक है. सम सम हमने यस सम हमें यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए, एल एल सम. ओके, ये चीज हमें लूप के अंदर रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये यहाँ पे होगी. सॉरी, जे प्लस प्लस इधर होगा और यहाँ पे हम पुशबैक सम करेंगे. ठीक है, मैंने सही कर दिया. सर, इज दिस टेक्निक में हाउ वी कैन इंश्योर वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द मेन अरे? सो ठीक है. So this is same as the bit masking code I have covered in the bit masking section. ठीक है. So उसको थोड़ा बहुत मैंने ट्वीक किया, बट मोर और लेस वही कोड है. एंड इफ यू आर हैविंग अ डाउट, मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर देता हूँ कोड को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एरे में ये 3 नंबर्स है 1 2 3. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रनिंग अ लूप फ्रॉम 0 to 7. 0 1 2 3 4 5 6. एंड इंश्योर ऐसे हो रहा है कि जब आप इनके बिट्स के कॉम्बिनेशंस देखते हो, सो दे मेक ऑल पॉसिबल सबसेट्स. ठीक है, एंड सो ऑन, राइट. सो अगर आपने एक नंबर पकड़ लिया, नंबर इक्वल टू आई, फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर इज आपका 5101. तो आपने क्या किया, इसके बिट्स निकाले और उनको राइट शिफ्ट करते गए. सो 5 को अगर राइट शिफ्ट करोगे, पहले ये बिट निकलेगा, इसका मतलब आपने 3 ले लिया सबसेट में. मेरे केस में मैंने उल्टा लिया है, मैंने जे इधर से स्टार्ट किया है. ठीक है, बिट्स ऐसे निकालने और ये इधर से निकाला, इसका मतलब आपने 1 ले लिया है. तो 1 आ गया सम के अंदर. अगली बार आपने निकाला बिट 0, तो आपने सम में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आपने 2 को छोड़ दिया. अगली बार आपने अगला बिट निकाला 1, इसका मतलब आपने 3 ले लिया, तो सम में आपने 1 और 3 ऐड किया विच इज 4. तो मैंने आंसर जो वेक्टर है उसमें सम पुश किया है. सो मेरे पास आंसर में क्या पुश हो जाएगा, 4. ठीक है. तो आंसर का जो वेक्टर हम बना रहे हैं उसमें 4 एक एलिमेंट आ जाएगा. सो 4 इज सम ऑफ वन ऑफ द सबसेट्स. ठीक है. सो इज इट क्लियर नाउ? सम यहाँ पे डिफाइंड है एंड वन नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर गिव्स मी वन सबसेट, बिकॉज उसमें बहुत सारे सेट बिट्स होते हैं. सो वन नंबर गिव्स मी वन सबसेट एंड दैट वन सबसेट गिव्स मी वन सम. ठीक है. सो यहाँ पे हमने सबसेट्स के सम निकालने. अगर आपको लग रहा है कि हमें वेरीफाई करना है, तो वी कैन डू सम वेरिफिकेशन बाय रनिंग इट फॉर अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से vector of LLV, and I can say v dot pushback 1 to 1 2 or 3. V dot pushback 2 and 3. And if I do this thing now, कि अगर मान लो एक छोटे से वेक्टर है, इसके सबसेट्स का सम निकालना है, तो आई कैन से वेक्टर ऑफ LL S that is equal to subsets of for every element, for let's say int x which is there in S, C out x. X is a possible sum. Okay, so this is a warning we can ignore. And here I am using a for each loop, which means for every element x which is there in the subset S. So let us try to run this code now. Dot slash subsets. अभी पूरा नहीं हुआ है बट थोड़ा सा निकाला है. तो यू कैन सी हमारे पास 8 सबसेट्स हैं एंड इन सबसेट्स का सम ये आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6. सो मैक्सिमम सम 6 बन सकता है, मिनिमम 0 बन सकता है, विच मीन्स हमारा कोड अभी तक सही चल रहा है. ठीक है. यस, अजय इज करेक्ट. आई थिंक अजय ने सही लिखा, बिल्कुल गुड.
इनर लूप और एक बार और एक्सप्लेन कर दो। कुणाल अभी भी डाउट है क्या? कुणाल और राहुल क्या डाउट है? तो ये हो गया सबसेट्स वाली चीज, ठीक है। चलो अब हम वापस एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनर लूप नहीं समझा। सो कुणाल यार आज तुम इसको समझ लो, मेरी बिट मास्किंग की वीडियोस हैं जो बिट मास्किंग सेक्शन में डाली हैं कोर्स में, उसमें एक टॉपिक है फाइंडिंग सबसेट्स यूजिंग बिट मास्किंग, उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि ये फंक्शन तुम्हें सबसेट्स के सम निकाल के दे देता है। इनर लूप बस ये कर रहा है, इनर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप बिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू आई, अगर मैंने लिखा नंबर इक्वल टू 5, तो 5 में बिट्स क्या होंगे 101। मैंने बोला जब तक ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसका नंबर एंड 1, लास्ट बिट निकालो, लास्ट बिट क्या होगा ये निकाला। अगर ये 1 है तो सम में कुछ ऐड करो, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। और अगली बार के लिए राइट शिफ्ट 1 कर दो, नंबर को ये हटा दो, इसको निकालो, इसमें 0 है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर ये निकालो, इसमें 1 है तो सम में कुछ ऐड करो, इसको राइट शिफ्ट कर दो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 0। पहले 101 था, फिर 10 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं हर एक नंबर के लिए, ऐसे हर एक नंबर से एक सबसेट हमें मिल रहा है। अब समझ आ गया कुणाल राहुल? गुड गुड, ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम बचा है, आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन में जो नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, अभी हमने सबसेट्स के सम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो एक काम वो करते हैं, इनपुट ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो इनपुट में हमें पहले n लेना है, फिर a और b लेना है, और फिर वो वेक्टर लेना है जिसमें हम इन नंबर्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनपुट कैसे लें। तो लेट्स डू इनपुट। तो ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो वेक्टर मैंने ले लिया है v, लेट्स दो वेक्टर ले लेते हैं v1 और v2, तो 17 एलिमेंट दोनों में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एंड अब नंबर ले लेते हैं एन ए और बी, सीन कर लेते हैं एन ए बी। उसके बाद हम बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ एल एल, नहीं ये तो हमने बना लिया है, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं, आधे एलिमेंट एक में, आधे एलिमेंट एक में, तो दो में ब्रेक करने का काम हमारा ऐसे इजी हो जाएगा। सो वी कैन से n1, पहले वेक्टर में कितने एलिमेंट हम रखेंगे n/2, सेकंड वेक्टर में कितने एलिमेंट रखेंगे जितने बच गए हैं, so n माइनस n1। एंड फिर इनपुट ले लेते हैं फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n1, i प्लस प्लस, एंड वी कैन से एक एलिमेंट है x, sin x, एंड वी कैन से v1 डॉट बैक x। तो फर्स्ट हाफ एलिमेंट्स पहले वेक्टर में डाल दिए v1 में, एंड सेकेंड हाफ वाले एलिमेंट्स v2 में डाल देंगे, i लेस देन n2, i प्लस प्लस, आई कैन से llx x एंड v2 डॉट बैक x। आधे एलिमेंट्स उसके अंदर चले गए हैं, ठीक है। और अब क्या करें, अब हमें सम ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो पहला जो वेक्टर है, ठीक है, सबसेट सम्स ऑफ v1 एंड v2 हमें निकालना है। ये बात समझ आ रही है क्यों हमें चाहिए? वेक्टर एल एल सम ऑफ सबसेट्स ऑफ v1 सम ऑफ सबसेट्स ऑफ v2, ये हमें कैसे मिलेगा? बाय डूइंग दिस कॉल सबसेट्स v1 एंड sv2 कैसे मिलेगा? सबसेट्स ऑफ v2। ये हमें मिल गए। उसके बाद क्या करना है, हमें बाइनरी सर्च लगाना है, बट बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें एटलीस्ट v2 को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉर्ट कैसे करेंगे? सॉर्ट कर दो v2 वेक्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, v2 डॉट बिगिन, v2 डॉट एंड, sv2 को जो सम्स का वेक्टर है उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। ये समझ आ रहा है सॉर्ट क्यों किया है? बिकॉज अपर बाउंड लोअर बाउंड सॉर्टेड एरे पे काम करता है। भैया आपका कोड दे देना, आपकी तरह टाइपिंग स्पीड नहीं है। हाँ कोड मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड लगाना है, तो मैच करना है यूजिंग बाइनरी सर्च। क्या करो, एक एरे पे आइटरेट कर लो, sv1 पे आइटरेट कर लो, और sv2 पे बाइनरी सर्च कर लो, बिकॉज उसको हमने सॉर्ट कर रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, SV1 का हर एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उसके लिए देखेंगे कि दूसरे एरे में से कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन से, ठीक है, एक आंसर होगा, फाइनल आंसर जो कि अभी के लिए 0 है। तो पहले एरे पे आइटरेट कर रहा हूँ, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन sv1 डॉट साइज i प्लस प्लस एंड, ठीक है। अब यहाँ पे वो लॉजिक आ जाएगा हमारा जो हमने भी सोचा था, मिनिमम ऑफ a कॉमा b वाला। सो व्हाट आई कैन से कि ठीक है, अगर ए एरे एक्स एरे में एक एलिमेंट है 3, या फिर SV1 में एक एलिमेंट है 3, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास, लेट से 10 11 12 15 20 इस टाइप से, और मैंने बोला ए मेरा मिनिमम सम मेरा 10 बनना चाहिए, तो 3 के लिए मैं इसमें से क्या पिक करूंगा, 7। तो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ वो मिनिमम ऑफ, मिनिमम कितना होना चाहिए मेरे पास, 10 माइनस SV1 का जो भी आया था एलिमेंट मैं देख रहा हूँ, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेट्स से मैक्सिमम सम मेरा 18 होना चाहिए। तो आई कैन से, ठीक है, 18 माइनस SV2 का आई, ठीक है। इसका मैं लोअर बाउंड निकालूंगा, इसका मैं अपर बाउंड निकालूंगा। तो आई कैन से हेयर, ठीक है, एक काम करते हैं, जिसका लोअर बाउंड निकालना है मेरे को, उसको LU बोल देते हैं, एंड इसको भी LL वो ही बोल देते हैं, LL, ठीक है। तो लोअर, हेलो बोल देता हूँ, लोअर हाई बोल देता हूँ, दिस विल बी a माइनस SV1 का i, और अपर कितना होगा, सो अपर को बोल देता हूँ हाई, b माइनस SV1 का i, SV1 का i, ठीक है। एंड अब हम क्या करें, आइट्रेटर्स ले लेते हैं और लोअर बाउंड कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो एक इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा, लेट से i और j तो नहीं ले सकता, i मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो लेट मी कीप दीज वेरिएबल्स एज m और n। सो m कितना हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ किसमें, SV2 में, SV2 डॉट बिगिन, SV2 डॉट एंड, एंड किसका, लो का, और अपर बाउंड ले लेते हैं n नहीं ले सकते, m1 और m2 ले लेते हैं इसको, m2 विल बी अपर बाउंड ऑफ SV2 डॉट बिगिन, फिर SV2 डॉट इसका हाई का, ठीक है। अब आंसर में क्या ऐड करोगे, यहाँ पे मेरे को बताओ, आंसर प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोई बता सकता है, कैन यू टेल मी व्हाट यू विल ऐड टू द आंसर नाउ। बिल्कुल सही है, उत्कर्ष का आंसर बिल्कुल सही है, इट विल बी m2 माइनस m1, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो, आपने बोला ठीक है मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे पकड़ा, इस एलिमेंट को मैं इन सब एरेज के साथ मैच करा सकता हूँ, तो ये एलिमेंट कितने सबसेट बना रहा है, ये सारे तो बना रहा है, एंड ये होगा m2 माइनस m1, ठीक है। ये एलिमेंट पकड़ा, ये इन सब के साथ सब एरेज बना रहा है, तो इसका आंसर भी जो भी होगा m2 माइनस m1 करके वो हम ऐड कर देंगे, एंड फाइनल आंसर क्या होगा, इन सब का सम। बिल्कुल ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, सही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सी आउट आंसर करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, इंट इंट में, ओके, एक चीज और हमें करनी पड़ेगी, बेस एड्रेस माइनस करना पड़ेगा, सो SV2 डॉट बिगिन, एंड यहाँ पे भी माइनस SV2 डॉट बिगिन, ये चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, so दैट आपको एक इंटीजर मिले, नहीं तो वो एक आइटरेटर आपको देगा। तो कोड हमने लिख लिया है, अब एक बार मैं इसको अपने इस वाले इनपुट पे रन करके देखता हूँ कि मेरे इस पे क्या इनपुट दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, 5 आना चाहिए, तो हम देखते हैं क्या हमारा आंसर 5 आ रहा है। तो ये इनपुट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल 5 आ रहा है, सही लग रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सबमिट ही मार देते हैं, सॉल्व कर लिया तो स्पॉच पे, लेट्स सबमिट अवर कोड। सो m2 माइनस m1 प्लस 1 इसलिए नहीं किया बिकॉज
जो इंडेक्सिंग है वो जीरो बेस्ड है, सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में प्रियल आपको वन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडेक्स 7 और दूसरा 0 है तो 7 माइनस 0 ही आप उसको कंसीडर कर लोगे। या फिर आई थिंक लोअर बाउंड वाली चीज़ उसको हैंडल कर लेगी। तो रॉन्ग। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है क्या हमारी। आ, हाँ, लोअर बाउंड भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देगा और अपर बाउंड भी। m1 इज लॉन्ग लॉन्ग वेयर RHS इज इंट। अच्छा, हाँ तो कुछ इंट और लॉन्ग की मिस्टेक हुई है, लेट मी फिक्स दिस एंड सबमिट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया था एंड इट्स वर्किंग फाइन। लेट मी डू सबमिशन वंस अगेन। ठीक है, सो लॉन्ग एंड इंट की कुछ इशू है जो हमने फिक्स कर दिया है एंड लेट मी सबमिट इट अगेन। ठीक है, सो हाउ डू वी डील विद सम्स विच रिजल्ट इन बिटवीन गिवन इनपुट नंबर अदर्स। उसी के लिए तो हमने बाइनरी सर्च लगाया है। ठीक है, उसी के लिए तो बाइनरी सर्च लगाया ताकि हमें सबको काउंट ना करना पड़े। ठीक है, सो कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। तो दर्श पूछ रहे कि सबको काउंट नहीं किया यार, सबको काउंट नहीं किया इसलिए हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड लगाया। यही मेन चीज थी इस क्वेश्चन में। अगर आप सारे सबसेट्स काउंट करने लगोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to the power 34 हो जाएगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने प्रॉब्लम को दो हिस्सों में ब्रेक किया, दोनों पे ब्रूट फोर्स लगाया, फिर दोनों को कंबाइन किया बाइनरी सर्च के साथ। ठीक है, तो गाइज इज इट क्लियर? क्या आपको समझ आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है? ठीक है सर, एक बार ड्राई रन हो सकता है? ठीक है, ड्राई रन। ओके, ठीक है, इसकी ना कोड की यार वो नोट कर लो आईडी। ठीक है, अगर आपको कोड चाहिए तो मैंने कोड अपना CBID पर डाला है एंड यहाँ पे दिस इज द URL फॉर द कोड 158249। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं है कोड 158249। ये कोड आपका उसका है यार, रुको मैं दोबारा डाल देता हूँ 158290। So this is the code on coding blocks ID. Thanks guys. हाँ यार, देखते हैं इसका वीडियो फिर डाल देंगे कहीं पे YouTube या कोर्स पे। ठीक है, तो कोर्स में गोइंग फॉरवर्ड मैं वेबिनार्स ऐड नहीं किया करूँगा। इफ़ योर रिक्वेस्ट, तो वेबिनार्स को मैं YouTube पर डाल सकता हूँ, बट कोर्स में वेबिनार ऐड करने से कोर्स का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो YouTube पे मैं डाल दूंगा अगर तुम तो। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लेना। एक हफ्ता 10 दिन के लिए डालूंगा, उसके बाद आई विल टेक इट डाउन। ओके, सो यूट्यूब पर डाल दूंगा बट बाय न्यू ईयर आई विल ऑल्सो टेक इट डाउन बिकॉज एक्सक्लूसिव कंटेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यू शुड वॉच दिस। सो दिस इज द लिंक। ओके, सो कोडिंग ब्लॉक्स आईडी पे अगर आप देख रहे हो तो ये लिंक है 158249। ये कोड का लिंक है और जो सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये ग्रीडी वाली प्रॉब्लम का लिंक है और यहाँ पे दूसरा लिंक है। तो इनको आप लोग नोट कर लो लिंक्स को। ठीक है, एरेस का वेबिनार भी डाल देंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है अभी
एक दो प्रॉब्लम्स और कर सकते हैं. सो आर यू रेडी? बाकी की प्रॉब्लम्स भी बाकी की प्रॉब्लम्स रिकर्जन पे हैं. ठीक है, सो लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स. तो ऐसा हो सकता है कि ड्राई रन करना है, तो ड्राई रन कर देता हूँ मैं, 2 मिनट बस तुम ले लो. तो ये फंक्शन मैं ड्राई रन नहीं कर रहा, सबसेट्स निकालने का ये ऑलरेडी कर चुका हूँ. अगला पार्ट मैं ड्राई रन कर देता हूँ, नीचे का पार्ट. ठीक है, सो सब लाइन में नीचे का पार्ट मैं एक बार ड्राई रन कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखो यार, ये किया है, जो भी आपका इनपुट एरे है उसको 2 वेक्टर्स में एक्सेप्ट किया है. ठीक है, तो पहला आधे एलिमेंट्स इसमें, आधे एलिमेंट्स इसमें. फिर इन दोनों के सबके सबसेट्स निकालने हैं, इसके सबसेट और इसके सबसेट. इनके सबसेट्स को मैंने बोला कि इनका वेक्टर का नाम SV1 है या फिर X है, और उनमें सम्स पड़े हैं. यहाँ पे एक सम होगा लेट्स से 3, ऐसी वाई में कुछ सम्स होंगे 8 9 10 15 कुछ कुछ, और इनको मैंने सॉर्ट कर लिया है. तो मैंने पूछा ठीक है, एक ऐसा सबसेट उठाता हूँ जिनमें एलिमेंट का सम 3 है, उसके साथ कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मैच करेंगे ताकि उनका सम ए और बी के बीच में लाई करें. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, बी एरे के लिए एक लोअर बाउंड निकाला है और एक हायर बाउंड निकाला है, और लोअर बाउंड और अपर बाउंड से सर्च कर लिया कि इनका इंडेक्स क्या आ रहा है. इनका इंडेक्स M1 और M2 आ रहा है, और उसको मैंने अपने आंसर में ऐड कर दिया है. ऐसे 3 के लिए किया, 4 के लिए, 5 के लिए किया, सबके लिए किया, और सबका जो टोटल है दैट इज माय आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन का लिंक भी डाल दो यार. क्वेश्चन का नाम है सबसम्स स्पॉच पे. ठीक है, और स्पॉच का प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, यू मस्ट डू इट. राहुल कह रहा है आसान वाला बताना पड़ेगा. चलो ठीक है, अब आसान सवाल कर लेते हैं एक आधा. ठीक है, तो सवाल काफी आसान है, तुम लोग देखते समझ जाओगे क्या करना है. तो सवाल ऐसा है, लेट्स गो. सवाल ये है कि आपको एन दिया, लेट्स से एन दिया 3, और आपको बोला गया है कि ठीक है, आपको बोला है कि ब्रैकेट जनरेट करने हैं इस तरह से. सच दैट करा हुआ है ऑलरेडी. अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, लेट्स डू दिस थिंग. ये भी एक स्पॉच का प्रॉब्लम है, उसका कुछ पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. ठीक है, प्रॉब्लम का नेम है ए कोड फ्रॉम स्पॉच से. आपको ये गिवन है कि देयर इज अ मैपिंग, ए का मतलब 1 का मतलब ए है, 2 का मतलब आपको गिवन है कि बी है. लेट मी डू इट ऑन 1 ताकि हम इस पे काम कर सकें. हाँ, ये कोर्स में आई थिंक प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं. ब्रैकेट वाला भी कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, डोंट वरी. ठीक है, तो जिन्होंने करा हुआ है दे कैन गो, दे कैन हैव डिनर. तो अभी मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. एक प्रॉब्लम है ए कोड, ये हैकर ब्लॉक्स पे और कोर्स के असाइनमेंट में है, और दूसरा प्रॉब्लम मैं ब्रैकेट जनरेट करने वाला डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, जनरेट ब्रैकेट्स. तो आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं, अभी इस वीक दिसंबर में 3 से 4 वेबिनार्स और प्लान है. उसमें संकेत भैया आपको डीपी ट्रीज वो सब भी कराएंगे, तो उसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ठीक है हेमंत, गुड. तो ट्रीज और डीपी यस होंगे. और एक अच्छी न्यूज़ आपको और दे दूं, जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं यू विल बी गेटिंग हिंट वीडियोस वेरी सून. कॉम्पिटिटिव के कोर्स में हमने डालना स्टार्ट कर दिए हैं, और डीपी के कोर्स में हमने डालना स्टार्ट कर दिए हैं. यू विल बी गेटिंग दोज वेरी सून. ओके, हिंट वीडियोस फॉर ऑल असाइनमेंट्स. तो कोई बात नहीं, जो लोग थोड़ा पीछे हैं वो वेबिनार में आ सकते हैं, अगर उनको कम भी समझ आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो पहले ए कोड कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं. सो ए कोड प्रॉब्लम में ये गिवन है कि 1 का मतलब ए है, 2 का मतलब बी है, 3 का मतलब सी है, ऐसे ही आपको 26 का मतलब जेड है. तो गिवन अ स्ट्रिंग 1 2 3 4 इस टाइप का, आपको बताना है कि इससे पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन कौन से बन सकते हैं, कौन से पॉसिबल स्ट्रिंग हम इससे जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 2 3 4 को ऐसे कंसिडर करूँ, सबको इंडिविजुअली कंसिडर करूँ, तो ये स्ट्रिंग बन सकता है ABCD. या फिर मैं बोलूँ यार 12 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, तो 12 की मैपिंग हो रही है L के साथ,
ठीक है, 3 की मैपिंग हो रही है सी के साथ, 4 की मैपिंग हो रही है सी के साथ, डी के साथ, तो ये एक स्ट्रिंग बन सकता है। या फिर मैं बोलूँ 123 और 4, तो 1 की मैपिंग हो रही है ए के साथ, 23 की मैपिंग हो रही है डब्ल्यू के साथ, 4 की मैपिंग हो रही है डी के साथ, तो ये एक स्ट्रिंग बन सकता है। तो तुम्हें एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग दिया होगा, उससे तुम्हें स्ट्रिंग्स बनाने इस टाइप के, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो यू हैव टू जनरेट पॉसिबल स्ट्रिंग्स इन दिस केस। 1304, ओके, जीरो नहीं होगा, ठीक है, 1304 आपके इनपुट में जीरो नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा तो यू कैन इग्नोर जीरो। सेम क्वेश्चन इज ऑन कोर्स भैया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। व्हाट अबाउट 20, जीरो नहीं होगा, ठीक है, इनपुट में जीरो नहीं होगा, डिजिट्स आपके 1 से 9 के बीच में होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर होगा 1 2 3 4 8 7। तो कोर्स में मैंने इसका वीडियो दे रखा है या प्रॉब्लम दे रखा है? ठीक है, प्रॉब्लम है ना, तो सही है ना, तो सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, तो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन इसका। गुड, देन इट विल मेक मोर सेंस टू डिस्कस द सॉल्यूशन इसका। ओके, गुड गुड, काफी टाइम लगा है, ठीक है, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो देन, रिवीजन हो जाएगा, सही है। तो देखो यार, ऐसा है कि 1 2 3 4 आपको गिवन है, तो यहाँ पे ना क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो वन है, वन दो तरह के रोल्स में आ सकता है। वन को तो या तो आप सोलो ले सकते हो, या फिर आप पेयर में ले सकते हो, और पेयर वो सिर्फ टू के साथ बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम दो कॉल करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, वन के लिए तो तुम कुछ सॉल्व कर लो और 2 3 4 पे रिकर्सिव कॉल कर दो, या फिर वन के साथ तुम 2 ले लो और 12 बना लो, और 3 4 के लिए तुम रिकर्सिव कॉल कर दो, ठीक है। तो जिसको तुमने ले लिया अपने पास, उसको रिप्लेस कर दो उसके वैल्यू से, तो 1 का मतलब ए है और 12 का मतलब एल है। तो अभी तक इतनी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, तो हम हर स्टेप पे दो कॉल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास 2 3 4 बचा है, तो तुम सेम चीज 2 के लिए अप्लाई करो, बिकॉज रिकर्जन में सेम ही चीज हो रही होती है हर एक स्टेट पे। तो क्या करो, 2 को या तो सोलो ले लो, ए बन चुका है, 2 को सोलो लेने का मतलब क्या है, बी बना दिया, और 3 4 पे कॉल कर दो। या फिर तुम बोलो नहीं यार, 2 और 3 को मैं साथ में लूंगा, तो 2 और 3 को साथ में लेने का मतलब क्या है, डब्ल्यू बना दो और 4 पे कॉल कर दो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, इससे इससे नीचे जाने का ट्राई करते हैं। ए भी तो बन ही चुका है, 3 को सोलो लेंगे तो सी बन जाएगा, 4 पे कॉल हो जाएगा, या फिर 34 को एक साथ लेंगे, रिमेनिंग सब प्रॉब्लम ही है। 34 इसको एक साथ लेंगे, इसको ले नहीं सकते बिकॉज 34 इज नॉट लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 26, तो इसको ले नहीं सकते, तो यहाँ पे कॉल करने का फायदा नहीं है। अब ये बचा, तो यहाँ पे एक ही नंबर बचा है, तो तुम क्या करो, एक ही नंबर है तो उसका तो सिर्फ डी बना सकते हो, तो उसका डी बना दो। तो ये तुम्हारा बन गया पहला आउटपुट, ठीक है। अब इस ब्रांच में जाते हैं, यहाँ पे भी काम बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक ही नंबर बचा है, तो इसका बना दो डी, तो ये बन गया ए डब्ल्यू डी, ठीक है। इस ब्रांच में जाते हैं, तो या तो 3 को ले लो, एल के साथ 3 ले लो, मतलब सी बना दिया, 4 बच गया, या फिर 34 ले लो, 34 लेने का पॉइंट नहीं है, तो इस ब्रांच पे डिस्कार्ड कर देते हैं, यहाँ नहीं जाओ। 4 बचा हुआ है, इसका सी बना दो एल सी डी, तो ये बन गया एल सी डी, ठीक है। एक का पेयर 3 के साथ नहीं बन सकता, एडजस्ट नंबर ही लेने हैं, बिल्कुल एडजेसेंट नंबर ही लेने हैं, ठीक है। सोलो या फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट यही लेना है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ठीक है। अल्फाबेट्स आर ओनली 2 डिजिट्स, यस, तो 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ट्रिपलेट्स आपको नहीं लेने, क्योंकि किसी का भी नंबर 26 से बड़ा नहीं है, तो ट्रिपलेट्स कंसीडर नहीं होंगे। तो कुछ कुछ ये सबसेट जैसे ही क्वेश्चन है ये, जैसे जैसे आप सबसेट बनाते हो रिकर्जन से, कुछ कुछ वैसा ही करना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो कोड लिखें इसका, ठीक है। कोड में मैं क्या करूँगा, बहुत ही आसान कोड है, क्या कर सकते हो, दो कॉल मार देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर मान लो ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग में अगर आप रीड कर रहे हो आई इंडेक्स से, किसी भी आई इंडेक्स पे काम कर रहे हो, एक आउटपुट एरे रख लो, आउटपुट एरे में तुम बोलो मैं जेथ इंडेक्स पे काम कर रहा हूँ, और जो भी जेथ, अगर इनपुट से मैं 1 और 2 पिक करता हूँ,
तो मैं jth इंडेक्स पे l रख दूंगा, या फिर मैं अगर सिर्फ 1 पिक करता हूँ तो jth इंडेक्स पे मैं a रख दूंगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगली बार के लिए j आगे बढ़ जाएगा। और इनपुट में अगर तुमने 2 रीड करके आउटपुट 1 बनाया, मतलब 12 का अगर तुमने l बना दिया, तो इनपुट में i क्या हो जाएगा i+2, j क्या हो जाएगा j+1। अगर तुमने बोला नहीं 1 का मेरे को a बनाना है, तो i क्या हो जाएगा i+1 और j क्या हो जाएगा j+1, कुछ ऐसा। अरे भैया जीरो नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सारे। Can we optimize it using DP since we are finding the same value like 34 twice here? So 34 पे डीपी से ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, तो आई थिंक कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डीपी से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे बन सकती हैं। तो चलो कोड लिखते हैं, तो रिकर्सिव कोड लिख देता हूँ डीपी वाला, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। बिल्कुल सही बात है। So let's say एक आपके पास input array है which is a character array, and let's say this let's say 1 2 3 4। आप कोई और string भी ले सकते हो, अगर आपको input लेना है तो ले सकते हैं। Let's say this thing is there, sorry, char array and यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं void find strings, and ये array ले रहा है, और क्या चाहिए होगा इसमें i, और क्या चाहिए होगा j, और एक आउटपुट array, वो भी हम array ले, ठीक है। सो ए इज अवर इनपुट एरे, और एक मैंने आउटपुट एरे बना लिया और उसका नाम आउट रख दिया। ठीक है, तो सीन कर लिया मैंने ए, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस केस बताओ यार क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द बेस केस। देखो आप एक इनपुट एरे को रीड कर रहे हो, ठीक है, इनपुट एरे 1 2 3 4 इस टाइप का है, आप हर बार आई को आगे बढ़ाते जा रहे हो, जब आप यहाँ पे आ गए कि एरे ऑफ आई पे नल पड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने पूरा इनपुट प्रोसेस कर लिया और आपका काम खत्म। तो उस केस में हमारा आउटपुट एरे में जो भी आउटपुट पड़ा होगा, सिमिलरली साथ साथ आउटपुट भी बनाते जा रहे हैं, आउटपुट एरे में भी नल डाल देंगे, और जो भी आउटपुट हमारा बना होगा उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, वी विल प्रिंट द आउटपुट एरे। बिल्कुल ठीक है। तो ये से इफ एरे ऑफ आई इज नल, तो हम क्या करें, हम आउटपुट एरे में jth इंडेक्स पे नल डालें और उसको प्रिंट कर दें, और L and we say return. Okay. And recursive case में क्या करें, you have two options. First option is include single character. Second option is include two character. तो दो को लेना होगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। तो इंक्लूड सिंगल करेक्टर एंड इंक्लूड टू करेक्टर। देखो अगर हम सिंगल को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट हमारे पास जो डिजिट होगा दैट विल बी इनपुट में ith इंडेक्स पे जो डिजिट है वो उसको मैं ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ai is a character array and if you subtract 0 as a character out of it you will get a integer, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो करेक्टर है वो कैसे बनाओगे, उसको ऐसे बोल सकते हैं प्लस a-1। क्या हम ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्यों। देखो अगर इनपुट में मैंने पढ़ा है 5, तो 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 एज अ इंटीजर। एंड अगर ये करता हूँ 5 प्लस a-1, ये क्या होगा a+4, ठीक है।
और इसको मैं स्टोर कहाँ पे कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या होगी, इंट होगी कैर होगी, मेरे को ये बताओ। यहाँ पे इंट होगा कैर होगा, इंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a+4 इंट होगा, बट क्योंकि उसको तुम कैर में स्टोर कर रहे हो इसलिए वो कैर होगा। ठीक है, एंड दिस विल अमाउंट टू ई। तो फिफ्थ करेक्टर कौन सा होता है, ई। तो 5 किससे मैप होना चाहिए था, ई से, और वो मैप हो रहा है। ठीक है, सो वी विल गेट द करेक्टर। उस करेक्टर को कहाँ पे डालना है, आउटपुट एरे में डालना है। तो डाल देते हैं आउटपुट ऑफ jth इंडेक्स इक्वल टू ch, और रिकर्सिव कॉल कर देते रिमेनिंग पे, रिमेनिंग पे कॉल कर दो। रिमेनिंग का मतलब क्या है, फाइंड स्ट्रिंग्स ए, इनपुट कैसे आगे बढ़ेगा i+1, आउटपुट कैसे आगे बढ़ेगा j+1, और आउटपुट क्या होगा आउटपुट। ठीक है, अब हमें वो केस लेना है जब हम दो करेक्टर ले रहे हैं। तो दो करेक्टर का मतलब क्या है, हम ai भी ले रहे हैं और ai+1 भी ले रहे हैं। तो दो करेक्टर हम तब ले सकते हैं अगर नेक्स्ट करेक्टर हमारा नल नहीं है, बिकॉज अभी यहाँ पे हमने देखा 4 वाला केस अटक गया था। अगर लास्ट में एक करेक्टर ही बचा है, ठीक है, तो मैपिंग हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मैपिंग जनरेट कर ली ना। आउटपुट एरे 2 होना चाहिए बिकॉज ऑफ 2 रिकर्सिव केसेस। अरे राहुल, दो नहीं होंगे, एक में एक से काम हो जाएगा बिकॉज ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, 102 है तो 02 को भी लेंगे, तो 02 नहीं होगा, जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो कहीं पे आएगा ही नहीं इनपुट में, ऐसा मान लो। सो इफ ai+1 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो हम क्या करें, तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो लेने का मतलब क्या है, जो सेकंड डिजिट है हमारा वो क्या होगा, ai+1 -0। देखो यार, अब ऐसा हो रहा है कि मैं 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, मैंने 1 तो ले ही लिया है, आई तो ले ही लिया है, मैंने बोला मेरे को 2 भी लेना है, तो मैं किसको लूंगा, i+1 को। तो मेरे पास 1 और सेकंड डिजिट में क्या होगा 2। नंबर कैसे बनाऊंगा, 1 × 10 + 2 12, और 12 से करेक्टर कैसे निकालूंगा, 12 + a-1। तो a+11 करोगे तो यू विल गेट द 12th करेक्टर। ठीक है, सेकंड डिजिट ही हो गया आपके पास, देन आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10 × डिजिट प्लस सेकंड डिजिट, ये हो गया। एंड करेक्टर कैसे नहीं उठाओगे आप इसमें से, जो अब ch होगा दैट विल बी नथिंग बट नंबर प्लस a-1, ये हो गया। आउटपुट में क्या रख दो, करेक्टर रख दो, आउटपुट ऑफ j इक्वल टू ch, एंड कहाँ पे कॉल कर दो, आगे कॉल कर दो। आई किससे आगे बढ़ेगा, 2 से, जे किससे आगे बढ़ेगा, 1 से, और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, एंड आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। सब एक काम करते हैं, कॉल करके देखते हैं क्या हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और आई और जे को स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं। ठीक है, तो लेट मी डू दिस वन नाउ। ब्रैकेट्स ही रख दिया है बट इज डिफरेंट। सो वी आर गेटिंग ABCD ABB AWD LCB LB। अच्छा, एक चीज जो हम भूल गए हैं यहाँ पे करनी, हाँ, अब दिक्कत यहाँ पे ये होगी, हमने ये चेक नहीं किया इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 26। तो हमें यहाँ पे वो वाले केसेस में मिल रहे हैं जहाँ पे हमारा बड़ा नंबर बन रहा है 97 वगैरह, और हमें लोअर केस वाले स्ट्रिंग्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर नंबर हमारा 26 से कम बन रहा है तो ये एग्जीक्यूट करना है। तो लेट्स रन दिस अगेन। ठीक है, नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। थैंक्स आदेश। ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बना दिया हमने केस। ठीक है, इट शुडंट बी 10 × सेकंड डिजिट प्लस डिजिट। सो अजय, हम लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं यार, तो ऐसे ही होगा, जो मैंने किया वो सही किया है। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है,
एटलीस्ट द इंट्यूशन रिकर्जन कैसे यूज किया हमने यहाँ पे। बैक ट्रैकिंग कहाँ यूज किया? देखो बैक ट्रैकिंग अलग से लिखनी नहीं पड़ती, बट ऑल रिकर्जन प्रॉब्लम्स हैव बैक ट्रैकिंग। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे आपको ऊपर जाते वक्त एरे वापस अपडेट करना पड़े, वहाँ पे बैक ट्रैकिंग कोड आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है, जैसे एनक्वीन प्रॉब्लम, रैटिनमेज प्रॉब्लम, सुडोको सॉल्वर प्रॉब्लम। बट बैक ट्रैकिंग तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है रिकर्जन में। जब भी आप ट्री में नीचे जा रहे हो तो आपकी बैक ट्रैकिंग साथ साथ हो ही रही है, क्योंकि ऊपर भी तो आ रहे हो। इवन जो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है उसमें भी बैक ट्रैकिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर आप 5 फैक्टोरियल निकालते हो तो आप यहाँ जाते हो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो नीचे जाना आपका ये है, ऊपर आना ही तो आपका बैक ट्रैकिंग है एक तरह से, ठीक है। जो आपकी बॉटम अप डायरेक्शन है उसमें आप बैक ट्रैक ही तो कर रहे हो, वापस 5 पे आ रहे हो, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग तो सब क्वेश्चन में होती है। यहाँ पे भी ट्री बन रहा है, आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, तो ठीक है। तो जब आप इस स्टेट से वापस आ रहे हो इस स्टेट पे, तो वो बैक ट्रैकिंग की तो हो रही है, ठीक है। So it is same as subsequences of a string, right? So it is similar, right? Not same but similar. So सही है, ठीक है। कोड यूआरएल भैया, तो ठीक है, कोड को एक काम करते हैं, इसको छाप देते हैं कोडिंग ब्लॉक्स आईडी पे, और फिर तुम लोग, ये मैंने कर दिया पेस्ट और ये कर दिया मैंने सेव। कोड यूआरएल इज 158.299। एक बार खोल लो, देख लो, तसल्ली कर लो, मेरे को बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ब्रैकेट्स वाला कर लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, हम भी छाप देंगे, ठीक है, ठीक है भैया। मैथ्स पे भी होगा वेबिनार, बिल्कुल होगा, ठीक है, सारे टॉपिक्स पे होंगे वेबिनार। अच्छा, तो यार अभी टाइम कम है, ब्रैकेट छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए ले रहा हूँ, 7-8 मिनट में हो भी जाएगा सॉल्व। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने नहीं किया, आपने किया हुआ है तो आप वेबिनार एग्जिट कर सकते हो अभी, ठीक है। और नेक्स्ट वेबिनार में आपको डीपी और ट्रीज के नए क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ब्रैकेट्स कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स क्वेश्चन ये है कि आपको बोला है कि मैंने लेट से n इक्वल टू 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है, आपको राउंड ब्रैकेट्स यूज करके 2 पेयर्स ऑफ राउंड ब्रैकेट्स यूज करके बैलेंस पैरेंथेसिस जनरेट करने हैं, ठीक है। तो टू को यूज करके कैसे बन सकता है, एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है। अगर कुछ ऐसा बनाओगे तो दिस इज अ इनवैलिड केस। तो आपको बोला गया है जनरेट दीज वैलिड केसेस, ठीक है। तो अगर मैंने बोला n इक्वल टू 3 है तो आपके केस ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है, कुछ ऐसे भी बन सकता है, कुछ ऐसे भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, और कुछ बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव 5 पॉसिबल ऑप्शंस व्हेन n इज 3। तो आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो अगर आपका n 3 है तो आप इफेक्टिवली 2n लेंथ का एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, ठीक है। सो कैटलन नंबर से आप काउंट करोगे, ठीक है, आपको काउंट नहीं करने, आपको ये कॉम्बिनेशंस प्रिंट करने हैं, ये आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेबिनार आपके जो शेड्यूल्ड है वो 21 से 30 दिसंबर के बीच में, यू विल हैव एटलीस्ट 3 वेबिनार्स, ओके। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको एक इंटीजर गिवन होगा n इक्वल टू 3, यू विल जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ 2n लेंथ जिसमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, एंड राउंड ब्रैकेट्स के जो आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो दो शुड बी बैलेंस्ड। दिस इज द क्वेश्चन। एमएल पे वेबिनार कल है, इफ यू आर एनरोल्ड इन द मशीन लर्निंग कोर्स, तो कल हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंटीग्रेट मशीन लर्निंग विद वेब एप्स। उस पर कल वेबिनार हो रहा है मशीन लर्निंग पे। तो ध्रुव कह रहे दिसंबर वाले बैच में, देखो मैंने वेबिनार्स सारे बैचेस के लिए कंबाइन किए हैं, दिसंबर वाले बैच के लिए अलग से वेबिनार्स होंगे मार्च में, तो आप वो वाले वेबिनार्स फिर से अटेंड कर सकते हो। राहुल एक बार दोबारा देख लेना, तुम्हें फीलिंग आ जाएगी।
खुद से ट्राई रन करना। कॉम्पिटिटिव वाले एरे वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव वाले वेबिनार्स कर सकते हैं अटेंड, उनको उनको भी लिंक मैंने शेयर किया एरेस का। तो कल जो एरेस का वेबिनार हुआ था उसमें लीड कोड और कोड फोर्सेस के क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, तो वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव और एल्गो प्लस प्लस इंटरव्यू प्रेप सभी के लिए था। नहीं, वेब वाला पार्ट कल हम आपको सिखाएंगे, फ्लास्क फ्लास्क सिखाएंगे जो लोग एप्पल वाले वेबिनार में आएंगे, ठीक है। भैया कोड कहाँ डालोगे? कोड मैंने लिंक दे दिया यार, कोड का लिंक CBID का लिंक दिया है, आप उसी को यूज करो, ठीक है। एरे पे कल हुआ था यार वेबिनार। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो यूजिंग स्टैक्स, रिकर्जन की क्लास है तो स्टैक तो देखो यूज होगा। नेक्स्ट वेबिनार का आपको ईमेल आएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे। ML वाले का लिंक कल आएगा, ठीक है। कल आज आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, हेमंत कह रहे हैं 2 कॉल होंगी, बिल्कुल ठीक है। देखो यार, स्ट्रिंग ही तो बनाना है हमें, लेट से 4 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है, तो आप स्टार्ट करो एक एम्प्टी एरे से, और हर पोजीशन पे आपको पता है आप या तो क्लोजिंग ब्रैकेट रख सकते हो या ओपनिंग रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं पहले की बात करूँ 2 ऑप्शन, दूसरे की बात करूँ 2 ऑप्शन, तीसरे की बात करूँ 2 ऑप्शन, चौथे की बात करूँ 2 ऑप्शन, वर्स्ट केस में आप 2⁴ 16 बन सकते हैं, बट सारे वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग में यार ओपनिंग ब्रैकेट डालना है, ये तो अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूँ क्लोजिंग ब्रैकेट डालना है, तो इज इट फाइन? क्या हम डाल सकते हैं स्टार्टिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट? नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो उससे पहले एटलीस्ट ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए जो मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग आने के लिए ओपनिंग का काउंट ज्यादा होना चाहिए क्लोजिंग से। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ अब क्लोजिंग ब्रैकेट डालना है, डाल सकता हूँ क्योंकि ओपनिंग अकाउंट क्लोजिंग से ज्यादा है। अब क्या मैं क्लोजिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे? नहीं डाल सकता, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट सेम है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट डालने के लिए पहली कंडीशन तो ये है, ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी इंडेक्स पे ब्रैकेट प्लेस कर रहे हो और वहां पे अगर ओपनिंग का काउंट क्लोजिंग से ज्यादा नहीं है तो आप वहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाल सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप फिल करते जा रहे हो, आपने बोला ठीक है ओपनिंग 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 लगा दी, क्या ये वैलिड केस है? इज इट अ वैलिड केस? नो, ये भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग का काउंट कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको ओपनिंग डालनी है तो ओपनिंग का काउंट n से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी ये है। इसके अलावा आप कुछ भी करो, आपका पैरेंथेसिस हमेशा बैलेंस बनेगा। तो करके देखते हैं। लेट्स से स्टार्टिंग में मैंने ओपनिंग डाल दिया, अब यहाँ से 2 कॉल किए, ओपनिंग के बाद फिर से ओपनिंग डाल दिया या ओपनिंग के बाद क्लोजिंग डाल दिया, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों। अब यहाँ पे मैं क्या ओपनिंग डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, बिकॉज N2 है और ओपनिंग कितने हैं? 2। तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे? क्लोजिंग ही डालूंगा। क्या मैं अब यहाँ पे ओपनिंग डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, तो क्लोजिंग ही डालूंगा। तो ये बन गया एक केस। यहाँ पे क्या करूँ? ओपनिंग भी 1 है और क्लोजिंग भी 1 है, और क्या मैं क्लोजिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे अगली पोजीशन पे? नहीं डाल सकता, तो क्लोजिंग नहीं डलेगा। ओपनिंग डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, डाल दिया। अगले पे क्या करूँ? ओपनिंग डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्लोजिंग डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ। तो ये बन गया ये। तो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट दिस थिंग, ठीक है। ओपनिंग का काउंट n से लेस होना चाहिए, टोटल लेंथ में 2n मान रहा हूँ स्ट्रिंग की, ठीक है, टोटल इज 2n। ठीक है, रिकर्जन की टाइलिंग प्रॉब्लम बता दो सर, अभी बता देते हैं इसके बाद, ठीक है हेमंत, अभी बता देते हैं, डोंट वरी। तो देखो क्या करना है, इसका कोड लिख लेता हूँ फटाफट। कुछ नहीं करना, आपको बस दिमाग में रखना है कि अभी तक आपने कितने ओपनिंग बनाए, कितने क्लोजिंग बनाए हैं, और हर पोजीशन पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं।
आप एक आउटपुट एरे ले लो, ठीक है, और एक काउंट ले लो, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ओपन काउंट, ठीक है, और एक इंडेक्स ले लो जिस इंडेक्स पे आप काम कर रहे हो। तो बेस केस क्या होगा, अगर आपने 2n कैरेक्टर फिल कर लिए हैं, ठीक है, सो इफ आई इक्वल्स टू 2n, 2 इंटू एन, एन भी लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अगर आपने 2n फिल कर ही लिए, आप इस इंडेक्स पे आ गए हो, तो आप कुछ नहीं करना, सी आउट ए करना है और उसको पहले बंद कर देना है इससे, नल कैरेक्टर से, एंड यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज आप ओपनिंग डाल सकते हो या क्लोजिंग डाल सकते हो। तो ओपन डालने के लिए कंडीशन ये है कि ओपन का काउंट अगर एन से कम है तो आप ओपनिंग डाल सकते हो। सो आई कैन कॉल जनरेट पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे क्या करूँ, ए में ith इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल दूँ। तो जनरेट कर दिया पैरेंथेसिस, और क्या करूँ यहाँ पे, ए एन एन ही रहेगा, ओपनिंग अकाउंट क्या हो जाएगा ओपन प्लस 1, क्लोज का अकाउंट क्लोज ही रहेगा, और आई क्या हो जाएगा आई प्लस 1, आई का एक इंडेक्स आगे बढ़ गया, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो डू इफ क्लोज का काउंट लेस देन ओपन से, तो मैं क्लोजिंग भी डाल सकता हूँ। तो ए ऑफ आई पे क्या लिख दूँ, क्लोजिंग, पैरेंथेसिस ए एन क्लोज प्लस 1, सॉरी ओपन उतना ही रहेगा 1, एंड आई को क्या कर दूँ आई प्लस 1, ठीक है, दैट्स इट। एंड तो करके देखते हैं, ग्रेड पैरेंथेसिस ए क्या दे दें आउटपुट, और एन दे दें, ठीक है, और इंट आई भी स्टार्टिंग में क्या ले लें, तो अगर 3 दिया तो यू कैन सी कि मेरे को ये सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, और अगर मैं 2 देता हूँ तो ये कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो 3 के लिए 5 आ रहे हैं और 2 के लिए हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ वी यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, अच्छा, अगर आप ये करते हो यार, दिस इज नॉट कंसिडर एज अ करेक्टर इन सी प्लस प्लस, पाइथन में चलता है बट सी प्लस प्लस में आप इसको स्ट्रिंग की तरह रख सकते हो, करेक्टर एरे में इसको नहीं रख सकते, ठीक है। लूप से बन जाता है, लूप से तुम बना लो, बन तो जाते हैं रिकर्जन के क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा राहुल, ठीक है। तो क्या इसको ड्राई रन करना है या समझ आ गया, सबसेट जैसे है, ठीक है, आ गया, ठीक है, गुड, गुड देन, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए हमने टाइम को ऑलरेडी बाय हाफ एन आवर ओवर शूट कर दिया है। इसका यूआरएल मैं आपको दे देता हूँ। सो would be stopping at this point now and you can note down the URL, and इसके अलावा किसी को कुछ और बात करनी है तो बता दो, ठीक है। और आई थिंक कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स भी थे तो आप लोग टाइम निकाल के आए, दैट्स वेरी गुड थिंग, एंड एग्ज़ाम के लिए भी आपको पढ़ना है तो ऑल द बेस्ट। एंड जिनकी वेकेशंस हैं दे मस्ट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन कोडिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, दिसंबर है और सर्दी है, बाहर भी कहीं नहीं जाना, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम होम and spend good amount of time in learning programming, right? So the idea is this, you can note down it from the screen, right? So this is the URL for the code. How when to use recursion, तो recursion उन सब में जहाँ पे आपको लगे कि एक गिवन प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक हो रही है, उन सब प्रॉब्लम्स को मैं
कंबाइन कर सकता हूँ टू गेट द सोल्यूशन फॉर अ बिगर प्रॉब्लम, वहाँ पे आप रिकर्जन यूज कर सकते हो। बाइनरी सर्च में कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट में कर सकते हो, या फिर कहीं पे आपको ब्रूट फोर्स टाइप का कुछ करना है, जैसे जनरेट पैरेंथेसिस है जहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करनी है, तो उसको हमने बिट मास्किंग से भी जनरेट किया है, सब सीक्वेंसेस को हमने रिकर्जन से भी जनरेट किया है। ठीक है, टाइलिंग प्रॉब्लम के लिए एक हिंट वीडियो हम डाल देंगे, बट अगर तुम वो भी पूछ रहे हो इसको कैसे सॉल्व किया था, कि अगर एक वॉल है उसमें टाइल्स फिट करनी है, वॉल का साइज 4x9 है, तो टाइल्स का साइज 1x4 है और 4x1 है, तो उसका मतलब ऐसी टाइल भी आपके पास और ऐसी टाइल भी है। तो आप ये सोच सकते हो, ठीक है, अगर मैं टाइल को ऐसे फिट करता हूँ वर्टिकली, और रिमेनिंग दीवार कितनी बचती है मेरे पास, n-3 लेंथ की, तो आई कैन से ठीक है इसको फिल करने के f(n-3) वेज हैं। या फिर अगर मैं टाइल को ऐसे लगा देता हूँ तो ऊपर टाइल्स ऐसे ही लगानी पड़ेंगी, तो दिस विल टेक 4 लेंथ, तो बची हुई लेंथ कितनी बचती है, n-1 होगा यहाँ पे, तो बची हुई लेंथ कितनी बचती है n-4 की, तो इट विल बी प्लस f(n-4). ये थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, तुम इसी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक टाइलिंग वाले में डीपी लगेगा, सो टाइलिंग वाले को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा डीपी से मेमोराइजेशन डाल के। ठीक है, सो इसलिए आपका टीएलई आ रहा होगा। ठीक है, सो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स आपको कुछ दिन के लिए हम अवेलेबल करा देंगे, बट ट्राई नॉट टू मिस द वेबिनार्स। ओके, ठीक है, more cases on DP with recursion। ठीक है, so thank you guys, thanks a lot, see you next time, and upcoming webinars में आपको कार्तिक भैया, प्रणव भैया और संकेत भैया भी आपके webinars लेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, ऑसम, एंड हैप्पी क्रिसमस ऑल्सो। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ग्राफ पे वेबिनार होगा, डोंट वरी। गुड नाइट, टेक केयर, okay, have good sleep and good exam। लॉन्ग चैलेंज तो देखते हैं यार, अभी आई विल लेट यू नो, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं आपके जो हिंट वीडियोस है कॉम्पिटिटिव के, उसको डिस्कस करने में, बट वी विल ट्राई कि एटलीस्ट जनवरी लॉन्ग चैलेंज डिस्कस कर लेंगे, दिसंबर वाला शायद मुश्किल है, बट जैन से कर लेंगे। ठीक है, लॉन्च पैड की भी हिंट वीडियोस दे देंगे। ठीक है, फ्लटर कोर्स इज नॉट अवेलेबल, कंपनीज के लिए इंटरव्यू कराता है सीबी, तो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोग्राम करियर बूट कैंप, जिसमें देयर विल बी सिलेक्शन बेस्ड एंट्री, और उसमें वी विल कनेक्ट यू विद द कंपनीज आल्सो। ओके, ठीक है, चलो बाय। एडिटोरियल्स अपलोड हो जाएंगे एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जैन एंड तक सब कुछ हो जाएगा। लॉन्च पैड, एलिको, कॉम्पिटिटिव और डीपी कोर्स सबका काम हो जाएगा। ठीक है, बोलो करण, वन लास्ट क्वेश्चन। HLD एंड FFT यार आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर कोई 10,000 क्वेश्चन कर रहा है, मतलब बहुत सारे कॉन्टेस्ट आप ICPC के दे रहे हो, तो बहुत रेयर है, मतलब 1000 में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो HLD FFT आप छोड़ सकते हो। डिसजॉइंट सेट यूनियन फिर भी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट डू डिसजॉइंट सेट यूनियन। एडिटोरियल अनलॉक करने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, अगर आपका स्कोर 100 है तो वो कम नहीं होगा उसके बाद एडिटोरियल अनलॉक करते हो, और अगर आपने आपका स्कोर 60 था और आपने एडिटोरियल खोला और फिर 100 लेके आए तो आपका स्कोर 60 रहेगा, तो एडिटोरियल से पहले जो स्कोर है वो फ्रीज हो जाएगा। खेमचंद, आप थोड़ा सा एडिटोरियल और सॉल्यूशंस भी देखो, एंड फोकस ऑन हाउ टू बिल्ड इंट्यूशन, राइट। तो आपको ये सोचना है कि अगर किसी और ने ये सॉल्यूशन सोचा है तो उसने क्या चीज़ें दिमाग में रख के सोचा होगा। ठीक है, जैसे आज हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए तो हमने इंट्यूशन को दिमाग में रख के किए, तो जो भी आप लर्निंग कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में वो रट्टा नहीं मारना है, गो बिहाइंड द इंट्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, 100 के बाद सबमिट करने पे 100 रहेगा।
और कॉम्पिटिटिव करने के लिए कोड शेफ या स्पॉज देख सकते हो और कोड फोर्सेस कर सकते हो. लॉन्ग चैलेंज की जगह शॉर्ट कॉन्टेस्ट आई विल प्रेफर. ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट. Yeah, hi everyone. Am I audible? Okay, thank you.
Yeah, okay. Hi everyone. So, for all of those who are requesting new questions for me to teach on the BST, after this webinar, I prepared few questions. I'll tell you those questions. It's the maximum sum path, the largest BST in a binary tree, the kth smallest element, and serialize and deserialize. How do you store a BST in a file? So, today we will cover these four topics only, and once we're done with that, after tonight or tomorrow, I'll share a Google Sheet with your all groups and WhatsApp group. You can just post your trees or data structure questions, and whatever of the question will get most votes, I'll cover the those questions in the next webinar, and the next month or next coming 2 or 3 weeks. Is it fine? If it is fine, you can put it on the chat. Yeah, okay, that is a lot of yeses. Okay, thank you. So we have 120 participants now. Let's start. So let's go to our first question. That is the kth smallest element. Okay, so first let's understand the question. What is it? You're given a BST and you're also given a K value. You have to find what is the kth smallest element in that BST. So if you see for this example, you can see right here that our kth smallest element is nothing but the third node itself. But how can you solve this problem? Uh, usually, usually the elements are given in certain data structure or area or anything. So what we can do is, let's see, if you're given an array and there are certain random numbers in it, if I tell you to find the kth smallest element, you'll either have two options. Okay, either you have two options that whether you sort this array like 1, 2, 3, 4, 5, and you can just find the kth element from the start. You can say that this is the smallest kth element. Okay, yeah. So hi everyone, just like to say that you can like see here in the shared screen everything, and we can later see the chat where you're sending me. Yeah, I know that in order is the answer, but first let's see how we approach to this answer. Okay, so if I give you an array, an unsorted array, because data can be stored in any order. So here I have an array which is unsorted. The best way to find the k smallest is, see, we sort the array, and then what we do is we find the k smallest element. But sorting here takes n of log n time. We can make it better by using a min heap. If you have studied the kth largest, if you have studied the kth largest or kth smallest element in the heap data structure, we can do it by using min heap. The complexity is slightly better. But here in our question, we are given a tree, specifically a BST. So converting an array to a sorted array took n of log n time. But in the case of BST, is there any way in which we can convert this specific BST into a sorted order of elements, and then further we can find the kth element? So yes,
just like everyone said, in order is the answer. If I get the in order of this whole BST, and then I can just find the kth element. So all of you must be thinking one thing we can do is just starting to traverse this array and find the in order. And if you all of you know the basic idea of in order, what you can do, just call for the left. Let me get another small tree. What we do is we call for the left part, we print the root node, and then we call for the right part. Okay, so one thing we can do is just traverse our BST and find the in order, and eventually store it in an array. First we'll traverse to 1, then we'll traverse to 2, then 3, then 4, and then 5. And once we have the array, what I have to do, just find the k minus 1th index to find the kth element. Okay, so this will solve a problem, yes. But if the interviewer asked, or is there certain space complexity issue, they'll ask you that no, you can't use an array. You have to just do it by solving the in order and finding the kth smallest element. There is, yeah, I'm sorry for the breathing. Okay, yes, you can get these videos later, they are being recorded. So here you can see that we are creating an array of the same length as n, which whereas n the number of nodes of BST. But what we can do is, if every time I reach to a node, let's dry run the idea of BST. I'm standing at here. I call for my left subtree. Then I call for my left subtree. Then I call for null. I'll get return from here. Once I get return from my left tree, I call for the node to get my in order value, and then I call for the right subtree, and then I return. So when I hit my first node, can I say that my work till here is done? I found the first element which will be needing in our array here. Okay, so once I get back from this one, here now 2 has completed his whole left recursion call. It will do is print itself, and then call for the right tree. So once we get to this 2, I can say that we have got our second node for the BST in order traversal, and then we'll call for the right node. Now here we'll call for the left node as null. Obviously we'll get return, and here is 3 as our third node. So one thing can I say that in every time in order, when we print our data or print our element value, it is traversing through in order, and after every iteration it is moving one step forward to completing our BST in that specific order in which we need it, that is sorted. So what can I do? Instead of printing that value in our in order, what we can do is just count it, that once we have once we have reached one, all I can do is do k minus minus, specifying that we have traversed our first element in order. When we reach 2, we can just do another k minus minus, specifying we have reached the second element. And at 3, we can do another k minus minus, specifying that we have reached the third element. Once our k reaches the value 0, I can say that
I'm at the third element. So what I have to do is just print or store or return that value. Okay, so do you get the idea of what I'm doing here, or do I need to repeat or anything? You can tell me on the chat. Okay, so let's go to the code now and let's see how we can write the code for this. Yeah, I'll be writing the code and also repeating myself as well. Yeah, whoever need to want me to repeat again, just tell me which part do you specifically need to repeat. Okay, we'll do one thing. Let's write the code and see how we can do this problem. So here's the code for in order. First, let's print the in order first. And here I've already stored an input for inputting our uh, BST. I'm sorry. Let's share my whole screen. So ask one more question. Is everybody able to here to see both my subline and my terminal as well? Yeah. Okay. Thank you. So let's start our code. First, let's see the in order code. You must have seen it many times that we have an order function, and if the root is null, what I have to do is return. And if I'm first of all the left part, then I have to print myself, and then I have to call for the right part. Okay. So we have a function here. A node is given to us, and a kth element is given to us. Let's also create a variable answer, which I'll put as global, in which eventually we'll be storing our answer, that what is the value of the kth smallest element of BST. And
in order, we need a node star root, kth value. That's it. So again, let's write a basic code for in order. If root is null, all I have to do is return. We have nothing here. If not, then we'll call for traverse in order, root at left and key value. Root at right key value. So all the work we're going to do is done here. There's no need for init. You can create it or avoid. Okay. If we reach to this part, this line number 106, it means that there is a certain work that needs to be done, that we have reached to our first node as in order, then we reach to it again, then we'll be at a second node, just like we did in the theory part. If I'm here for the first time, all I have to do is to do k minus minus. It specifies that every time I reach here, I have to do is make my k value one less. Why? Because I've covered the first value which comes in the in order. Then again I come here, covered the second value. Then again I come here, covered the third value. And every time if I do k minus minus, eventually I'll be at k0. When I'll be at k0, it means that I have traversed this specific part right here 3 times, and it means that I am at my third smallest element from starting node as an in order. Did you get that part? Okay. Okay. I should repeat myself once again so that everyone can get clear what I want. This is your node. This is your, I'm sorry, this is your BST. I came left, came left, came left. Here I'm maintaining a k value, which is 3. This is null here. We'll go back, and before calling to the right node, I will consider myself as the node, and if and this is here is the first element as we want in our in order. Okay. So if I'm here, I can say that I've finally reached to the first element we need in our in order. So I'm gonna do k minus minus, which specifies that one of my work is done. Now k value is 2, and now I'll return. Okay, once I'm here, I can say that 2 has completed its left call. Now before moving to its right call, all I have to do is to do k minus minus. Reason being that we have reached to another element in our in order. So here now our key value will be 1. It specifies that we have covered the first 2 elements in order list, and then we'll call for the right node. Now 3 will call for its left node. Obviously there is no node, there is null, and we'll return. And here we get
the third value, and again I'll do the k minus minus, and we'll get the k equal to 0. This specifies that at 1 I traverse my first value as an in order, at 2 I traverse my second value as an in order, and at 3 I traverse my third value as an in order. So here I can say that this is my third smallest element that I'll be traversing in my BST. So okay, so now I can write the code. Like every time I'll be coming here, I have to do the k minus minus. So one thing I can do, so one thing I can say that k is irrespective of the recursion call we are doing. So I'll be passing k as a reference variable. Why? Because either way, wherever we are in a recursion call, but all I have to do is k minus minus only at when we get an in order element, and we are getting the in order element in between our recursion call, irrespective of that, wherever we are in our recursion call. So if I do, and at if at any point I found that k is equal to 0, then one thing I can say that I found my answer. All I have to do is update my answer as the current root value in our tree. That's it. That's our question. All I have to do is now call for this traverse in order code function, passing the root, passing the kth element, and once it is traversed, I'll be having the answer updated. So I can do as cout answer ndl. Yeah, we can also stop recursion call once we are done with our answer. Yeah, there's a like person said this, and I think he's right. There is not that much of a need for return. Reason being, if the k values for there are people who thinking that I can write return here, right? I'm asking you on the chat. That's your question, right? I can. Why I shouldn't write return here? So my let's say you have a tree, and in the worst case, I will be traversing my whole tree. If the k value is nothing but 7, or I can say n, then I will be traversing my whole tree. I'll be coming back here, 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 here. So at this point, I will get my answer. So either way, I had to had traverse my whole BST to find the kth element. So in the worst case, either way I have to traverse my whole BST. So it wouldn't matter if I put that return statement in the if condition or not. Okay, so let's go back to the code. So now let's call a function and see if we got the right answer or not. We have an order
and we're going to call for the kth smallest element, passing root and the key value here, and putting the int k as 3. And I've already stored the input for our BST. This input here is nothing but the tree we have used for the explanation. And we have seen for our BST and the k value 3, our answer should be 3. Let's input the answer. And here's our in order for the BST, and this is our kth smallest element from the start of our BST. So hope you guys got the answer. Yeah, so yeah, everyone, I'll be sharing the code tonight, and I'll post it on my GitHub and share the code on your online WhatsApp group. You can refer all the codes from here today, from all the questions we'll be doing. Yeah, there's a guy here who said we can use the reference part. Yeah, by reference part I mean nothing. That our BST here is working irrespective of where we are at the recursion call. I have to do is once I reach here, I have to do a k minus minus because I've got my first element. If I reach here, I have to do the k minus minus because I've reached my second element. K minus minus if I reach the third element, and k minus minus if I reach the fourth element. So where we are at the recursion call, it doesn't matter. Once we reach at a point, once we yeah no I'm sorry yeah once we reach at a point, we have to do a k minus minus. So irrespective of changing it in a stack call, what I've done is passed it by reference and just do the k minus minus wherever I need to. Okay, let's go to our next question. Okay, the question here is largest BST in a binary tree. And so if you see here, there's a binary tree given to you. Why it is a binary tree? Because there exists a value in the right subtree which is greater than the root node. So it is not a BST. This whole tree is not a BST. But the question here is there any BST in this whole binary tree? And if it is, you have to return the size of the largest BST that exists in this. So can I say that this here, right here, is a BST? Why? Because all the elements in the left are greater than the root value, and all the elements on the right are greater than the, sorry, all the elements in the left are less than the root value, and all the elements in the right are greater than the root value. And this right here is also BST. Why? Because it is satisfying the property that 4 in the left hand has the whole subtree which is less than 4, and 4 in the right hand has a whole subtree which is greater than 4. So your problem statement is you have to find the size of the largest BST that exists in this. It is also BST with the size 3. Size is nothing but the number of nodes, and size of BST means the number of nodes, not height, as number of nodes. And this subtree right here has the size 7. So if you are asked, we have to tell me the largest BST, you can tell me that yes, 7 is the answer for getting the largest BST. Now let's see how we can solve this problem.
Yeah, no, it's not possible to get a BST without any leaf node. Okay, let's see a general condition and what is the worst way we can do, or what is the brute force solution for this problem. One thing I can do, that if my whole tree is a BST, then the largest BST I can get is the size of that whole tree. But to check that, we have to check whether that tree is a BST or not. What we'll do, that we'll call for this tree right here and check whether this whole tree is a BST or not. If it is a BST, then I can call for the size for this same root, and whatever the size comes out to be, that will be my largest BST. But if it is not a BST, then I have to check for I have to check for my subtree, that whether they are BSTs or not, and whether they are BSTs or not. Because one thing I can say, that it doesn't matter if my left tree is a BST and my right tree is a BST, then I should be a BST as well. It is not fixed, as we can see in this example. So I have to specify that whether my left tree is a BST or not and right tree is a BST or not. If it is also a BST, then again I have to call for the size. And if it is also, this tree is also BST, I have to again for its size. And if they both are a BST, then whatever size do we have for here, for the size left and the size right, we have to choose the maximum for it. But here in this problem, we are calling is BST function and size function for every single node. So that's a problem here. Let's do a general work again. Okay, I'm at the root node. This is my left subtree. This is my right subtree. If I could prove that whether this whole tree is a BST or not, and if it is, then what is its size? Rather than finding my BST as a separate function and my size as a separate function, we can do is make a separate recursion call or a separate function call in which we get both size as well as BST. It means when I call for my left tree, I get two things in return: whether that tree is a BST or not, and what is its size. Whether my right subtree is a BST or not, and what is its size. So, if I ask you, in your prior coding experience or in our course, have you ever studied a system or a concept in which you can store and send multiple attributes together? If you're guessing class, then yes, class is the answer. We can just, yeah, structure as well, but here we are going for C++, then I'll be using the idea of class. You can use a boolean BST for helping me to check whether that subtree or that tree is a BST or not, and of course an int size to tell me whether that tree, what is the size of that tree? I'm sorry, what is the size of that tree? Okay, but to check whether my left subtree is a BST or right subtree is a BST and this whole tree is a BST or not is not sufficient. So let's go back to our original example. I'm standing here.
I call for my left tree. It is a BST. Yes, it is a BST, and it has a size 7. I call for my right subtree. It is a BST. Yes, it is a BST, and for the size 3. But then I have to check whether this whole tree is a BST or not. If this whole tree is a BST or not, then we have to check multiple conditions. What? Yes, my left and my right should be BST. That must be true. As well as all my nodes in my left must be less than the root node, and all the nodes in my right must be greater than my root node. But here we have 7, so it is not a BST. So I can say that we have a multiple check condition. So what I have to do, that if my left BST should be true, my right BST must be true, and all the values in my left must be less than the root node, and all the values in the right must be greater than the root node. Okay, so rather than checking all the values, can I say if my left subtree is a BST, all I have to do is check whether whether the largest value, can I say that somehow somewhere I will be having my largest value as my left BST, and here I will be having the minimum value of my right BST. Then can I say that rather than checking all the values, all I have to do is just check whether the largest value of the left subtree is less than the root node. Why? Because if the largest value is less than the root node, all other values in this BST must be less than the root node. And if I can say that if the minimum value in the right subtree is greater than the root node, then all other values apart from this minimum value will be less than the root node. So we need another check. What? That our root value, that our root data must be greater than the left max, and my root data must be less than our right minimum. If all four of these conditions are true, only then I can say that my whole tree right here is a BST. Now, the question is not over yet. When I made the class, I told you that I need the confirmation whether my tree is a BST or not and what is its size. But here I'm using two more elements, max and min. It means rather than two value, I actually need four values when I make the recursion call. What? My left, my right, I'm sorry, my BST check, my size, its minimum value as well as its maximum value. Why? Because to confirm whether it's a BST, we need a max check and a min check. Okay. Do you get this part? Okay. Mostly everyone got it. Okay. So
Again, I'm standing here, and for the specific case we are considering, we are assuming that our tree right here is a BST, and we are working according to that only. So, if it is a BST, what should be the size of our largest BST for now? Can I say that if all these values I got from my left and right subtree, I have to update my values as well. So let's talk about our current node situation. Okay, let's talk about my BST check. Yes, if these conditions were true, then I can say that I am a BST. Second check, what should be my size? If I'm a BST, can I say that whatever is the size of the left BST plus whatever is the size of the right BST plus my node value will get me the size of my new BST formed. But if you see, we have solved, yes, I'm a BST. Yes, now I have my size as well, but I have yet to decide what my minimum and my maximum, because that further will be used by the node that called me for recursion. Am I right? Like I'm standing here, but there will be some node right here which has called this function, and is expecting all those check from this node as well. That is BST, size, minimum, and maximum as well. We are calculating for this node only, but this node also going to return some values to this node right here, which is called by this one. So we have to our update minimum and maximum as well. Okay, let's go the minimum and maximum part. Okay, guys, this is not L.BSC. This is just left dot size. Sorry, I just rewrite it. It should be left dot size plus right dot size plus 1. Okay, so let's order minimum maximum. Okay, so there must be some tree right here. There must be some more subtrees right here, some more subtrees right here, and some more subtrees right here. I'm here. I've called my left tree. I've called my right tree, and I've right here proved that my whole tree is a BST. Then what should be my maximum value? Can I say that whatever is the maximum of the right BST is now my maximum value as well? And whatever is the minimum value of the left subtree, that is my minimum as well. Can I say that?
But I'll repeat myself that I'm standing here. I made the regression call. For left, it is a BST. For the right, it's a BST. And my whole tree is also, yeah, haha. Somebody corrected, right? Thank you, guys. Okay. So this is my BST. This is my BST. This whole tree is my BST. Then obviously, whatever here is the maximum of right, that should be my maximum as well now. And whatever here is the maximum minimum of left should be my minimum also. But what if we have a situation like this? For here, my minimum is this, and my left minimum is also my minimum is whatever the minimum of my left tree. But I don't have a right tree here. So can I say that if I've already proven that this whole tree, if this whole tree is a BST, then the maximum value will lie on the right side, but there is no right. So I myself is the maximum value. Can I say for this case, the maximum value is nothing but the root data? Okay. And if I come for this case as well, again we have proven that it is a BST, then is the maximum of whatever is the maximum of my right is my maximum as well. But for the minimum, we don't have a right. We don't have a left. I'm sorry, we don't have a left here. So can I say that if I'm the root node and all the values in my right are greater than my value, then the minimum value in this whole tree is nothing but my value, right? Okay, so this can be root data depending on the condition, and this also can be root data depending on the condition. Yeah, guys, we are coming to the part where the tree is not a BST. We are coming to that part. Firstly, like firstly, we are proving what will happen if the tree is a BST. If not, then we'll see. Okay, so we have completed all four possibilities for the part BST, size, minimum and maximum. Okay, okay, we're at this call now. Now, when we made the left call, we made the right call. This is right, left. Now, just one thing. I will ask you if any of these four condition, if any of these four condition is false,
Will my tree be a BST? I'm asking you this as in chat. If any of these four condition is false, will my tree be a BST? No, it won't be a BST. I'll try my best to make my speed as 1.5. Okay, so I can say that all these four condition, I'm not writing all those four condition again, but I'm just marking them. If any of these condition are false, then my tree is not a BST. So what will be in that case? This tree right here, I have this tree right here. Okay, it's a BST. It is a BST. Now I'm starting right here, and any of these, if this condition is false, then I can say that this whole tree is not a BST. But when I made the when I made the recursion call to left and right, I still got the three values. That is the BST, the size, the minimum, and the maximum. And same for the right. The SBST check, the size, the minimum, and the maximum. Can I say that if okay, fourth condition here is that both the trees should be BST. Uh, okay, I'm sorry. These are two separate conditions. These are two separate conditions. There should be a and between them. Okay, here's an and here's an and. I'm sorry. Okay, so if this whole tree comes out not to be a BST, so what I can do is just ask my left tree for its size and ask my right tree for its size. And can I say now again, I have to fill all the four values for myself as well. My BST check, my size, my minimum, and my maximum. So I am not a BST. One thing that is true. And now again, I'll ask you this question in the chat. If I am not a BST, then does the concept of minimum and maximum matter anymore? Yeah, I think most people again got this. Yeah, it wouldn't matter because the minimum maximum concept is only applicable for BST. We will not update the minimum and the maximum value because there is no minimum and maximum value in this case. All I have to do is update BST and size. BST will be false because it's not a BST. What should be my size? Can I say that whatever I got from my left tree and whatever I got for my right tree, if I have to choose between them, shouldn't I just choose the maximum value out of both? So if you guys got this idea, then we are done for the theory and we can go to the code. I'll just let me just give you an example for this condition right here. Let me just give you an example for this condition right here because let's assume I'm standing here.
Yeah, I'll be writing the codes. Just give me 2 minutes and I'll get to the code. So, okay, so I'm standing here. I made my call to the left. I made my call to the right. I'll have the BST as true, size as 7, minimum as 1, and maximum as 6. I'm sorry, maximum as 7 right here. I made the call to the right. I got the BST as true, size as 3, minimum as 7, and maximum as 10. So my right tree should be BST. Yes, my first condition is true. My left should be a BST. Second condition is also true. My left maximum, my left max must be less than my root value. So max here is 7 and root value here is 10. Yes, 7 is less than 7 is less than 8. Then again, this third condition right here is also true. But let's come to the fourth condition that so let's come to the fourth condition. Yeah, root is the 8 is the root node. Okay, so again the first condition, second condition, third condition. Now it come to the fourth condition that my right dot minimum should be greater than my root value, whatever my root dot data contains. So my right minimum value here is 7 and root dot data value is 8. So this is false. So my tree right here is not a BST. So what I have to do, I have the size of the left, size of the right. What I'll be doing is just selecting the one which has the maximum value. So that's why I wrote here, whatever is the situation, I'll be getting the maximum value out of left and right. Okay. Shall we come to the code now? Okay, just like we saw, we need to make a class which contains a boolean BST, int size, int max, and int min. So first, let's make that class. Now let's make a function to detail largest BST. Yes, we can have a starting member, but from the code we are trying here, we don't need a starting member right now. Okay, so of course we have a root node. Let's make check for the left and the right recursion call.
So here now we have the values from our left and the right recursion call. Let's check all our conditions. What is our first condition? Or we can do in the else state way. Let's see if our problem or if our tree is not a BST. If it is not a BST, then left detail dot BST false or right detail dot BST is equal to false or root dot data is less than the left dot max or the root dot data is greater than the right dot min. I see right here. If my left tree is false or my right subtree is false, lies BST is false, or if my value is less than my left max, or if my root value is greater than my right value, then either way, yeah, hi everyone. I don't think this will be recorded in your online course, but yes, it will be recording. It will be recorded on the cloud and you can access it anytime you want, but not maybe in your online lectures. So this condition right here is containing not a BST. Okay. If it is not a BST, what I'll do is just I'll make the tree detail val. I'll make a variable in which I'll be storing my current node's situation. I'll write val dot BST is false and my size should be nothing but what is the value of my left max, I'm sorry, left size, and what is the value of my right size. You have to find the maximum out of it and just return val. Uh, okay, yeah, Chandrasekhar, I just want to tell you that you're telling me that root dot data should be greater than the left max. This is for the condition when we want to check that if it is a BST. Here we are seeing if it is not a BST. So if this condition is true, this condition that root dot data is less than left max, then it is not a BST. That's why we make this check. So if I'm at line 143, it means I didn't go to this if condition. This specifies that my tree is a BST. So let's do that again. Let's mark our BST as true and update our size as well. Should be nothing but left detail dot size plus right detail dot size plus 1. Fine. Now let's update the minimum and the maximum value. And if we remember from our theory part, are conditional. Yes. So let's see what's the condition. Val dot minimum. If my root dot left is not equal to null, it means if I'm starting at the root and my left value is not null, there is a certain subtree in my left, then whatever is the
minimum of that subtree should be my answer. But if this condition is true, then I can say that the minimum value is nothing but the root data. Guys, I just want to ask, is line number 146 clear? Line number, specifically line number 146. So if it isn't clear to anyone, what I can do is make a few lines of code and make it simple for you. If right, if root dot right is not equal to null, then val dot max should be nothing but the right detail max. If it is, then val should be nothing but the root data itself. Anyone who didn't got the idea of 146, I've written the same code as an if else here. So I'll make it simple for you. So that's it. Now you can just return val. Now we have just one thing left, that is the base condition. The root is null. We'll be returning val. Okay, so let's see, if we have a root value, what should be the size of it? Definitely 0. For BST, what should be BST? True. Now let's talk about the minimum and the maximum value. What should be our minimum value? Guys, let's go to the theory. Maybe it'll help you to decide. Okay, if I'm right here, then my minimum value is whatever is in my left. I have a specific range. If I am at the root node, I don't have a specific left or right. I am the minimum and I am the maximum value if I am standing alone in a tree. Can I say that? Just let me open up your chart. Yeah. Can I say that a single element, a single node in a BST is itself a minimum and itself a maximum value? Okay. Now let's talk about a null node. Does a null node have any boundary condition for its minimum? No. Does a null node has a boundary for its maximum condition? No. It may be nothing but the int max value, and int max should be nothing but the int min value.
Now our code is complete. Let's run now. Okay, this is okay. See this input here. This is the input for a BST we have used in our starting condition, and you can see our answer is nothing but this is the highlighted input for our tree, and I've called yes, the code will be available. I'll share the GitHub link. I'll share the GitHub link for all the code we are doing in this webinar on your online groups and everywhere. Okay, so we are getting this tree detail object as return in the largest PST function, so I have to catch it in there only. Tree detail var equal to largest BST in a BT root value. And I have to do is cout var dot size. And whatever stored in this size function should be my answer, should be the maximum BST that you can store. Line number 146. Okay, 146. I'm sorry. Varun Manchanda, I have said you have to repeat the line 146. There is nothing here in 146. Also 35 and 155. Okay, 155 and 135 and 136. Okay, let me come to first. Let's come here. Okay, just like I said here. I'm sorry, just like I said here. If my left node is null, then I have to put root data in it. If it is not null, then whatever is the minimum of left should be my minimum as well. So I've written the same exact same thing here. If my root null is not equal to null, then my left minimum is the answer. If it is null, then my data is the answer. And for the 135, 136 here, so if I ask you most basic question, when you start searching for a minimum value, if there's an array, if there's an array, for all those, this is specifically for all those who didn't got the line 135 and 136. It is an array, and you want to find the minimum value in this whole array. Then at what value should I initialize my min variable? Int min or int max? Int max, right? Because we don't know what data we're going to get. And if I have to find the maximum out of all this array, and I have a variable max, from which value should I update it? Minimum, like int minimum, or int maximum? Definitely minimum, because all of the values I have to check is the maximum value. If we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 here, I have to find the maximum value. Maximum value should be 7.
But okay, someone says I'm embarrassed now. Okay, then I should move on. Sorry. Now let's run our code. You all can see my terminal, right? Yeah, okay. I have the input. This tree, this input right here is the same tree we drawn from the start for this question. And now we, okay. So we have an error. Can anybody tell me what is the error? We haven't made the members public. Okay. Now we don't have any error. Let's run our command. Copy our binary tree and see the answer. Yeah, the answer right here is 7. So isn't that the size of the largest BST we have in our tree input right here? Shall we move on to the next question? Okay, the next question is again slightly a tricky one, so I want you to pay attention. The maximum sum path. The question here is, what is the value of the maximum sum path in this binary tree? Yes, it is a binary tree. Can I say that this 6, then this 6, this 8, and this 10 is the maximum sum path I can get in my whole binary tree? So 30 is the answer for this case. Let's see how we can solve it. So, guys, if I have to at the end find out the maximum value or the maximum sum, can I make a global variable in which I can store the maximum output? Okay, so yeah, I'll be making an int max sum, and this time, if you know for sure, I'll be initializing it with the value nothing but int min. Because the maximum value will initialize our variable at minimum. Okay, so right here the answer is 6, 6, 8, and 10. If some of you think that this could have been also an answer, but the length is not the solution here, the maximum value is. So right here 3 plus 2 plus 6 plus 8 plus 10 is 29, but 6 plus 6 plus 8 plus 10 here is 30. So we'll choose the maximum value, the maximum path. Not the maximum subarray, the maximum node values, the maximum set of node values. Okay, so let's make a general tree and see how we can approach this question. Okay,
Guys, I'm standing here. I'm starting in my root node. This here is my left subtree. This here is my right subtree. There's a negative value here, and there's also a negative value here. So can I say that the negative value at the ends, specifically saying again, the negative value at the ends won't be contributing in my maximum sum path. Yes, because it's at the end. Yeah. So if I'm standing right here, I have the value 6, 2, 3, 6. If I make the recursion call for the left and I make the recursion call for the right, asking my left function to give me the maximum sum path from my left tree and asking my maximum sum path from my right tree. What value here I'll get? 5. This is the maximum path right here. And from 6 will from right we'll only get 6 because this is the only maximum path. This path here is negative, so we won't consider it. So we'll get 6. Is it clear till now? Okay. So now one thing we can say that out of both of these, which one should I choose? And obviously we have a max path, max sum or max path, any variable you want, which is at int min. So can I say that I can this whole path right here, can this whole path right here, can it form a maximum sum path? It means 5 from the left plus my root value, that is 6, plus from the right maximum subpath. If we have this tree, yeah, the guy Piyush Kumar said no until it's the root node. Nice, Piyush, you have got the idea. Okay, so if this right here, the green part I've covered, is my only tree, then can I say that 5 plus 6 plus 6 is my maximum sum path? Maximum path. Can I say that? I just need yes for everyone so that I can further continue because it is slightly a tricky question. Okay, for all those who are telling no, I'll repeat myself and try to make it better. I started from here and I made the left recursion call and the right recursion call. Okay, so when I made the left recursion call, this whole tree right here, this whole subtree right here becomes my problem. Okay, so now I'm at 6. Now I'm at the index 6. I'm sorry, node 6. 6 further made the left recursion call and got the maximum value as 5. 6 further made the right recursion call and got the value as 6. So I can say that this 5 right here passing through my 6 and coming down to the right subtree. For
this subtree only, again I'm telling you, for this subtree only, can 5 plus 6 plus 6 be my maximum sum path? Okay, so because others are negative, yes. Okay, so I think everybody got it now. So yeah, this can be my, unless it's a root node. Yeah, I'm getting to that part. Yes, it is not a root node, but if my problem is, if it is this level only, if it is this level only, at the left part only, then this is my maximum path. This is for the subtree. Yes, this is for the subtree. So do one thing, check if my current max path value is less than the left left max plus root data plus right max. Can I say that this function, this equation right here, should be my check whether the current value I'm having as my maximum sum path is better than that global variable I'm having. Guys, you're asking me what if the 6 is negative or the root is negative. We'll come to those examples as well. Just tell me for now, did you understand it? So that we can come further to that part. Is this equation to clear everyone? That if I got the better option from a left max plus root data plus right max, just update my maximum value. Okay. So I'll draw my tree again. So the it's so guys, till this point here, we got the maximum path as, we got the max path as 6 plus 5 plus 6, that is nothing but 17. Okay, that is this path. But my answer is not complete yet. This is my whole tree, and I've only solved my problem for my subtree. Can I say that path, like I've already checked what should be the value of the maximum path if that path is passing through my value. If it is passing from my left subtree to my right subtree through me. I'm asking you guys, is that part here in the written red color is clear? Okay, for anyone who says no, I'm standing here. Call for the left subtree, they got me 5. Call for the right subtree, they got me 6. So can there be a path passing through my left, coming to me and then passing through my right? Can there be a part if my problem lies here till here only?
Yes, there can be a path. 5 plus 6 plus 6. Left, root, right. Okay. But that is only till this half. We haven't connected ourselves to the rest of the tree, right? The whole tree is right here. We haven't connected ourselves to it. So if I have to choose, if I'm standing right here at 6, I have to choose if I have to pass value to 8. Should 8 access my left? Should yeah. Should 8 access my left right part? Yeah. Should 8 access my this path, this right path, or should 8 access my left part? Guys, I'm standing at 6. Okay. And I'm telling you that either 6 could connect from here to itself, or 8 could connect from here to itself. Which option should 8 choose, or which option should I give it to 8? The right one, or in other words, the maximum one? So, can I say that, oh, pen, let's write pen. So, can I say that 6 will be returning its respective maximum value to 8? What should be it? It should be nothing but the max of left, comma, right. Left is 5, right is 6. Maximum is the value 6 plus plus the 6 value having itself, because it can't pass through the node. It have to pass through the node. So it'll have it'll first use the value 6 right here, and then could go to the root node, and then move to 8. So can I say that at the end my equation should be not equation, but the value. There's a sixth node. It is returning its value to the eighth node. What should it return? It should return the maximum of its left max path, obviously, comma, its right max path. Means either 5 value or 6 value plus value itself. Why? Because either way, if I choose this one or I choose this one, I have to pass through 6. So guys, if we're done with the theory, can we go to the code? Okay, let's move to the code now. Guys, once I'm done with the code, I'll explain the example where our root is negative. Okay.
Once I'm done with the code, I'll explain the example when the root is negative. Maximum is starting with the int min. Let's go to our maximum path sum. We have the root node here. Okay. So let's see the base case. If our root node is null, do we have a path? Do we have any value? Return 0. Okay. Now let's find the left maximum value and the int right maximum value. Sparse the max path sum. Okay, Vivek is asking me how many questions will you do today. So Vivek, this is the second last question. After that, I'll be solving just one question, and it is pretty simple and more of a theoretical topic, which you'll face in your maybe facing your interview. It is a famous LinkedIn interview question actually, but it's pretty simple. Okay, so uh, what if left path is maximum? Should I? So I'm sorry. What if left maximum is negative? Should I choose a negative path, or should I even consider a negative path? Yes. Someone said it. Ayush Jain said it. Ignore it. That is the right decision to make. You should ignore it. It means left max should be nothing but the maximum of 0, comma left max. If the value of left max is negative, it will be converted to 0 because there is no contribution to the maximum path for a negative value. And similarly, I can do this for the right max as well. 0, comma right max. Okay. So if we have done with the converting that or ignoring that negative part, what I have to do is just compare the maximum path, compare our global variable, choose the max of maximum path, comma left max plus root data plus right max. That's it. If it is to be updated, it would have been updated. If it's not, it would have been the same. However, if the max path is updated or not, but what my parent call or what my previous recursion call expect from me that I should return my maximum path out of both left or right, including my value because both of these paths will be passing through me only. So is the code clear to everyone? And again, I've also stored that same the tree right here that we like tree minus 11 minus 7 6 8 10, which has the maximum value as 30. I've already stored the input for it. And don't worry guys, I'll be uploading all these questions to GitHub and I'll be sharing the link for you so you can review it, and all the input values, all the comments are there only. Okay, so let's run our problem.
Okay, I haven't called the function. First, I'll call the maximum sum path function with the root value, and then I'll be printing the maximum sum path is nothing but the max path variable value. That's it. Let's go to our compile it, run it, copy and paste the input, and 30 should be our answer as we have seen here. Let's see. Yes, the maximum sum path is 30. And guys, if you want, you can submit this code also online. It will pass all the test cases. I've already tried it. That's what I'm saying. Or not this specific code. From all the previous code we have done, you can all try and submitting here. I'll also share the link from where I've saw these questions and tried submitting where all the test cases passed. I'm sorry, little weak with English. And you can uh, which question online? Yeah, Dinesh, I'll be sharing the link in the GitHub as well, from where you can go and submit the code to check whether the code is right or not. Please dry run it or briefly repeat the process, Anand. Okay, should I make a dry run? I'm asking you, rest of the guys. Should I do a dry run? Okay, no. Okay, people are saying yes. Okay, one thing I should do, I'll make a small tree so I can make a quick dry run. Just a small tree. Okay. Guys, if it is possible, I'll also share, yes, and with the negative root as well, just like Heman said. And I'll also share I'm sorry, I'll also share this OneNote and this all the approach we have discussed theory. I'll also share this as well as a PDF or anything. So let's make a tree. -8, 6, 4, -7, 11. Okay, guys, please come back to the chat and tell me what should be the maximum sum path for this tree. Maximum sum path for this tree. 11. Yeah, nice. Really nice. Yeah. The answer should be 13. Why? 11 -8 plus 10. 13. Here in our maximum path, in this example, we are considering a negative value and that to a root. I think this example should be sufficient enough to explain the code, right? Because it does have a negative root as well as it is containing that negative value in our whole maximum sum. Okay, let me draw another one because all the okay. I'm here. I'll make the recursion call for the left, recursion call for the left, recursion call for the left. Obviously, there is no path. Obviously, there is no path, and I have a maximum path variable, which is now currently now int min. And guys, there is 11 as well. I haven't created. There is 11. Okay, so I'm right. I'm right here. Can I say that left max plus right max plus my value
Is it maximum? Then my max path. Yeah. So can I update it? Can I make it 2? Nothing but 4. Okay. Then I go left and pass 4 as my maximum path, because still here 4 is the maximum value, and 6 will make the right recursion call. It will get -7 as the maximum path. So what we do with the negative maximum path, we just convert it to 0, right? So I'll get a 0 in return. What I have to choose is left maximum, right maximum, and my value. That is 4 plus 6 plus 0. Is it better than the previous maximum path? Yes, I will update it to 10. So it means till this subtree only, the maximum sum path is nothing but 10. And obviously, this here is your maximum sum path. Okay, so when 8 will make the left recursion call, what value it will get in return? It will get nothing but the value 10. Are we clear till here? Because it's been pretty much 2 hours, and if the lectures are long, we don't like get that much of an interest or motivation to work. That's why. So yeah, guys, we'll be winding up in like just more than 10 or 15 minutes, and I'm right here. This is a left call. We get our left maximum as 10, and I'll go the right. Obviously, there is only one element. This here is the only maximum path, so we'll get 11 as our right maximum path. So now what again I'll test is my left max plus my root value plus my right is better than the current sum path. Yes. Why? Because 10 plus -8 plus 11 is 13, and it is definitely better than 10. So can I say that I've got the right answer? Guys, shall we move on to the next problem? Okay. So this is a final problem, and it is pretty simple, but it's been asked in, from what I remember, asked by LinkedIn as a LinkedIn interview question. More of a theoretical topic. If you have a tree, from what we have studied in our, or either in our college, in our classroom, in our theory, to store a binary tree, to store a binary tree, we need a pre-order and a post-order, or a pre-order and an in-order, or a post-order or in-order. Like, we have three traversals. In general, we have three traversals, and we need any of these two to store our, or to create our tree. Okay, but do if I ask you, yeah, I'm sorry, it was my mistake. Pre-order and post-order. Thank you, Vikram. Okay, so we need a pre-order and an in-order so that we can create a binary tree. And sometime, if I have a data, if I have a data in the form of BST or a binary tree,
I have to store it and transfer it someone somewhere else. So should don't I need a certain nomenclature or a certain process in a way such that I could store all those values in such a way so that if I again call a function or again call that stream of data or that nomenclature we are using, I could convert that tree again, just like here. Like this is my binary tree. I call for certain function. I call for certain function. It converts that like tree into some certain stream of data or in a file. And if I read that file, I can draw this tree again. So one thing you do is just store a pre-order or a post-order, and I'm sorry, pre-order and in order, pre-order and an in order on order here, and we can store again. We can make that tree again, but the interviewer will ask you, no, you just have to use the pre-order. What will you do? That is the problem. Okay, so okay, Vikas is asking, could you please repeat the problem? Okay, hi Vikas. The question is, you have a tree. You have to store its value or its traversal in such a form so that if I get those value, I could convert and create that tree again. And as we can know that for a tree, we need a pre-order and a in order to make a binary tree. But the interviewer asks you, or the situation is, you can't use external order. You can just use one order. Just use the pre-order. So how you can store that tree into a pre-order, and just using that pre-order, you can create another new tree. So I'm sorry, the same tree again. That is the problem. Okay. So this is a problem. So let's see the pre-order. What should be the pre-order? One, left call. Two, left call. Three, left call. Return. Uh, from here. Four, return, return, call. Five. So if I give you a pre-order one, two, three, four, five for this for sorry for this tree, you can't decide what exactly is its structure. Piyush Kumar is right, because for situation we don't know if 2 is a root node, if 3 is a root node, if 4 is a root node, or if 5 is a root node. This tree will have the same pre-order. This tree will have the same pre-order, and this tree already has the same pre-order. So one thing I can say that the only
pre-order, the only concept, guys, you know the pre-order, right? Node, left, right. So node, just print the node, move to the left. Now this is the node, move to the left. This is the node, move to the left, and move to the node. This is the left, move to the node. This is the left, and then return, 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 return. You all are familiar with the like the idea of pre-order, right? Everyone is familiar with this code. Uh, Guys, everyone is. I'm asking you. Please tell me. Everyone is familiar with this code, this idea of pre-order, right? Okay, and can I also say that this first tree, this second tree, and this third tree, all of them has the same pre-order as one, two, three, four, five. Can I say that? Okay, so one thing we got that the only pre-order storing is not possible or is not applicable for just creating or like building the same binary tree again. Why? Because we don't know. Okay, because in this situation, 4 and 5 both are leaf nodes. In this situation, 5 is the leaf node. In this situation, 3 and 4 are the leaf node, and 5 as well. So can I say that do one thing? Just store the value of the null node, the null node below 3, below 4, below 5. Store all these null node as -1 or null so that you can know when to stop. As in, if I have this, I'll be making a small tree. So this is the tree. This is your this is your null. This is your null. This is your null, and this is your null. So it's like I'm sorry, its pre-order is nothing but 1, 2, 3. But again, we don't know what is the leaf node, what is the structure of this code of this node of this tree. So do one thing. Let's store while traversing, while while traversing to the tree or in this tree, just store the null values as well. We are standing here. Move to the left. Here's your first node. Now we hit the 2. Here's your second. Move to the left. We got our first null node. So do one thing. Write null. Or you can do -1. Your choice. Let's do null so that it is more clear. It'll go back. Call for the right tree. It again face null. Then we'll go again gonna write null. Go back. Then we call for 3 to the left. We again face in the null. Store the null, then again the null value. Why? Because I will be calling here, then return, then return. Now this pre-order and this pre-order has one difference. What? Even the root value, even the position or the orientation of the null value or the leaf null order is also stored. So Himanshu Maurya asked, can we also send the file through the level order? Himanshu, I'll discuss this in 5 minutes. Just give me 5 minutes, okay? Okay. So can I say
If I have this, if I have this set stream of data or this order as an input, what is the first value of the pre-order tells you? That is, it is the node. So now let's create, guys, I'm telling you that this here is a pre-order, nothing else, but with the root, with the, sorry, with the root, with the null values as well. Okay. The first node of the pre-order is nothing but the root node. So we put it right here. And then the second value, the second value of the two is in nothing but in the left of the one. We go to two. Now we hit the null here. It means we are done for this node on the left part. All I have to do is to attach null and return. And then pre-order we move from node to left to right. We come here and we go to the next node. We again face a null. We got the null. We return from here. We return from here. Then we call for the next route where we got the three. We created the three and then we called. Now here for the node and call for the left. I'll go to the left. When I call for the left, I got the value as null. I stored null here, and once I return for the from the null value, call for the right, got back, and then return. So can I say that when I got 1, 2, 3, when I got 1, 2, 3 as input, I wasn't sure of the structure, but when I got 1, 2, null, null, 3, null, null, I understood that yes, it would have been in this orientation only. So, guys, I'm going to ask you a simple statement. You just tell me, did you understand or not? If I give you a tree and you traverse it as a whole, if you just print an extra null when you face your root as null, wouldn't our question be solved? If I've given you a tree, you can print its pre-order. It's pretty simple. I'm asking you, if I get if I get a root node as null, can I do is just print a null right here and be done with our process? Shall we move to the code? Okay. So guys, the code is pretty simple. Pretty simple. Void serialize. You have a node. I should just copy and paste it. Why should I waste time on it? Okay, this should be. And also going to do a cout
Okay, not this. So let's print a problem. We serialize root. So this is the code right here. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Guys, just one question. If I input a tree, this right here, I'll just this right here is my input tree. This minus one is referring to nothing but the null values. Nothing but the null values, right? If you watch Pratik Bhaiya's initial video of binary tree, these are nothing but the null values, right? Specifying that you don't have to create a further subtree uh, downwards to these node. Wouldn't if I call for this serialized function and pass this input, shouldn't I get this output only, where minus one is null? That's it. And if I convert this null to again minus one, if I convert this null again to minus one, it is nothing but my input. It means that I input my tree and I have created a function which returns an input, which and I can store that input anywhere and create that same tree again for using that same function and that same input stream of data. First, let me print. So let me make sure that this is the output only. So I copy this code and call for this should be my okay 1 2 3 1 2 3 minus 1 null null 4 4 and to make it even easier to understand I can write minus 1 here so that if I pass the input and I'll get the exact same output. Oh, I'm sorry. This is due to the space. So guys, can I say I got the same input as my output? That I input a value, I created a tree, and then I got the exact same orientation in which I created that tree. So guys, okay, thank you, Ayush. I'll be coming for another webinar in 2 or 3 weeks, and I'll share a doc on your online group so that you can post. Or I can ask you guys, do you want further questions on trees only, and we can move on to another data structure? So yeah, DP will be taken by Sanket. Sanket will be handling your DP. I'll okay, DP on trees, DP on graphs. Yeah, I'll try advanced question. So DP, maybe try more advanced question on trees. Yeah, Vikas, I'll provide the code. I'll will do more advanced question on trees because DP will be taken by Sanket Bhaiya, and graph I think will be taken by some other mentor, or if there is no mentor for advanced or graph or anything, then I'll take the graph as well. Okay. So thank you guys. I'll be ending the webinar, and
I'll be posting your code by tonight or tomorrow morning, and I'll be sharing a doc for further questions if you want to ask for. Is there any specific list for the questions you want to ask? And whichever question got the maximum vote, I'll do this in the next webinar. Thank you. Danish, we are going to do 3 problems. And I hope that you all are comfortable with how we make graphs using adjacency list, and you are familiar with the algorithms like BFS and DFS. Okay. Athar, we'll be writing codes as well. We'll discuss the algos first, and then we'll write the code for those algos as well. We'll be submitting problems on the platforms as well. We'll be practicing one problem of lead code, one problem of HackerRank. Okay, let's just wait for 1 minute more, and then we'll start. No, Pavan, we won't start from the basics of graph. I'm assuming that you guys are familiar with the basics, and I'll be just going through the questions. Yeah, Ajit, I'll just let you know when we'll start, which all questions we are going to discuss today. I hope you all are with. Okay, so I think we should start now. So let us begin. I hope you all have used one application which is called as Splitwise. ठीक है, तो आप लोगों ने Splitwise एप्लीकेशन को यूज किया होगा आई गेस. तो सबसे पहले हम वही चीज देखते हैं कि Splitwise एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. सो दिस इज an algorithm for Splitwise only. So let us see what this problem says, and इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं. So it says, assume करो कि we have 3 friends. ठीक है, so let's say we have 3 friends, P0, P1 and P2. ठीक है, तो let's say P0 को P1 को पे करने हैं 100 रुपीज, P1 को P2 को पे करने हैं let's say 500, and P0 को P2 को पे करने हैं 200 रुपीज. सो अभी हमें दिख रहा है कि अगर करंट सिनेरियो में if these people will exchange the money they need to pay each other, so उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि it will take 3 transactions, right? एक ट्रांजैक्शन P0 ने करी, एक ट्रांजैक्शन P1 ने करी, फिर एक ट्रांजैक्शन P0 ने करी. बट इसमें क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? आप लोग बताओ, इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू कि इसमें ट्रांजैक्शन जो मिनिमम हो जाए. करंटली आई एम able to see that there are total number of 3 transactions. Is there an optimized way जिसके थ्रू हम इसको थोड़ा बेटर कर सकें? तो there are total number of 3 transactions. हाँ, तो ऋतिक has given the correct answer. So let us see कि इसमें हम इस प्रॉब्लम को बेटर कैसे कर सकते हैं. तो देखो, इस प्रॉब्लम को बेटर करने का वे इज P0, P1 एंड P2 3 लोग हैं.
तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 रुपीज टू P1, ये क्या कर सकता है, P0 P2 को 300 रुपीज दे दे और P1 P2 को 400 रुपीज दे दे। तो जो अमाउंट हमें देनी थी विच इंक्लूडेड 3 ट्रांजेक्शन, अब उसको हम 2 ट्रांजेक्शन के थ्रू कर पा रहे हैं। ओके, आई जस्ट repeat it. So this problem is called as splitwise problem. So the problem is this, कि हमारे पास कुछ पर्सन है और इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो P0 P1 को दे रहा है 100 रुपीज, P1 P2 को दे रहा है 500 रुपीज, P0 P2 को दे रहा है 200 रुपीज। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मुझे दिख रहा है कि ये ट्रांजेक्शन अगर मैं इस वे में करूंगा तो हाँ, इस वे में जितने पैसे जिसको देने हैं वो दे देगा। बट क्या कोई पॉसिबल वे है कि 3 ट्रांजैक्शन के बजाय मेरा इससे कम ट्रांजैक्शन में काम हो सकता है? हाँ, तो हमने ये देखा कि अगर मैं इस चीज को 3 ट्रांजैक्शन के थ्रू ना करके 2 ट्रांजैक्शन में करना चाहूं तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। P0 P2 को 300 रुपीज दे दे, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस 100 टू P1, ये सीधे सीधे 300 P2 को दे दे और P1 इसको 500 ना दे के 400 दे दे। तो इसमें क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन ये वाली कम हो जाएगी। तो नाउ वी आर रिमेन्ड विद ओनली 2 ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब 2 ट्रांजैक्शंस लग रही हैं, पहले कितनी ट्रांजैक्शंस लग रही थी? 3 ट्रांजैक्शंस। तो आई होप कि प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नॉट एग्जैक्टली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकिल से तो कुछ नहीं होगा। मीन्स यू कैन टेल की, but I need to minimize the number of transactions. Basically, Arvinder says greedy, but you need to tell me what. Calculate loss and profit. Yeah. Dhanesh says the correct answer. So let us see how that thing can be done. तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो let's do one thing. हम हर पर्सन को कितने पैसे देने हैं या फिर हर पर्सन को कितने पैसे लेने हैं, इस चीज को फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम के अंदर। सो लेट अस सी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम ये देखते हैं कि P0 को टोटल कितने पैसे देने हैं। P0 नीड्स टू गिव 100 रुपीज, वो P1 को दे रहा है, 200 रुपीज वो P2 को दे रहा है। तो टोटल अमाउंट जो P0 को पे करनी है इट इज इक्वल टू 300। तो मैं लिख सकता हूं कि P0 के पास से 300 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से अब मैं देख सकता हूं P1 का क्या केस है। तो P1 को देखो, P1 को 100 रुपीज मिल रहे हैं एंड P1 ने 500 रुपीज देने हैं। तो नेट अमाउंट P1 के पास कितनी रह जाएगी? -400। 500 उसने दे दिए और उसको 100 मिल गए। इसी तरह से P2 के पास क्या सीन हो रहा है? P2 के पास हो रहा है केस 500 उसको P1 दे रहा है, P0 उसको 200 दे रहा है। तो टोटल अमाउंट P2 के पास कितनी आ रही है? 700। ठीक है, ये वाली चीज सबको क्लियर है? तो अब क्या होगा, वी हैव दीज अमाउंट, जो किसी पर्सन को अगर नेगेटिव में अमाउंट है तो उसको उतनी अमाउंट देनी है, किसी पर्सन के पास अगर पॉजिटिव में उतनी अमाउंट है तो उसको उतनी अमाउंट लेनी है दूसरे पर्सन से। सो लेट अस सी इस वाली चीज को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने ये नेट अमाउंट निकाल ली, हर पर्सन को कितनी अमाउंट लेनी है, कितनी अमाउंट देनी है। सो आई कैन राइट इट डाउन, -300, -400 एंड 700। दिस इज द अमाउंट जो हर पर्सन को देनी है या फिर उसको लेनी है। सो अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर अमाउंट को लेट अस सॉर्ट दिस अमाउंट। तो सॉर्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, -400, -300 एंड 700। वी हैव अमाउंट्स जो हर पर्सन को किसी को देनी है या फिर उससे लेनी है। वी हैव दिस अमाउंट, राइट? इतने स्टेप सबको क्लियर है?
just let me know if this thing if this much thing is clear, then we'll move forward. ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, देखो हमें मिनिमम ट्रांजैक्शंस निकालनी है, राइट, कि मुझे ये टोटल 3 ट्रांजैक्शंस ना करनी पड़े, उसके बजाय मेरा 2 ट्रांजैक्शन के अंदर ही काम हो जाए. सो आई नीड टू डू समथिंग लाइक दैट. तो मुझे क्या करना होगा, देखो हमने हर एक पर्सन को कितनी अमाउंट देनी है, कितनी अमाउंट लेनी है लिख ली. सो वी हैव दिस थिंग विद अस. तो अब इस वाले पर्टिकुलर चीज का मैं कैसे यूज कर सकता हूं, उस चीज को समझते हैं, राइट. तो मिनिमम ट्रांजैक्शन के लिए मैं ऐसा काम करता हूं ना कि मैं हर पर्सन को एक ट्रांजैक्शन करने के बाद रिमूव करता जाता हूं. तो लेट्स से वी हैव टोटल नंबर ऑफ n पर्सन्स. तो अगर मैं एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करूं, किसी एक पर्सन ने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने का मतलब कोई एक पर्सन किसी एक पर्सन को उसके पैसे देता है, एंड आई वांट कि उसमें एक पर्सन जो पैसे दे रहा है या तो वो अपने पूरे पैसे दे देगा. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, राइट. तो लेट्स से हमारे पास ये है -300 एंड 700. तो देखो सबसे ज्यादा पैसे इस पर्सन को देने हैं, -400 रुपीज जो पॉसिबल है. मिनिमम नेगेटिव में सबसे ज्यादा बैलेंस इसके पास है, इसको सबसे ज्यादा पैसे देने हैं. 700 ये वाला पर्सन है. आई एम नॉट कंसिडरिंग द पर्सन राइट नाउ, ऑल आई एम कंसिडरिंग इज द अमाउंट, कि किस पर्सन को कितनी अमाउंट देनी है. बट पर्सन अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने लिख रखा है सिर्फ कितनी अमाउंट किस किस को देनी है, ठीक है. तो 400 अमाउंट देनी है एक को 300 अमाउंट देनी है, और एक को 700 की अमाउंट अपने पास लेनी है. तो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों ट्रांजैक्शन को कंसिडर करता हूं. तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को कंसिडर करने से देखो होगा क्या, दिस इज द पर्सन जिसको सबसे ज्यादा पैसे देने हैं, दिस इज द पर्सन जिसको सबसे ज्यादा पैसे लेने हैं. तो अब इन दोनों को अगर मैं कंसिडर करूं, तो अगर ये 400 रुपए इस 700 रुपीज जिसको लेने हैं उसको पूरे पैसे अपने 400 के 400 दे देता है, तो अब क्या होगा, ये 400 वाली चीज तो यहां से हट जाएगी, -300 बचेगा, और इसके पास कितनी अमाउंट और लेनी रह जाएगी, 300. ठीक है, एक पर्सन हट गया ना. टोटल वी हैड 3 पर्सन, तो 3 ट्रांजेक्शन होनी थी, राइट. तो अभी एक पर्सन हट गया बिकॉज वो अपनी पूरी की पूरी पेमेंट जो उसको करनी थी उसने एक पर्सन को करी, और वो उस एरे में से या फिर उस सेट में से हट गया कि उसको अपने पेमेंट देनी है. नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज अब मैं ये फिर से देखता हूं, अब मेरे पास सिर्फ 2 पर्सन रह गए हैं जिनको अपनी अमाउंट को सेटल करना है. तो अब अगर ये 300 वाली अमाउंट मैं सेटल कर देता हूं, तो अब क्या होगा, ये दोनों ही पर्सन मेरे रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज जिसने जितनी अमाउंट लेनी थी और जिसने जितनी अमाउंट देनी थी वो दोनों ही रिमूव हो गए. तो वी हैव क्लियर्ड ऑल द सेटलमेंट्स. और मेरे को कितने स्टेप लगे, एक स्टेप 400 यहाँ पे दिए गए, दूसरा स्टेप 300 यहाँ पे दिए गए. तो आप देख सकते हो 400 जिसने दिए वो P1 पर्सन की ही बात हो रही होगी, और 300 जिसने दिए वो P0 पर्सन की बात हो रही थी, और ये 700 अमाउंट वाला P2 पर्सन था. तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ रही है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी, 3 ट्रांजैक्शंस हो रही थी. बट व्हाट वी डिड, मैंने उनकी नेट अमाउंट लिख ली. अब नेट अमाउंट लिखने के बाद मैंने उनको सेटलमेंट करने का स्टार्ट करा. तो वी कैन सी हर बारी एक पर्सन जिसको सबसे ज्यादा पैसे देने हैं या तो वो हट जाएगा, या फिर जिसको सबसे ज्यादा पैसे लेने हैं वो हट जाएगा, बिकॉज इन दोनों में से जब मैं इनमें से किसी एक पर्सन को पैसा दूंगा तो होगा क्या, या तो दोनों का इक्वल होगा जो देना होगा, या फिर किसी एक पर्सन को ज्यादा देने होंगे, या फिर किसी एक पर्सन को ज्यादा लेने होंगे इसी वाले पर्सन को. तो दोनों में केस में एक पर्सन तो रिमूव होता चला जाएगा. तो इज दिस एल्गोरिथम क्लियर जो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं. मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी करूं कि मेरे को जो गिवन ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ज्यादा हो रही हैं उससे कम में काम हो जाए. यस आयुष, वी नीड टू सॉर्ट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. तो हमने यहाँ पे क्या करा था, देखो -400 था, -300 था और 700 था. तो मैंने 400 वाले पर्सन को रिमूव करा, तो ये क्या हो गया, -300 एंड 300. तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वी विल सॉर्ट द एरे. तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन जब मैं सॉर्ट करूंगा तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा इस एल्गोरिथम के अंदर, n log n.
ठीक है, अभी हमने वो वाली चीज को जो आप कह रहे हो कि कौन किसको दे सकता है, उसके लिए भी अभी एल्गोरिदम को देखेंगे कि हाउ दैट थिंग कैन बी डन। आई एम सेइंग कि इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए n log n लगेगा, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू n log n। सॉर्टिंग के लिए आई एम सेइंग सॉर्टिंग के लिए n log n होगा। ठीक है, तो अब इस वाली चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं कि ये वाली चीज इंप्लीमेंट कैसे हो सकती है। लेट अस सी दैट थिंग। ओके, सो हम चलते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द कोड। मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज कैश फ्लो इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम। So let us see how this thing can be done. Okay, तो देखो सबसे पहले तो मुझे इनपुट लेना होगा कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर एंड नंबर ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, क्योंकि जब इनपुट इनिशियली होगा तो लेट अस सी। ठीक है, तो अब हम एल्गोरिदम को विद कोड समझते हैं कि हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स, एंड उसका कोड भी देखते हैं साथ साथ। ठीक है, ये 100 है, ये 500 है, ये 200 है, राइट। तो इसकी लेट अस सी, तो हमारे पास टोटल 3 पर्सन है एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है 1 2 3। तो 3 पर्सन और 3 ट्रांजैक्शन हो रही है। सो लेट अस सी हाउ दिस थिंग कैन बी डन। तो हमने पर्सन एंटर करे और ट्रांजैक्शन एंटर करी। नंबर ऑफ पर्सन टी इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। तो इनपुट ले लिया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, मेरे को इसमें ये चीज फिगर आउट करनी है ना कि हर पर्सन ने कितनी अमाउंट देनी है। जैसे इसने -100 देनी है, फिर -200, तो टोटल -300 है, इसकी टोटल -400 है, इसकी टोटल +700 है। मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, इवेल्युएट करनी है, वाली चीज निकालनी है फॉर एवरी पर्सन, राइट। तो लेट अस सी, मैंने एक एरे बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो इसके इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2, बिकॉज 3 पर्सन ही है, ये एरे हमारे किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम इनपुट ले रहे हैं कि 3 पर्सन और 3 ट्रांजैक्शन है। तो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन हम ये इनपुट करेंगे कि जैसे P0 पर्सन को P1 को 100 रुपए देने हैं, फिर P1 पर्सन को P2 को 500 रुपीज देने हैं, फिर P0 पर्सन को P2 को 200 रुपीज देने हैं। यही है, 3 ट्रांजैक्शन है। तो इसका लूप लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लूप लगा रहे हैं और लेट अस स्टार्ट विद इट। तो हम लिख रहे हैं, हम 2 पर्सन लेते हैं, P1 P2 एंड अमाउंट, किस पर्सन को कितनी अमाउंट देनी है। तो मैं करता हूं सीन P1 P2 एंड अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, P1 पर्सन को P2 को गिवन अमाउंट पे करनी है। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, P0 को P1 को 100 अमाउंट पे करनी है, P1 को P2 को 500 एंड P0 को P2 को 200। सो लेट अस राइट द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसमें हम देखते हैं कि हम नेट जो एक पर्सन को पैसे देने हैं या फिर एक पर्सन को पैसे देने हैं वो कैसे निकलेगा। तो मैं इसमें लिख लेता हूं इंट, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर एलिमेंट 0 है। तो हमारा ये एरे है, इसके अंदर मैं नेट अमाउंट लिखूंगा कि किसको कितनी अमाउंट पे करनी है। तो हम पहले लिखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन 3 है, ठीक है। तो 0 पर्सन फर्स्ट पर्सन को 100 रुपीज दे रहा है। तो P0 में -100 लिख दूं और P1 में +100 कर दूं, ठीक है ना। तो जो पर्सन P1 अमाउंट दे रहा है, दिस इज द पर्सन P1, दिस इज द पर्सन P2 एंड दिस इज द अमाउंट। तो व्हाट शुड आई डू, मैं एरे में P1 के लिए माइनस कर दूं अमाउंट जो भी उसको देनी है, एंड एरे में ही P2 पर्सन के लिए प्लस कर देता हूं अमाउंट जो उसने अमाउंट लेनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -100, यहाँ पे कितना आ जाएगा +100, ठीक है। तो ये वाली 2 लाइंस सबको क्लियर है।
कि ये वाली दो लाइन कैसे होगी? ठीक है, सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरे में P1 पर्सन के पास से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अमाउंट, एंड एरे में P2 पर्सन के पास ऐड हो जाएगी अमाउंट, राइट? तो दिस वे हमने नेट अमाउंट वाली चीज को कर लिया है. ठीक है, यहाँ पे हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी? मैं बोलूंगा P1 को P2 को पैसे देने हैं, तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को पैसे देने हैं 500, राइट? तो इस वाले पर्सन में इतनी अमाउंट माइनस हो जाएगी. तो फर्स्ट पर्सन में जब 500 अमाउंट माइनस होगी तो यहाँ क्या बचेगा? -400, राइट? तो फर्स्ट पर्सन की नेट अमाउंट आ गई -400. देन होगा सेकंड पर्सन को P2 को पे करने हैं 200. तो सेकंड पर्सन को जीरोथ पर्सन को सेकंड पर्सन को पे करने हैं 200, राइट? तो इसमें हम अमाउंट ऐड भी कर देंगे 500, बिकॉज इसके दो केसेस बनते हैं, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का. P2 पे अमाउंट को ऐड कर दो, तो सेकंड पर्सन पे मैंने अमाउंट को ऐड कर दिया. इस वाले केस में क्या होगा? जीरोथ वाले पे 200 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -300. और सेकंड वाले पर्सन पे 200 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 700. तो आप देख सकते हो कि जो नेट अमाउंट थी इसकी -300 थी, इसकी -400 थी, एंड इसकी +700 थी. तो मेरे पास एरे के अंदर नेट अमाउंट क्रिएट होके आ गई. ठीक है, हमारा यही वाला तो केस था जो हम सबसे पहले कर रहे थे. हमारे पास हमको -300, -400 एंड 700 यही वाला एरे हमने क्रिएट करा था जिसके अंदर हमने नेट अमाउंट निकाल ली थी. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे पता लगाएं कि आफ्टर दिस 3 ट्रांजैक्शंस जो मैंने इनको मिनिमाइज करा है ट्रांजैक्शंस को, तो अब क्या आउटपुट आ रहा है? P1 ने P2 को पे करे 400, P0 ने P2 को पे करे 300. सो दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम कि फाइनली जब ट्रांजैक्शंस आपने कम कर दी तो किस पर्सन ने किस पर्सन को कितने पैसे दिए हैं. सो दिस शुड बी द आउटपुट, एंड ये वाला हमें एक्चुअली में प्रिंट कराना है. तो ये वाली चीजें प्रिंट कराने के लिए लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. अभी आपने ये तो देख लिया कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस को सिर्फ काउंट करना है तो आपके पास एक एरे आ चुका है जिसमें आप सॉर्टिंग की एल्गोरिदम लगा सकते हो, राइट? अब आप क्या करोगे? एक फ्रंट से उठा लोगे, एक लास्ट से उठा लोगे. ठीक है, अब फ्रंट और लास्ट वाले को आपने जब पिक किया है तो आप इन दोनों को नेगेटिव वाले को हटाओगे और इस वाले पर्सन को अमाउंट दे दोगे उसकी. तो अब कितना हो जाएगा? एक ट्रांजैक्शन के बाद -300 एंड 300. तो एक ट्रांजैक्शन हो गई यहाँ पे. सेकंड ट्रांजैक्शन में ये दोनों पर्सन भी एरे से रिमूव हो जाएंगे. सो दैट मीन्स हमारा काम पूरा प्रॉपरली हो चुका है. तो टोटल ट्रांजैक्शन 2 लगी. बट व्हाट वी नीड इज वी नीड दिस कि किस पर्सन ने किस पर्सन को कितनी अमाउंट पे करी है. इफ आप लोग स्प्लिट वाइज यूज करते हो तो यू मस्ट हैव सीन, जब आप स्प्लिट वाइज के अंदर पैसे डालते हो तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो इसी एल्गोरिदम को यूज करके हो रहा होता है. सो लेट अस सी ये वाली चीज कैसे होती है. ठीक है, अब हमें पर्सन्स को भी कंसिडर करना है, राइट? तो पर्सन्स को अगर हमें कंसिडर करना है तो पर्सन को कैसे कंसिडर कर सकते हैं? लेट अस सी दैट थिंग. आई होप ये जो नेट अमाउंट निकालने वाली चीज थी, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. नहीं 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 तुषार, आई हैव जस्ट क्रिएटेड द एरे. मैंने अभी कुछ सॉर्टिंग की एल्गोरिदम एरे पे नहीं लगाई है. आई हैव टेकन द साइज रैंडमली, मैंने कुछ भी साइज ले लिया था. अभी हम सेट और मल्टी सेट वाली चीज को देखेंगे जिसका यूज करके मैं सॉर्टिंग वाली चीजों को कर रहा हूँ. आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस एरे, और एरे का बस एक ही मोटिव था कि आपके पास नेट अमाउंट किस पर्सन को कितनी देनी है वो हो जाए.
नहीं अजय, शुड ये आउटपुट नहीं होगा। पेरुल, इंट्यूशन इज बेसिकली, देखो अभी मैंने ये देखा कि भाई मेरे को सेटलमेंट जो करनी है वो मिनिमम ट्रांजैक्शंस में करनी है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये पता लगाना था कि भाई हर पर्सन को कितने पैसे देने हैं और हर पर्सन ने कितने पैसे अपने पास लेने हैं। तो मैंने ये इससे ये पता लगा लिया कि भाई अगर मेरे को सेटलमेंट करना है तो मैंने एक काम करता हूं, मैं नेट फ्लो निकालता हूं कि किसको कितने पैसे देने हैं और किसको कितने पैसे लेने हैं। तो नेट फ्लो मैंने जब निकाला, तो जब नेट फ्लो मेरे पास आ गया विच इज दिस, तो अब मैंने इसमें देखा कि भाई ट्रांजेक्शन्स को मिनिमाइज करने के लिए मेरे को क्या करना है, ये 3 पर्सन है 1 2 3, मेरे को इनकी ट्रांजैक्शन मिनिमाइज करनी है। तो आई वांट कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक पर्सन रिमूव होता चला जाए। तो 400 को अगर मुझे हटाना है तो 400 को अब मैं हटाऊंगा, एक पर्सन को रिमूव करना है, राइट। तो -400 -300 और 700, अगर मुझे ऐसे अमाउंट को लाना है तो आई नीड टू सॉर्ट दिस एलिमेंट्स। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में, इसको सबसे ज्यादा पैसे देने हैं, इसको सबसे ज्यादा पैसे लेने हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैं सेटलमेंट कराता हूं तो आई एम प्रिटी श्योर कि हाँ इन दोनों में से एक पर्सन तो हट जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा लेने वाला और सबसे ज्यादा देने वाला, अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी तो हाँ दोनों में से एक पर्सन तो रिमूव होगा। तो इसको हटा दिया 400 वाले को, फिर बचे कितने -300 और यहाँ पे 300। अब इन दोनों के बीच में सेटलमेंट कर देता हूँ तो दोनों ही हट जाएंगे। तो सेटलमेंट सॉर्टिंग के थ्रू कैसे होगा, वो इंट्यूशन इसी बेसिस पे आई कि हमने उनकी जब नेट अमाउंट लिखी तो आई वांट कि इनमें से एक पर्सन हर ट्रांजैक्शन में रिमूव हो जाए, तभी मिनिमम सेटलमेंट होगी। एक पर्सन हट जाए या 2 पर्सन हट जाए, हो सकता है कि यहाँ पे -700 होता, तो -700 और 700 के बीच में जब मैं सेटलमेंट कराता तो ये पर्सन में से एक पर्सन हट जाता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ होता कि -1400 समथिंग समथिंग एंड 700, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में भी एक ट्रांजेक्शन कराता तो हाँ ये 700 वाला हट जाता। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि हाँ दोनों में से एक पर्सन तो हट ही जाएगा इन एनी केस। ठीक है, तो ये वाली इंट्यूशन कैसे आई, इज दिस क्लियर पेरुल? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देन विल लुक ऑन टू द डाउट्स, और जो आप लोगों के डाउट्स हैं उनको हम देखेंगे। पहले इसका हम कोड करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मिनिमाइज करने के लिए हमने नेट अमाउंट निकाल ली है। अब देखो सॉर्टिंग मुझे बार बार करनी है, मुझे ये पता है जो ये एलिमेंट्स जो नेट अमाउंट्स मैंने निकाले हैं इनकी सॉर्टिंग मुझे बार बार करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज यूज करूंगा विच इज कॉल्ड एज मल्टी सेट। सेट भी यूज कर सकता था बट सेट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज अलाउड नहीं होती हैं जो सेम हो, यूनिक वैल्यूज ही डलती हैं, मल्टीपल नहीं डलती हैं। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज मल्टी सेट, दिस वर्क्स सेम लाइक सेट, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। दिस वर्क्स सेम लाइक सेट, द ओनली डिफरेंस इज इसके अंदर मैं सेम वैल्यू डाल सकता हूँ, यूनिक नहीं होनी चाहिए। तो जो सेट होता है, सेट के अंदर जब आप वैल्यू डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेव उनको सॉर्ट करते रहता है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप C++reference.com पे जाके मल्टीसेट के बारे में आप पढ़ लेना, हाउ मल्टीसेट वर्क्स। ठीक है, ये वाली चीज आप पढ़ लेना कि हाउ मल्टीसेट वर्क्स। तो अब हम देखते हैं मल्टीसेट का यूज करके हम ये चीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो में वी हैव दीज थिंग्स P0, P1 एंड P2। P0 को -300 पे करने हैं, P1 को -400 पे करने हैं, P2 को 700 अमाउंट मिलेगी, राइट। 100, 500 एंड 200। तो दिस इज द सिनेरियो। करंटली ये चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। तो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर वी हैव दीज थिंग्स -300, -400 एंड 700। दिस इज नॉट सॉर्टेड येट, ये हमारा जो हमने एरे बनाया था नेट ट्रांजैक्शंस का, बस वो है मेरे पास अभी, और कुछ नहीं है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखो दिस इज फॉर 0th पर्सन, दिस इज फॉर फर्स्ट पर्सन, दिस इज फॉर सेकंड पर्सन। आगे का एरे हमारा यूज नहीं हो रहा है। 0 पर्सन की
-300 ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट की -400, सेकंड की +700। तो अब एक काम करते हैं, जो मल्टी सेट है उसको देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब मल्टी सेट वाली चीज कैसे वर्क करती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो देखो मल्टी सेट के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, मुझे इसका आउटपुट चाहिए कि P1 ने P2 को पे करे 400 एंड P0 ने P2 को पे करे 300। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो अगर मुझे ये आउटपुट लेकर आना है तो आई नीड टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ दीज पर्संस एज वेल, कि कौन किसको कितनी ट्रांजैक्शन और कौन सा पर्सन किस पर्सन को कितने पैसे दे रहा है, तो वो भी मुझे स्टोर करना है। तो व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पे मैं अमाउंट रखूंगा एंड यहाँ पे मैं पर्सन को रखूंगा। तो मल्टी सेट के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पेयर। तो देखते हैं मल्टी सेट कैसे होता है, लेट अस सी। तो मल्टी सेट को यूज करने के लिए हेडर फाइल इज सेट ओनली। मल्टी सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम एक पेयर डालेंगे, इंट कॉमा इंट का, और सेट का नाम रख देते हैं एस। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड अ मल्टी सेट जिसके अंदर मैं पेयर डाल रहा हूं। अब देखो पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो अमाउंट होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी दैट विल बी द पर्सन। तो फर्स्ट वैल्यू अमाउंट है, सेकंड वैल्यू पर्सन है। तो अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ -300 0, देन मैं डालता हूँ -400 1, देन मैं डालता हूँ 700 एंड सेकंड पर्सन, तो मल्टी सेट के अंदर ये वाली चीजें बाय डिफॉल्ट खुद से सॉर्ट हो जाएंगी। तो अब जो सेट है आफ्टर द सॉर्टिंग इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर सॉर्टिंग हो जाएगी खुद से। तो -400 एंड पर्सन 1, -300 एंड 0। तो ये पूरे का पूरा पेयर ही सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, बिकॉज पेयर के अंदर जो फर्स्ट चीज आप इंसर्ट करते हो, हमने दो चीजें इंसर्ट करी हैं, एक तो अमाउंट है, एक है हमारा पर्सन। तो जो फर्स्ट चीज होती है ना, जैसे इसमें हमने अमाउंट डाली है फर्स्ट, तो इसके बेसिस पे सॉर्टिंग होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई अमाउंट पहले डाल रहे हैं और पर्सन बाद में। आई विल टेक योर डाउट्स, अभी आप लोग एल्गोरिदम पे फोकस करो। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज समझ आ रही है सबको कि पेयर जो हमने मल्टी सेट के अंदर इंसर्ट करा है उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अमाउंट क्यों रखा है और सेकंड आर्ग्यूमेंट पर्सन क्यों रखा है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इफ दिस थिंग इज क्लियर तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एंड मल्टी सेट के अंदर देखो अभी कुछ इंसर्टेड नहीं है, राइट? तो मल्टी सेट के अंदर मुझे एरे के अंदर जो पर्सन और उनकी नेट अमाउंट है वो दोनों इंसर्ट करनी है। तो एक काम करते हैं, एरे के ऊपर ना आइटरेट करते हैं, एरे के साइज कितना होगा टोटल, जितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी उतना ही तो साइज होगा। तो एक काम करते हैं, फॉर int i equals to 0, i is less than t, i plus plus। ठीक है, अब सेट के अंदर इंसर्ट करने के लिए वी नीड टू यूज s डॉट इंसर्ट, एंड जब पेयर इंसर्ट करते हैं तो देयर इज अ फंक्शन मेक पेयर जिसका मैं यूज कर सकता हूं। तो पहली चीज जो मैं इंसर्ट करूंगा सेट के अंदर दैट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, एंड उसके बाद हम उस पर्सन को इंसर्ट करेंगे। पर्सन किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सी पर्सन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिसेस जो कि हमारा आई आइटरेटर है, एंड एरे के अंदर जो वैल्यू है दैट इज द अमाउंट। तो हमने इंसर्ट किया सेट के अंदर एक पेयर को जिसमें पहली चीज है अमाउंट और सेकंड चीज है पर्सन। ठीक है, तो सेट के अंदर अब यूनिक वैल्यूज सारी आ चुकी हैं और तीन ही वैल्यूज डली हैं, यूनिक या नॉन यूनिक जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ये वाली चीजों को इंसर्ट कर दिया है और ये सॉर्ट हो चुकी हैं। तो करंटली वी हैव दिस थिंग विद अस, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर वी हैव -400 1, -300 0 एंड 700 2। तो ये हमारे पर्सन है, ये हमारे अमाउंट है। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें सेटल किस किस को करना है, क्या कोई बता सकता है? अगर मैं जो सेट की जब बात कर रहा हूं तो मुझे सेटल किस किस को करना है। एक तो हमारा जो सेटल होगा इट विल बी दिस पर्सन, और कौन से पर्सन के साथ होगा, जो कि
एंड में लास्ट वाले पर्सन के साथ ये दोनों को मुझे सेटल करना है। इज दिस थिंग क्लियर? इन दोनों को ही सेट करना है ना, बिकॉज सॉर्टेड ऑर्डर में तो ये अरेंज होते जाएंगे बिकॉज वी हैव यूज मल्टी सेट। या पीयूष इज करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर सेट का हमें फाइंड करना होता है तो वो देखो आप कैसे मिलता है। तो we have inserted the values inside the set। अब we will do something while not s dot empty। जब तक आपका set empty नहीं होता तब तक you need to do something। ठीक है, अब आपको ट्रांजैक्शंस बतानी है ना कि कितनी मिनिमम ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, मैं फर्स्ट पर्सन को बोल रहा हूँ फ्रंट वाला पर्सन, मैं लास्ट पर्सन को बोल रहा हूँ एंड वाला पर्सन। ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हम अकर करा रहे हैं। तो देखो सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलता है, प्लीज लुक एट दैट। तो आई कैन राइट ऑटो p इक्वल्स टू रेफर करते हैं s डॉट बिगिन। तो s डॉट बिगिन क्या करता है, मुझे इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस लाके देता है। जब एड्रेस लाके देगा s डॉट बिगिन, ठीक है, तो मैं इसको जब डीरेफर करूंगा तो मेरे को ये एलिमेंट मिल जाएगा। आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर होगी कि डी रेफरेंस करने से मेरे को वैल्यू मिल जाती है एड्रेस के थ्रू। ठीक है, और एक चीज एस डॉट एंड जो होता है वो आपको लास्ट एड्रेस लाके देता है। ठीक है, तो एलिमेंट जो होते हैं वो एस डॉट एंड से एक पहले तक ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे एरेज में इंडेक्सिंग होती है ना, तो आपको जो इंडेक्स मिलता है लास्ट उससे पहले एक ही एलिमेंट, उसे -1 एलिमेंट्स तक या इंडिसेस तक ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह एस डॉट एंड का भी होता है। एस डॉट एंड आपको लास्ट एलिमेंट लाके देता है बट एलिमेंट्स उससे जस्ट एक पहले तक ही होते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, देखो अगर मुझे एस डॉट बिगिन वाले को मैं फ्रंट बोल रहा हूं, ठीक है, एंड मैं एंड वाले को एस डॉट एंड के थ्रू फाइंड कर सकता हूं, बट एस डॉट एंड हमारा लास्ट वाला नहीं होता एलिमेंट, उससे एक पहले वाला चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, एड्रेस हमारा एस डॉट एंड के थ्रू आया है, मैं इससे एक पहले वाला एड्रेस पूछ सकता हूं। तो पहले वाला एड्रेस देखो ऐसे मिल सकता है आपको, यू कैन यूज प्रीवियस फंक्शन। ठीक है, तो आपको अब क्या लाके देगा वो, प्रीवियस ऑफ एस डॉट एंड क्या होगा, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब आप इसको डीरेफर कर दोगे तो आपको लास्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा। इफ यू विल डीरेफर इट you will get the last element। ठीक है, या परीक्षित, या इट विल बी अ पेयर, तभी मैंने यहाँ पे ऑटो कीवर्ड लगाया है। आई होप दिस ऑटो कीवर्ड इज क्लियर टू ऑल कि ऑटो कीवर्ड कैसे वर्क करता है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? या दिस थिंग इज क्लियर, सो इट्स ओके। तो देयर आर पीपल दोज हु सेज कि वो चीज क्लियर नहीं है। अच्छा चलो, आई विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली। तो देखो हमने सेट के अंदर, मल्टी सेट के अंदर डाला क्या था, मल्टी सेट के अंदर एक पेयर डाला था। तो एस डॉट बिगिन को जब मैं डीरेफर करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस पेयर ओनली। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि आप ऑटो ना लिख के यहाँ पे लिखो कि मल्टी सेट में से आपको मिल रहा है पेयर, इंट कॉमा इंट का डेटा टाइप आप बता सकते हो। अगर आप डेटा टाइप नहीं बताना चाहते और आप चाहते हो कि कंपाइलर खुद से ही पता लगा ले कि पेयर क्या होगा, तो यू कैन यूज ऑटो। ठीक है, ये वाली चीज सबको समझ आई कि ऑटो कीवर्ड कैसे वर्क करता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना इंट a इज इक्वल टू 10, तो आप इंट की जगह ऑटो भी लिख सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा कि a की जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर। अगर आप लिखते हो इसको 10.1 तो ये डबल ले लेगा इसको बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ऑटो कीवर्ड खुद से पता लगा लेता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। ये चीज सबको क्लियर है? फ्रंट और एंड वाली चीजें ऑटो के साथ क्यों यूज करिए? जिन लोगों को क्लियर नहीं थी, इज इट क्लियर टू देम नाउ?
ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर, राइट? तो देखो अब मैंने क्या करा, प्लीज लुक एट दिस एल्गोरिथम नाउ। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको फ्रंट में स्टोर कर दिया, इसको एंड में स्टोर कर दिया। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको भी सेट से हटा देता हूं, मल्टी सेट से, और इसको भी मल्टी सेट से हटा देता हूं, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में अब सेटलमेंट करा रहा हूं। तो इन दोनों में से एक पर्सन हट जाएगा, जिसकी सेटलमेंट या तो पूरे पैसे दे देगा या पूरे पैसे ले लेगा, उन दोनों में से एक पर्सन हट जाएगा, ठीक है? तो लेट अस सी ये कैसे होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंट फ्रंट अमाउंट, अमाउंट कैसे मिलेगी, फ्रंट डॉट फर्स्ट से, इंट फ्रंट पर्सन कैसे मिलेगा, फ्रंट डॉट सेकंड से। ठीक है, तो पेयर के अंदर आई होप सबको ये पता होगा कि जो हमारा पेयर होता है उसके अंदर वी हैव टू वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिलती है डॉट फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू हमें मिलती है डॉट सेकंड से। ठीक है, नहीं ऋतिक, नहीं, वो ट्रांजैक्शन तक ही चलेगी, बिकॉज एरे के अंदर हमने जो इंसर्ट करा है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही तो डाले हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तक चलेगा। तो देखो अब हमने फ्रंट अमाउंट निकाल लिया और फ्रंट पर्सन निकाल लिया। तो मैं काम करता हूं, फ्रंट को निकालने के बाद एस डॉट एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट एंड अमाउंट कितनी होगी, एंड डॉट फर्स्ट एंड इंट एंड पर्सन कितना होगा, एंड डॉट सेकेंड। ठीक है, तो एंड अमाउंट और एंड पर्सन आ गया और फ्रंट अमाउंट एंड फ्रंट पर्सन आ गया। ठीक है, तो लेट अस सी अब आगे क्या करना है। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है। देखो हमने यहां से फ्रंट पिक कर लिया विच इज 401 एंड लास्ट में एंड पिक कर लिया विच इज 702। ठीक है, और इन दोनों को मैंने सेट से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में सेटलमेंट करानी है, राइट? इन दोनों के बीच में, फ्रंट और एंड के बीच में सेटलमेंट करानी है। तो हमने इनकी अमाउंट्स निकाल ली और कौन सा पर्सन है जो जिसको पैसे देने वाला है वो भी निकाल लिया। ठीक है, तो देखो अब इधर क्या हो रहा है, दिस इज द फ्रंट पर्सन एंड दिस इज द एंड पर्सन। तो अब हम इधर ये लिख सकते हैं, देखो सी आउट पर्सन, कौन, फ्रंट वाला जो पर्सन है, ठीक है, पेज सेटलमेंट अमाउंट जो होगी वो हमें निकालनी है, अभी मैंने निकाली नहीं है। सेटलमेंट अमाउंट क्या होगी, किसको पे करेगा, टू पर्सन एंड पर्सन को। देखो ऐसा क्यों लिखा, लास्ट वाली अमाउंट तो हमेशा पॉजिटिव होगी, फ्रंट वाली अमाउंट हमेशा नेगेटिव होगी। तो फ्रंट वाला पर्सन हमेशा एंड पर्सन को कुछ पैसे पे करेगा, क्योंकि हमने मल्टी सेट के अंदर सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करा है। तो जो नेगेटिव वैल्यू वाला होगा वही पैसे देगा ना। तो फ्रंट वाला पर्सन हमेशा एंड वाले पर्सन को कुछ पैसा देगा। तो अब ये सेटलमेंट अमाउंट जो होगी, या सेटल अमाउंट या सेटलमेंट अमाउंट लिख लेते हैं। कोई बता सकता है कि सेटलमेंट अमाउंट क्या होनी चाहिए? कैन एनीवन टेल दिस थिंग, व्हाट शुड बी द सेटलमेंट अमाउंट? इसको आप इधर से पता लगा सकते हो कि कितनी होनी चाहिए। या कुणाल इज करेक्ट, बट थोड़े से गलत हो। आपको देखो
इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही तो दे सकता है। मान लो अगर ये उल्टा कर देता मैं, तो क्या करता है, मान लो इधर मैं 200 कर देता, तो फ्रंट और एंड को ऐड तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो सेटल होगा ना। अगर आप इधर 200 लिखते तो ये सिर्फ 200 रुपए देता, 400 रुपए नहीं देता, ठीक है। अगर यहाँ पे 700 अभी करंटली लिखा हुआ है तो ये पूरे के पूरे 400 दे देगा, बिकॉज इस वाले की अमाउंट ज्यादा है। तो जिसका भी मिनिमम होगा वो पैसे उसको पे करने होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं मिनिमम निकालता हूं, किसका, -400 और 700 का। दिस वॉज टोल्ड बाय कुणाल। तो कुणाल, अगर मैं मिनिमम निकालूंगा -400 और -700 का, तो सेटलमेंट अमाउंट तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। इफ आई राइट हेयर मिनिमम ऑफ फ्रंट पर्सन की अमाउंट एंड एंड पर्सन की अमाउंट, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव तो नहीं कर सकते, तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, काम पूरा हो जाएगा मेरा, है ना। तो अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाली अमाउंट तो मुझे पता है, फ्रंट वाली अमाउंट हमेशा नेगेटिव होगी, बिकॉज सेटलमेंट हो रही है। तो 1% तो ऐसा होगा ही ना जिसको पैसे देने है, और वो वाला हमेशा फ्रंट वाला होगा। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सीधा सीधा, इट मेक्स सेंस, क्योंकि 2% तो होंगे ना, एक को देना होगा एक को लेना होगा, जिसको देना है उसकी अमाउंट तो हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो मैं काम करता हूँ ना, फ्रंट वाला जिसको हमेशा पैसे देने हैं उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट मिल जाएगी। अब जब सेटलमेंट अमाउंट मेरे को मिल चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसको पैसे देने हैं, कितने, 400 रुपए देने हैं, ये समझ आ गया मुझे। मिनिमम इतनी होगी ट्रांजेक्शन 400 की। तो एक काम करूंगा ना, मैं इस फ्रंट की अमाउंट में से इस सेटलमेंट अमाउंट को हटा देता हूं, और इस वाली अमाउंट में से भी इस सेटलमेंट अमाउंट को हटा देता हूं, तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 300, इसकी अमाउंट हो जाएगी 0। ये चीज सबको समझ आती है, जो हमने ये सेटल अमाउंट निकाली है इसको हम सेटलमेंट अमाउंट कह रहे हैं। तो ये वाली अमाउंट इस वाले में से हटा दूं कि भाई इसने इतने पैसे दे दिए, और इस वाले में से भी हटा दूं कि इसने इतने पैसे ले लिए। ये वाली चीज सबको क्लियर है कि ये वाली हमने जो मिनिमम सेटलमेंट अमाउंट निकाली है उसका क्या करना है, फ्रंट और एंड वाली चीज पे। रक्षित विल लुक इनटू इट, अगर गलत होगा तो वी कैन करेक्ट इट। अभी आप एल्गोरिथम पे आगे फोकस करो। इज दिस इन क्लियर टू ऑल, या फिर किसी को कोई इश्यू है? या सो सबको ये क्लियर है? तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फ्रंट अमाउंट में से जो भी फ्रंट अमाउंट हमारी है ये -400, तो आई विल डू प्लस इक्वल्स टू सेटलमेंट अमाउंट, एंड अमाउंट में से आई विल डू सेटलमेंट। तो इस वे में हट जाएगी, फ्रंट वाले में मैंने ऐड कर दी और लास्ट वाले में मैंने माइनस कर दी, तो इस वाली चीज से हो जाएगा, राइट। तो हमने ये निकाल लिया कि इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं, तो अभी आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अब ये वाला पर्सन तो सेटल हो चुका है, राइट। तो मैं इस जिसकी अमाउंट 0 हो गई है उसको वापस मल्टी सेट में तो इंसर्ट नहीं करूंगा। अभी इसको अमाउंट पैसे और लेने हैं ना, तो मैं इसको वापस से मल्टी सेट के अंदर इंसर्ट कर दूं। तो जब इसको मैं वापस से मल्टी सेट के अंदर इंसर्ट करूंगा, जो एक पर्सन बचा हुआ है, तो अब सिनेरियो क्या हो जाएगा, -300 पर्सन इज 0 एंड 300 पर्सन इज 2। तो अब जो सेट है उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। फ्रंट वाले को नहीं डालूंगा बिकॉज इसकी अमाउंट 0 हो चुकी है, इसने जितना पैसा अपना देना था वो दे चुका है। ही विल नॉट गो इनसाइड द मल्टीसेट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इफ फ्रंट अमाउंट बची है तो आई कैन डू एस डॉट इंसर्ट क्या, मेक पेयर। इसका पेयर बनेगा फ्रंट अमाउंट का अलॉन्ग विद फ्रंट पर्सन। दोबारा से मैंने फ्रंट की जो रिमेनिंग अमाउंट थी, हमने यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट हटा दी उसमें से। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर वो 0 है
तो यहाँ पे इफ का लूप फॉल्स हो जाएगा, ये चलेगा नहीं और हम आगे इसको ऐड करेंगे नहीं। इसी तरह से एंड वाली अमाउंट के लिए भी होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट अमाउंट की जगह सिर्फ एंड अमाउंट आ जाएगा। ये वाली चीज सबको क्लियर है? ठीक है, जो यहाँ पे करा है हमने, हमें निकालना था। हाँ, तो प्रक्षित आस्क्ड वेयर डिड वी पॉप एलिमेंट। तो सेट से पॉप करने का तरीका कोई बता सकता है मुझे? हाउ कैन वी पॉप फ्रॉम द सेट? अगर मेरे को जैसे फ्रंट एलिमेंट मैंने निकाला तो ये हटाना भी तो पड़ेगा ना। क्या लिखूं? एस डॉट इरेज, या क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? एस डॉट इरेज एस डॉट बिगिन को हटा दो, एंड सिमिलरली एस डॉट इरेज इस वाली चीज को। तो यहाँ पे पॉप करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको रिमूव भी कर दिया, बिकॉज यही किया था हमने। जब मैंने फ्रंट को पिक कर लिया था और एंड को पिक कर लिया था, तो यही बोला था ना कि सेट से इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, बिकॉज इन दोनों के बीच सेटलमेंट हो रहा है। आफ्टर सेटलमेंट जो बचेगा उसको हमने वापस से सेट में डाल दिया, जो 300 अमाउंट के साथ नया पर्सन इंसर्ट हो गया। अब ये एल्गोरिदम सेम चीज कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब फिर से ये फ्रंट बनेगा और ये एंड बनेगा। अब इन दोनों को हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों की अमाउंट को जब मैं सेटल कर दूंगा तो फ्रंट वाले की अमाउंट भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज ये 300 इसको दे देगा, और एंड वाले की भी अमाउंट जीरो हो जाएगी, बिकॉज ये 300 अमाउंट ले लेगा। तो इधर ना फ्रंट अमाउंट वाला इफ कंडीशन ट्रू होगी ना एंड अमाउंट वाली, तो सेट एम्प्टी हो जाएगा। जब सेट एम्प्टी होगा तो हमारा एल्गोरिदम रुक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं चलती है या नहीं चलती। देयर इज सम एरर इन दिस, तो लेट अस सी। फॉर लूप के आगे गलती है कुछ। ओके, चला के देखते हैं। मिनिमाइज कैश फ्लो, तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी वो ये वाली थी, तो लेट अस राइट इट। तो हमारी 3 ट्रांजैक्शन हो रही है। P01 को पे कर रहा है 100, 3 लोग हैं और 3 ट्रांजैक्शंस हैं। 01 को पे कर रहा है 100, 12 को पे कर रहा है 500 एंड 02 को पे कर रहा है 200, ठीक है। पर्सन P1 pays 400 to person P2 and person 0 pays 300 to person P2, ठीक है। तो यही आउटपुट था और ये सही आ रहा है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ पर्सन सेम थे, तो इसीलिए चल गया। सॉरी, वो वाली चीज हमने यहाँ पे देखी नहीं, हम जो इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट वर्क। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे इस एरे की लेंथ उतनी होगी, तो वी नीड टू ऐड पी ओवर देयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने भी होंगे उतना ही एरे का साइज होगा, तो हमने इधर पी कर दिया। इन दिस केस वी हैव 3 and 3 which in number of person and number of transactions were same, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया, ठीक है। सो दिस एल्गोरिदम आई होप कि सही होगी। अरे पीयूष, डोंट बी सो, मतलब इतना भी जज्बाती नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, कर देंगे ठीक, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। और ये सेटलमेंट वाली चीज स्प्लिट वाइज की एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। लग ग्राफ का क्वेश्चन रहा था, तो दिस थिंग कैन बी डन दिस वे एज वेल। आपको हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो इनपुट दे रहा है वो ग्राफ की फॉर्म में दे दे और ये वाली चीजों को आपको ऐसे करना हो, ठीक है। तो आई विल गिव यू जस्ट
लेट्स जस्ट टेक 2 to 3 minutes एंड इस चीज को आप खुद से ट्राई करने का देख सकते हो. यू कैन राइट द कोड. मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को ना सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये कोड आ जाए. cb.lk/id. just let me save this code and so all of you please note this URL. ठीक है, आप इस URL पे जब जाएंगे तो you will get the code. जो मैंने कोड लिखा था, you will get the code, जहां पे आप जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं. तो प्लीज नोट डाउन दिस URL and you can get the code over here. धनेश, अगर मिन और मैक्स एलिमेंट एरे से आप लेते तो आपको आइट्रेट करना पड़ता बार बार एरे के ऊपर. ठीक है, तो मतलब वी नीड टू यूज समथिंग, सो आई यूज्ड सेट, मल्टी सेट. ठीक है, आप चाहो तो आप मतलब एरे के अंदर डाल के बार बार सॉर्ट भी कर सकते हो. एरे के अंदर इंसर्ट कर दो एंड यू कैन सॉर्ट इट अगेन एंड अगेन. तो उसके थ्रू भी ये वाली चीज हो सकती है. हाँ, मतलब देयर कुड बी अदर वेज एज वेल. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे. अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम ही निकालने हैं, राइट, तो मिनिमम और मैक्सिमम को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो. या यू कैन यूज वेक्टर इंस्टेड ऑफ एरे. वेक्टर एंड एरे इज द सेम थिंग. ठीक है, तो यू कैन यूज इट. मैंने सॉर्ट इसलिए करा था आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन बिकॉज मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए थे. एंड मल्टी सेट मैंने यूज करा तो उसमें सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है, तो वो वाली चीज खुद से काम कर रही थी. या डिलीशन थोड़ा फास्टर होता है. आई एम टेलिंग यू, यू कैन गो टू c++reference.com and you can read about multiset over there. तो multiset की properties we won't be discussing right now. आप वो वाली चीजों को वहां से देख सकते हैं. पर्सन नंबर नहीं समझ आया मींस आई एम नॉट गेटिंग. अच्छा, ओके, तो देयर इज वन डाउट. आपको ये चीज नहीं समझ आई कि पर्सन हमने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, अमाउंट फर्स्ट पे क्यों रखी है जब मैं पेयर इंसर्ट कर रहा हूं. यू आर आस्किंग दिस थिंग, राइट? यही वाली चीज पूछ रहे हैं आप. अच्छा, तो देखो, जब मैं मल्टी सेट के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं मल्टी सेट के अंदर सॉर्टिंग होगी. ठीक है, सॉर्टिंग किसके बेसिस पे करनी है? अमाउंट के बेसिस पे. ठीक है, सबसे कम अमाउंट वाला सबसे पहले हो, सबसे ज्यादा अमाउंट वाला सबसे लास्ट में हो, बिकॉज मुझे सबसे कम और सबसे ज्यादा अमाउंट जिसको पे करनी है उनके बीच में सेटलमेंट कराना है. तो अब इस वाली चीज में देखो क्या हो रहा है. ये फ्रंट है, ये एंड है. ठीक है, तो अमाउंट के बेसिस पे अगर सॉर्ट करना है ना, तो मल्टी सेट के अंदर जो मैं पेयर इंसर्ट कर रहा हूं उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी द अमाउंट, बिकॉज सॉर्टिंग इस वाले आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे होती है. ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली. हमारा मिनिमाइज वाला हो चुका है एंड आगे देखते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू. तो ये वाली चीज हम देखते हैं कि कैसे होगी. ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको URL सबके पास आ चुका है. यू कैन यूज मैप या यू कैन यूज इट. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग ना कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वेज. देयर कुड बी अनदर वेज एज वेल. ठीक है, तो आप मतलब रिकर्जन के थ्रू मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के भी कर सकते थे. देयर इज वन सॉल्यूशन, आई डोंट नो विच विल बी अवेलेबल ओवर हियर. तो यू कैन सी दिस थिंग एज वेल कि इन्होंने कैसे कर रखा है. ठीक है, आप मतलब सॉल्यूशंस और हो सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो.
The thing is to store the data. मैप के अंदर भी जो डेटा स्टोर होगा that will be sorted, प्रांशु. तो you can use it, मतलब at the end तो ठीक है. One of the ways we have discussed and this way will work, मतलब जैसे आप करना चाहो. ठीक है. तो another question is this event tree. तो I would suggest कि आप लोग ये सब question open कर लो. ठीक है. और जस्ट गिव इट अ रीड. आप इस क्वेश्चन को खोल के इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या गिवन है. ठीक है. टेक 2 minutes, 2 to 3 minutes and read this question. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? जस्ट प्लीज लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन. शिखर, आई डोंट थिंक ये रिकॉर्डिंग आप बाद में देख पाओगे. अरविंदर, या देर आर ways you can use map, you can use arrays, you can use merge sort algorithm again and again on the array to sort the elements. तो आप अपना खुद का भी फंक्शन लिख सकते हो सॉर्टिंग के लिए. तो मतलब मल्टीसेट के ऑल्टरनेटिव्स बहुत हो सकते हैं. इट्स नॉट कि सिर्फ मल्टीसेट से ही होगा. आप मतलब दो हीप भी मेंटेन कर सकते हो, एक मिन हीप, एक मैक्स हीप, और उसके अंदर भी एलिमेंट्स स्टोर करके यू कैन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट. तो उसके थ्रू भी चल जाएगा, हीप से भी चल जाएगा. ठीक है. दैट द मोटिव इज टू गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट. तो वो मल्टी सेट के थ्रू हो रहा है, सेट के थ्रू हो रहा है, हीप के थ्रू हो रहा है, मैप के थ्रू हो रहा है. जिस भी वे के थ्रू आप कर सको दैट इज जस्ट फाइन. सेटलमेंट करनी है, राइट? तो सेटलमेंट आप जिस भी वे में करना चाहो यू कैन डू इट. दैट वोंट बी एनी इशू. ठीक है. दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं. लेट अस सी दैट थिंग. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है. वी हैव अ ट्री. तो ट्री इज सिंपली अ ग्राफ विद नो साइकिल्स, ये सबको पता ही होगा. तो अब इसके अंदर वी हैव 1 2 3 and 4. तो इस प्रॉब्लम के अंदर स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है. इस दिस स्टेटमेंट सेज कि आपको एक ट्री गिवन है जिसकी जो रूट नोड है वो हमेशा 1 ही होगी. ठीक है. हमेशा रूट नोड विल बी 1. अब इस ट्री के अंदर आपको करना क्या है वो आप समझो. आपको क्या करना है, इस ट्री को ना इस वे में ब्रेक करना है, मैक्सिमम टाइम ब्रेक करना है इन सच अ वे जो आपके फॉरेस्ट बनेंगे. यू ऑल मस्ट नो कि अगर आप एक ट्री को जैसे 1 2 3, ठीक है, और इधर मैं बनाता हूं 4 5 40 कर देता हूं, 4 5 6 and 7. तो आपको क्या करना है, ऐसे फॉरेस्ट बनाने हैं. ठीक है. तो वाटर फॉरेस्ट आप जब ट्री को ब्रेक कर देते हो मल्टीपल पार्ट्स में तो वी से कि वो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है. तो इसमें गिवन क्या है कि आपको क्या करना है, एक ट्री को ब्रेक करना है इन सच अ वे जो भी आपके फॉरेस्ट बने वो सब इवन नंबर ऑफ नोड्स को कंसिस्ट करते हो. एंड सेकेंड थिंग इज आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब भी आप नोड को ब्रेक कर सकते हो आप ब्रेक करोगे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो ये भी इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं. तो आप इसको यहां से अगर तोड़ दोगे तो ये 2 फॉरेस्ट और बन जाएंगे. इसके अंदर भी इवन नोड है. अगर आप इसको यहां से ब्रेक कर दोगे तो ये 2 फॉरेस्ट और बन जाएंगे. ठीक है. तो अगर हमें ऐसे एक ट्री गिवन था जिसमें देयर वाज अ नोड, तो लेट्स से इसको 10 बोलता हूं, इसको 1 बोलता हूं. ठीक है. ऐसे एक ट्री गिवन है अगर हमें,
ठीक है, वन इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, उस वाले को रहने देते हैं उसी वे में। तो अगर वी हैव अ ट्री, तो इसके अंदर टोटल 4 नोड्स आपको दिख रही हैं, तो मैं इस वाली पर्टिकुलर एज को अगर हटा दूं तो मेरे पे क्या होगा, 2 फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएंगे एंड दे हैव इवन नंबर ऑफ नोड्स। एंड द कंस्ट्रेंट इज, आप अगर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट को पढ़ोगे तो द ट्री इन द इनपुट विल बी सच दैट it can always be decomposed into components containing an even number of nodes। तो ये कंडीशन है कि आप हमेशा ट्री को ब्रेक कर ही पाओगे इन इवन नंबर ऑफ नोड्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा केस दे दो जिसमें वो आप ट्री को तोड़ ही नहीं सकते हो। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास एक ट्री है 1 2 3, तो अगर इसके अंदर मैं इस नोड को ब्रेक करता हूं तो ये सिंगल नोड रह जाएगी, ये ऑड हो जाएगी और ये इवन हो जाएगी। इस वाली को ब्रेक करता हूं, इस वाली को ब्रेक करता हूं तो ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। तो ऐसा ट्री आपको गिवन नहीं होगा। तो आपको हमेशा एक ऐसा ही ट्री गिवन होगा जिसके अंदर आप ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद आपको फॉरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगी। एंड द कंडीशन इज फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस you can remove from the tree to get a forest such that each connected component of the forest contains even number of nodes। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको इसी से क्लियर होगी कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ब्रेक करनी है एंड यू नीड टू क्रिएट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी ब्रेक कर सकते हो कि जो फॉरेस्ट क्रिएट हो उनके अंदर इवन नंबर ऑफ नोड्स एग्जिस्ट करते हो। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री। तो जैसे ये ट्री था, ओरिजिनल ट्री ये वाला है। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को ब्रेक कर सकते हो सो दैट एवरी ट्री और एवरी फॉरेस्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो आप क्या कंटेंट तोड़ सकते हो, ये वाली 2 एजेस ब्रेक कर सकते हो 1 से 6 एंड 1 से 3। तो 1 से 6 और 1 से 3 जब आप ब्रेक कर दोगे तो यू कैन सी कि एक ट्री है जिसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है, एंड ये एक ट्री है जिसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है या फॉरेस्ट है, या एंड एक ये ट्री है जिसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स। तो ऐसा नहीं है कि आप हर नोड को भी ब्रेक कर सकते हो। तो यू नीड टू डू दिस थिंग। इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक, तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो क्या मुझे कोई आप लोगों में से सॉल्यूशन बता सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एनी गेसेस? या वैष्णवी डीएफएस लगेगा, बट हाउ विल यू फिगर आउट कि कौन सी नोड ब्रेक करनी है कौन सी नोड नहीं? देखो द थिंग इज, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को ब्रेक करना है, ठीक है, तो हर एज को चेक कर लो कि वो टूट सकती है नहीं टूट सकती। ये बात तो सबको क्लियर होगी भाई, तोड़नी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं तो मेरे को सीधी सीधी एक बात समझ आती है, मैं हर एज को चेक कर लेता हूं कि वो तोड़नी है या नहीं तोड़नी। अभी तुषार वी हैवंट एक्सप्लेन एनीथिंग, अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो आप लोग बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग, मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया अभी तक। नहीं, डीएफएस में रिटर्न करते वक्त अगर आप करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। मतलब इफ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम डीएफएस, मैं यहाँ से रिटर्न होके आया तो ये देखेगा ऊपर 10 और 8 और 10, अगर 9 नहीं होता तो ये देखता कि यहाँ पे ऊपर अगर सम है तो वो तोड़ देता, तो दैट माइट गिव यू द रॉन्ग आंसर। तो एक चीज तो ये समझ आ रही है कि
नहीं अथर्व, लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट निकाल के क्या करोगे? मतलब हाइट तो आ जाएगी तो, बट ऐसा नहीं है ना कि जो आपको हाइट मिल रही है लेफ्ट और राइट ये बाइनरी सर्च ट्री है, दिस इज नॉट द केस। मतलब मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ लेफ्ट और राइट ही ट्री एग्जिस्ट करता हो। तो ये ग्राफ की प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ। तो आप फंस जाओगे अगर यू विल बी थिंकिंग इट इन टर्म्स ऑफ ट्री ओनली। एवरी सब ट्री हाइट तो चलो हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं एंड लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो देखो अब सीधी सीधी एक बात समझ आती है कि भाई हमारे पास एक ग्राफ है, 1 कनेक्टेड है 2 से, 1 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से। वी हैव दिस ग्राफ राइट। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ग्राफ कैसे बनता है, एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू मैं क्रिएट कर रहा हूँ। 1 कनेक्टेड है 2 से एंड 3 से, 2 कनेक्टेड है 1 से, 3 कनेक्टेड है 1 से एंड 4 से, एंड 4 कनेक्टेड है 3 से। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ ग्राफ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो मुझे ट्री बनाना है मैं इसका ना पहले ग्राफ क्रिएट करता हूँ। लेट्स क्रिएट द ग्राफ फॉर दिस थिंग एंड आई विल जस्ट सेव दिस थिंग एज इवेंट ट्री। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो इसके अंदर हैश इंक्लूड मैं कर लेता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू बना लेते हैं, और हैश इंक्लूड आई create list hash include I'll store a queue as well। तो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो पहले काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, I'll simply create a graph if anyone is not familiar how to create a graph, तो I would suggest कि आप ये चीज पढ़ लेना। बाकी जिन आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं दे आर ऑल क्लियर विद द ग्राफ। तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने कोडिंग ब्लॉक से कोर्स किया होगा तो वो लोग फेमिलियर होंगे कि वी क्रिएट ग्राफ एड एज के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट में यू पे डॉट पुशबैक वी, एंड इफ बाय डायरेक्शनल होता है तो हम उल्टा भी करते हैं। ठीक है, तो विल डू इट बोथ वेज एंड दिस वे कैन बी डन। ठीक है, तो ग्राफ तो क्रिएट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ग्राफ्स बेसिक्स बिकॉज वो चीज आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी, बिकॉज वी आर करेंटली डूइंग प्रॉब्लम्स फॉर इंटरव्यू जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। नो कुणाल, इट वोंट गिव टीएलई, लेट्स सी देता है नहीं देता, इट शुड नॉट गिव टीएलई। तो हम देखते हैं वाली चीज को। ठीक है, नहीं देगा मैप्स के थ्रू। अरे रुक जाओ थोड़ा, बी कंफर्टेबल विद इट। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये बना दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें ना हम एल्गोरिदम लगाएंगे बीएफएस की। अभी आई विल एक्सप्लेन यू कि ये वाली चीज कैसे चल रही है और क्यों चल रही है। बीएफएस के लिए हमें सोर्स चाहिए होती है राइट, स्टार्टिंग पॉइंट की, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है, तो इनपुट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट तो लेना जरूरी है। तो इनपुट के फॉर्मेट के अंदर हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लो। First contains number of nodes, then number of edges. So there are 10 number of nodes and 9 edges जो हमें यहाँ पे given है। तो let's see this thing. So we have two things जो input लेंगे, number of nodes and edges। तो edges को e से represent कर देते हैं and ठीक है, तो सीन कर लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, सीन कर लेते हैं edges को। ठीक है,
तो नेक्स्ट थिंग इज मैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, जितनी एजेस है उतनी बार इनपुट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे u और v क्रिएट करता हूँ, सी इन कराता हूँ, u और v के बीच में एज होगी। तो हमारा जो ग्राफ है दैट इज नॉट डायरेक्शनल ग्राफ, इट्स बाई डायरेक्शनल ग्राफ, इट्स नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो हमें दोनों तरफ एजेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने बाई डायरेक्शनल को परमानेंटली ट्रू कर दिया है। तो इसमें दोनों तरफ की एजेस ऐड होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये हो चुका है एंड लेट्स क्रिएट अ ग्राफ फर्स्ट। ठीक है, हमने ग्राफ क्रिएट करा। तो यहाँ पे हम करते हैं g डॉट एड एज, u से v पे हम एक एज को ऐड कर देंगे। तुषार कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है, अगर आप बता दो तो। हाँ मतलब पब्लिक में ही बनाया जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टर तो मैंने नहीं बनाया, आई हैवंट क्रिएट कंस्ट्रक्टर। आई थिंक कि वेबिनार को आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते होंगे, तो आई एम नॉट श्योर कि आपने कहाँ से मिस करा। तो शायद एक बार आप देख लीजिए और देन यू कैन कंटिन्यू। अच्छा नहीं कर सकते तो हाँ बताओ फिर क्या डाउट है, मतलब यू नीड टू टेल मी कहाँ से। अभी मैंने सिर्फ ग्राफ क्रिएट करा है, आई हैवंट डन एनीथिंग। तो एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ वी हैव क्रिएटेड द ग्राफ एंड नथिंग एल्स। ठीक है, ये ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर इतना? ठीक है, तो ग्राफ बन चुका है एंड सी आउट कर देते हैं। जो भी हमारा होगा वो देख लेंगे आउटपुट क्या करना है। ठीक है, तो हम बीएफएस की एल्गोरिथम लगा रहे हैं। तो बीएफएस की एल्गोरिथम के अंदर एक तो मैं सोर्स बता दूंगा। देखो इट इज गिवन कि जो रूट नोड होगी दैट विल बी ऑलवेज 1। ये आप पढ़ सकते हो, द रूट नोड ऑफ द ट्री इज 1। तो ट्री हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। आ रहे हैं पेरुल, अभी आ रहे हैं कि वाई बीएफएस। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ट्री हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रूट नोड ऑफ द ट्री और ग्राफ विल ऑलवेज बी द 1। ठीक है, हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। तो वाई बी एफ एस अभी आ रहे हैं, तो हम बी एफ एस की एल्गोरिथम बना रहे हैं, देखते हैं वो कैसे लगेगी। सोर्स पास कर देता हूँ एक, नंबर ऑफ नोड्स पास कर देता हूँ एक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। अब आते हैं कि भाई मतलब बी एफ एस की एल्गोरिथम क्यों लगा दी, मतलब डी एफ एस क्यों नहीं लगाया। तो बी एफ एस से क्या ऐसा हो रहा था। ठीक है, अमन अभी मतलब स्टार्ट करा है इक्वेशन, लेट्स सी कितना जाता है, फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा रूट नोड 1 है। ठीक है, तो ये वाली चीज को हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो बीएफएस की एल्गोरिथम लगाने का एक रीजन जो है दैट इज बीएफएस इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो सबको ये जरूर पता होगा कि जब बीएफएस की एल्गोरिथम आप लगाते हो तो वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह वर्क करती है। ये सबको पता है कि एक नोड से शुरू करते हैं, देन उसके हम चिल्ड्रंस पे जाना शुरू करते हैं एक एक करके, राइट। सो बीएफएस वर्क्स इन दिस फैशन। तो अब देखो होगा क्या, मेरे को ये पता लगाना है कि मैं कोई पर्टिकुलर दो नोड्स के बीच में, तो अगर मैं बोलता हूं इसको पेरेंट है और इसको मैं बोलता हूं चिल्ड्रन है, मेरे को ये पता लगाना है कि मैं ये वाली एज को तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता। दो ही ऑप्शन होंगे ना, अगर मैं इस एज की बात कर रहा हूं तो या तो मैं इस एज को तोड़ूंगा, या मैं इस एज को तोड़ूंगा या फिर इस एज को नहीं तोड़ूंगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है एक एज के लिए? नहीं हो सकता ना। मतलब या तो आप जब ब्रेक कर रहे हो तो आई एम लुकिंग इट इन टर्म्स ऑफ द एजेस, या तो मैं एक एज को ब्रेक कर दूंगा या फिर मैं एक एज को ब्रेक नहीं करूंगा, दैट्स इट। तो अब ये वाली एज कब ब्रेक होगी, पेरेंट से और चिल्ड्रन के बीच में जो ये एज है, व्हेन शुड आई ब्रेक दिस एज एंड व्हेन शुड आई नॉट। ये वाली चीज फिगर आउट करने के लिए मैंने ये पता लगाना जरूरी है। देखो अभी आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हो, पेरेंट और इस चाइल्ड, पेरेंट इज 1 एंड चाइल्ड इज 3, ये वाली एज ब्रेक होगी या नहीं होगी? आप लोग खुद से सोच के बताओ कि ये वाली चीज मुझे आप कैसे बता पाओगे। व्हाट इज द वे बाय विच यू कैन टेल मी कि एज ब्रेक होगी या नहीं होगी?
छोटा ग्राफ है तो ये वाली चीज तो आप बता सकते हो कि ब्रेक होगी नहीं होगी, ये कैसे पता लगाओगे? मतलब आई एम नॉट आस्किंग द एल्गोरिथम, आई एम जस्ट आस्किंग द सिंपल लॉजिक जो आप इधर से देख के बता सकते हो। हाँ, तो आयुष इज करेक्ट कि भाई हम एक काम करते हैं, इस चाइल्ड पे ना जाता हूं, ठीक है, मैं इस चाइल्ड पे खड़ा होता हूं, इस चाइल्ड पे खड़े होके मैं ये पता लगाता हूं क्या इस चाइल्ड के आगे जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो इवन है या नहीं है। इफ द नंबर ऑफ नोड्स आर इवन तो मैं इस एज को ब्रेक कर दूं। चाइल्ड पे खड़ा हूं और मैंने इधर से पता लगाया कि चाइल्ड को इंक्लूड करके आगे तक जितनी नोड्स हैं वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो आई कैन ब्रेक इट। इफ दिस थिंग इज ऑड then I cannot break it. This makes sense to each and every one of you? ठीक है, तो अब देखो मेरे को ये पता लगाना है अगर कि भाई इस वाली नोड के आगे के चिल्ड्रन कितने हैं, है ना, यही पता लगाना है ना। अगर ये ऑड हुए तो +1 इस चाइल्ड को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ नोड्स इवन हो जाएंगी। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसके आगे के चिल्ड्रन ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है, तो वो वाली चीज मैं कैसे कर सकता हूं? देखो उस वाली चीज को करने का एक वे, वन ऑफ द वेज मैं काम करता हूं कि भाई मैं ना ये स्टोर करता हूं, इस ग्राफ के बजाय मैं ये स्टोर करता हूं कि हर एक नोड के कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, लेट्स स्टोर दिस थिंग कि भाई हर नोड के कितने चिल्ड्रन है। ये वाली चीज तो मैं निकाल सकता हूं ना बीएफएस का यूज करके, हर नोड के कितने चिल्ड्रन है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1, तो वी हैव नोड्स 1 2 3 4। मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, मैं 1 के सारे चिल्ड्रंस पे जाता हूं। ठीक है, तो 1 के जो सीधे सीधे चिल्ड्रन बनते हैं, ये पेरेंट हो गया, तो 1 के चाइल्ड कौन कौन है, 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे काउंट रख सकता हूँ 2। मैं 2 के डायरेक्ट चिल्ड्रन देखता हूँ कौन है, 2 का डायरेक्ट चाइल्ड एक भी नहीं है, तो 2 के चिल्ड्रन होंगे 0। मैं 3 के देखता हूँ चिल्ड्रन कौन कौन है, 3 का चाइल्ड इज 4, एक ही है चाइल्ड, ये तो इसका पेरेंट है, 1 इज द पेरेंट ऑफ 3, 1 इज नॉट द चाइल्ड ऑफ 3। 3 का चाइल्ड इज 4, 4 का चाइल्ड कौन है, एक भी नहीं है। अब ये वाली चीज अगर मुझे निकालनी है तो आई कैन यूज DFS, सॉरी BFS algorithm in this thing. अभी हम BFS के एल्गोरिथम देखते हैं, देन वी विल सी DFS वाली चीज को। ठीक है, पहले एक एल्गोरिथम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, देन वी कैन फाइंड अदर वेज एज वेल। हाँ मतलब बोथ विल वर्क। देखो पॉइंट क्या है DFS और BFS का, मतलब दोनों ही ग्राफ को ट्रैवर्स करती हैं, राइट। तो आप DFS के थ्रू भी, अगर आपका, मैं बोलता हूँ लेट्स से, अगर कोई बोलता है आपको कि आपके पास एक ग्राफ है 1 2 3 एंड यू हैव अ ग्राफ 4 5 6, दिस इज नॉट कनेक्टेड, तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो आप ये बोलोगे क्या BFS के थ्रू ट्रैवर्सल मैं नहीं कर सकता, या मेरे को उसमें DFS ही चाहिए, या फिर आप ये बोलोगे मैं DFS के थ्रू नहीं कर सकता, BFS ही चाहिए। तो मतलब ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स हैं, आप दोनों ट्रैवर्सल एल्गोरिथम में से एक ट्रैवर्सल एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। तो अभी मुझे ये वाली चीज समझ आ रही है कि भाई मेरे को हर चाइल्ड के, हर नोड के चिल्ड्रन पता लगाने कितने कितने, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि इस पर्टिकुलर नोड के आगे के जो चिल्ड्रन है वो ऑड है या इवन है। अगर मेरे पास ये काउंट होगा तो मैं पता लगा पाऊंगा, राइट। तो ये वाली चीज करने के लिए मैं इनके डायरेक्ट चिल्ड्रन निकाल रहा हूँ कि हर एक का चाइल्ड कितना है। ठीक है, और इसके साथ साथ व्हाट आई विल डू वन मोर थिंग, ठीक है, इसकी एल्गोरिथम में अनदर थिंग दैट आई विल डू इज, ये वाला तो हो जाएगा हमारा कि इसके कितने कितने चिल्ड्रन है, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे, कि फर्स्ट का
चाइल्ड कितने हैं 2, सेकंड के चाइल्ड कितने हैं 0, 3 के चाइल्ड कितने हैं 1, 4 के चाइल्ड कितने हैं 0। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और ग्राफ क्रिएट करूंगा। पता लगाने के लिए कि हर एक तुषार, पता लगाने के लिए कि एक नोड के आगे ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, ताकि मैं उसको तोड़ सकूं या नहीं तोड़ूं, ये पता लगाना है। तो मुझे उसके लिए नंबर ऑफ चाइल्ड्स तो स्टोर करने होंगे ना। देखो अभी आपको इससे समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की एडवांटेज क्या है। जैसे जैसे एल्गोरिदम आगे जाएगी तो यू विल गेट टू नो इट कि इसका एडवांटेज क्या थी। ठीक है, अभी बीएफएस एल्गोरिदम के थ्रू हम ये स्टोर कर रहे हैं कि डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है। तो 1 के डायरेक्ट चिल्ड्रन है 2 और 3, 2 का डायरेक्ट चाइल्ड एक भी नहीं है, 3 का डायरेक्ट चाइल्ड है 4, 4 का डायरेक्ट चाइल्ड एक भी नहीं है। तो अब अगर मैं एक ग्राफ क्रिएट करता हूं, ठीक है, जिसके अंदर, तो लेट्स से इस ग्राफ को हम बोलते हैं जी। तो इसके अंदर अगर मैं ऐसे स्टोर करता हूं कि 1 का चाइल्ड है 2 और 3, 2 का चाइल्ड कोई नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 3 का चाइल्ड है 4 और 4 का चाइल्ड कोई भी नहीं है, तो ये दोनों एंट्रीज नहीं होंगी। तो एक ग्राफ हमारा ये हो गया फॉर डायरेक्ट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन देखो इसमें भी है, 1 का चाइल्ड 2 है बट इसमें 2 का चाइल्ड 1 भी है, इसमें 3 का चाइल्ड 1 है बट इसमें 1 का चाइल्ड 3 भी है। मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस काउंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता लगाना है अगर मैं इस चाइल्ड पे खड़ा हूं और इस पेरेंट की बात कर रहा हूं तो ये नोड तोड़नी है या नहीं तोड़नी, ये उस पर डिपेंड करती है कि इसके आगे वाली जो ये ट्री है इसमें नंबर ऑफ नोड्स इवन है तो आई विल ब्रेक दिस नोड, ब्रेक दिस एज। इफ ये ऑड है तो आई विल नॉट ब्रेक दिस एज। अब इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 के सीधे सीधे चिल्ड्रन चाहिए कि भाई 3 के मेरे को बच्चे बताओ कितने, डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए। 3 के यहां पे चाइल्ड आ रहे हैं 2 बट 3 के डायरेक्ट चिल्ड्रन कितने हैं, सिर्फ एक है 4। ठीक है, तो ये वाली चीज सबको समझ आ रही है कि अगर आपको जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस करी थी सबसे पहले, जो हम बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये वाली नोड ब्रेक होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, अगर पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच की नोड ब्रेक करनी है या नहीं करनी है, किस पे डिपेंड करता है, आप इस चाइल्ड के ना बच्चे देखो कितने हैं। अगर ये बच्चे जो हैं चाइल्ड के ये ऑड हैं तो प्लस इस पेरेंट को करके टोटल ये इवन हो जाएंगे। अगर इस चाइल्ड के इवन, चाइल्ड को इंक्लूड करके इसके चिल्ड्रन इवन है तो आई कैन ब्रेक दिस नोड। ये चीज समझ आती है। इफ ये ऑड है तो आई कैन नॉट ब्रेक दिस नोड, ब्रेक दिस एज। ये वाली चीज सबको समझ आती है जो मैं कर रहा हूं। हमने एल्गोरिदम यही डिस्कस करी थी ना कि भाई कब तोड़ सकता हूं दो नोड्स के बीच में एक एज को एंड कब नहीं तोड़। हर एक पे अप्लाई होगी ये वाली चीज। अगर मैं इसको पेरेंट मान रहा हूं और इसको चिल्ड्रन मान रहा हूं और इस एज को देख रहा हूं कि ये तोड़नी है या नहीं तोड़नी, ठीक है, इस एज को देख रहा हूं कि ये वाली एज तोड़नी है या फिर नहीं तोड़नी, तो ये कब होगा, पेरोल इट इज गिवन कि सॉरी केशव इट इज गिवन कि ट्री हमेशा ऐसा होगा जो इवन नंबर ऑफ नोड्स में टूट सकेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक बना दूं 5 तो कहां से तोड़ू, इवन नंबर एजेस ही नहीं बनेंगी। ठीक है, ट्री हमेशा ऐसा ही गिवन होगा जिसमें आप ब्रेक कर सकते हो। अगर ब्रेक नहीं हो सकता तो वो ट्री का टेस्ट केस भी नहीं होगा। इट इज गिवन, आप इधर पढ़ सकते हो, द ट्री in the input will be such that it can always be decomposed into components containing an even number of nodes। हाँ तो नहीं, मतलब जो आप कह रहे हो व्हाट इफ 2 इज नॉट प्रेजेंट, तो ऐसा टेस्ट केस ही नहीं होगा, ऐसा इनपुट ही नहीं होगा ट्री का, बिकॉज ये कंस्ट्रेंट में गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला गया वो करवाने के लिए देयर इज सर्टेन लिमिटेशन टू द इनपुट ऑफ ट्री। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है,
तो चलो अब इसको हम कोड करते हैं BFS पे। तो वी विल क्रिएट, देखो अब प्लीज लिसन टू द एल्गोरिथम वेरी केयरफुली कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी। अब हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ चाइल्ड निकालने कितने हैं, 1 2 3 4, 2 के डायरेक्ट चाइल्ड निकाल रहा हूँ, 1 के 2 के 3 के 4 के डायरेक्ट चिल्ड्रन निकाल रहा हूँ। तो मैं ग्राफ भी बनाता हूँ, लेट से उसको हम चाइल्ड बोल देते हैं। तो इस ग्राफ में क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड का ग्राफ है, डायरेक्ट चाइल्ड ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या होगा, मैं ये स्टोर करूंगा कि कौन किसका डायरेक्ट चाइल्ड है। 1 के डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है, 2 एंड 3। 2 का कोई डायरेक्ट चाइल्ड है, नहीं। 4 का कोई डायरेक्ट चाइल्ड है, नहीं। 3 का कोई डायरेक्ट चाइल्ड है, हाँ 4। इस वाले में ग्राफ में क्या है जो हमने पहले बनाया था, इस ग्राफ के अंदर क्या, देखो 1 का अगर चाइल्ड 3 है तो 3 का भी चाइल्ड 1 है, बिकॉज ये चिल्ड्रन स्टोर करता है बट इट डजंट कंसिडर कि वो पेरेंट है या उसका वो चिल्ड्रन है, वो सिर्फ ग्राफ स्टोर कर रखा है कि उनके बीच में एजेस एग्जिस्ट करती है। बट अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें मैं डायरेक्ट चिल्ड्रन को स्टोर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए कि भाई इस नोड के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन से हैं। ये मेरे को नीडेड होंगे जब मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ नोड्स को, कि इस नोड के आगे कितने चाइल्ड हैं जो कि इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं। तो उसको करने के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। नहीं, हमारा ग्राफ एग्जिस्ट करता था, इसमें से मैंने सिर्फ वही वाली चीजों को उठा लिया जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसके। हाँ आप कह सकते हो इन अ वे इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसका डायरेक्टेड ग्राफ बना दूं तो मैं 2 से 1 पे ना आ सकूं वापसी। ठीक है, तो वो चीज भी रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज जब आप BFS ट्रैवर्सल करोगे तो डायरेक्टेड ग्राफ पे अगर BFS ट्रैवर्सल करोगे तो आउटपुट विल बी थोड़ा सा अलग। तो अब इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया और हमने एक ये ग्राफ बना लिया। तो लेट्स क्रिएट दीज थिंग्स, राइट। तो एक हम जो इनपुट होगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक तो अनऑर्डर्ड मैप बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट डालूंगा और इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से डायरेक्ट चाइल्ड बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होगी हमारी यहाँ पे BFS एल्गोरिथम के लिए क्यू बना लेते हैं इंट, जिसके थ्रू ट्रैवर्सल होगा। और एक हम अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं जिसके थ्रू मैं ये स्टोर करूंगा कि वो विजिटेड है नहीं, बिकॉज आई होप कि आपको BFS की एल्गोरिथम क्लियर होगी, तो उसमें विजिटेड वाली चीज चाहिए होती है। तो हम क्यू के अंदर पुश करते हैं सोर्स को एंड आई मार्क विजिटेड ऑफ सोर्स एज ट्रू, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट चिल्ड्रन चाहिए, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी का भी एरे चाहिए होगा। तो इसको मैं डायनामिक बनाता हूँ बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स वेरिएबल है, राइट। आपको जो स्टोर करना है कौन किसके कितने डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, तो उसके लिए व्हाट यू नीड नंबर ऑफ नोड्स, राइट। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे मैं इसको एक डायनामिक एरे बना लेता हूँ। तो इनिशियली हर एक चाइल्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, बिकॉज इनिशियली ये सब फ्रीक्वेंसी एरे के 0 होंगे, राइट। और एक ग्राफ बनेगा डायरेक्ट चाइल्ड का, राइट। तो अब ये वाली चीज अगर हमें करनी है तो लेट्स स्टार्ट विद इट व्हाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। तो जब तक ये एम्प्टी नहीं होता तो मुझे क्या करना होता है इसके अंदर, बता सकते हो कि DFS की एल्गोरिथम में क्या करना होता है। पहले मैं कर देता हूँ, सबसे पहले तो हमें एक, मैं बोल देता हूँ पेरेंट नोड निकाल रहा हूँ क्यू डॉट फ्रंट से एंड क्यू डॉट पॉप। अब क्या करते हैं BFS के एल्गोरिथम के अंदर, मुझे इसके चिल्ड्रंस पे आइटरेट करना है, राइट। तो इफ नॉट विजिटेड और ऑटो चाइल्ड, हम जाएंगे जो हमारा मैप है एडजेसेंसी लिस्ट,
adjacency list of parent, ठीक है। BFS की एल्गोरिदम आई होप सबको क्लियर होगी। 1 2 3 4। तो हमने इससे स्टार्ट किया, दिस इज आवर सोर्स नोड। तो मैं इसके डायरेक्ट चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस नोड पे नोड को निकाला और इस नोड के डायरेक्ट चिल्ड्रंस पे गया। तो अगर ये चाइल्ड इफ नॉट विजिटेड, इफ दिस चाइल्ड इज नॉट विजिटेड, तो जैसे 2 और 3 है, ये भी विजिटेड तो नहीं है, तो मैं 2 पे विजिट करूंगा। और 2 पे विजिट करने के बाद देखो, पहले ही बता दो बीएफएस एल्गोरिथम सबको क्लियर है ना? इज एवरीवन क्लियर विद द बीएफएस एल्गोरिथम और नॉट? तो ये वाला जो कोड मैंने लिखा है, ये वाला कोड सबको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? अरे गुड, तुम तो काफी होशियार बच्चे हो सारे, तो अच्छी चीज है। तो अब मैं काम करता हूं, मैं 2 पे आया, तो मैं काम करता हूं क्यू डॉट पुश दिस चाइल्ड, एंड मैं काम करता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेरेंट मैं इंक्रीज कर देता हूं। बिकॉज देखो हमें क्या करना है, ये जो थी 1 2 3 4, तो मैं 1 का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो स्टोर कर रहा हूँ ना, उसका काउंट। तो अगर मैं इस वाले चाइल्ड पे आया, 1 के चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ, तो 1 का चाइल्ड 2 है, तो 1 के चाइल्ड जब 2 पे आया तो मैं इसका एक काउंट इंक्रीमेंट कर दूं, विच इज द पेरेंट। इसको मैंने क्यू से निकालने के बाद पेरेंट माना है, और मैं इसके चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई पेरेंट की, और अगर वो चाइल्ड विजिटेड नहीं था तो उसको मैंने क्यू में डाल दिया, जो कि बीएफएस एल्गोरिथम के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। विजिटेड ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड को भी हम ट्रू कर देते हैं, और मैं जो डायरेक्ट चाइल्ड का हैश मैप बना रहा हूँ, मैं इसके अंदर भी डालूंगा कि 1 का चाइल्ड इज 2। तो इसके अंदर भी मैं डाल सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट चाइल्ड में जो पेरेंट है डॉट पुश बैक दिस चाइल्ड। तो देखो आफ्टर डूइंग दिस एल्गोरिथम आई विल गेट दिस ग्राफ एंड आई विल गेट दिस फ्रीक्वेंसी एरे which will have 2, which will have 0 1 0। ये चीज सबको क्लियर है जो मैंने यहाँ पे कोड में लिखी है? आफ्टर दिस एल्गोरिथम आई विल गेट दीज टू थिंग्स। अथर्व कहाँ पे इशू आ रहे हैं, यू कैन आस्क मी। फॉर ईच लूप में देखो क्या किया है, मतलब पहले मैंने 1 को निकाला, 1 को निकालने के बाद मुझे इसके चिल्ड्रंस पे आइटरेट करना था। तो देखो क्यू से मैंने 1 को निकाला और उसको 1 हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद मैंने क्या करा, मैं 1 के चिल्ड्रंस पे आइटरेट कर रहा हूँ। 1 के चिल्ड्रंस कौन कौन है, 2 एंड 3, राइट? These two are the children of 1। तो मैंने क्या करा, उस पर आइटरेट करने के लिए मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट पे आइटरेट करना पड़ेगा। ये सबको पता है ना कि अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होती है, तो अगर ये ग्राफ का नाम एडजेसेंसी लिस्ट है, तो इफ आई गो टू द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 1 देन आई गेट दीज चिल्ड्रन ऑन विच आई कैन आइटरेट। तो मैंने क्या करा, फॉर ईच लूप लगा के मैं उसके चिल्ड्रन पे आइटरेट करा। तो फॉर ईच लूप लगा के 1 के चिल्ड्रन कौन कौन आएंगे, 1 का चाइल्ड एक तो पहले 2 आएगा, तो मैं 2 नहीं था तो मैंने इसको विजिट मार्क कर दिया, ठीक है। आई मार्क्ड इट एज विजिटेड, एंड विजिटेड मार्क करने के बाद मैंने इसको क्यू में पुश कर दिया, जो बीएफएस के एल्गोरिथम में होता है। आई मार्क्ड इट एज विजिटेड, क्यू में पुश कर दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो 1 के डायरेक्ट चाइल्ड कितने वो काउंट करने थे ना, तो 1 का डायरेक्ट चाइल्ड एक मिल चुका है मुझे, तो मैंने पेरेंट पे फ्रीक्वेंसी काउंट को 1 से बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी काउंट सबका इनिशियली 0 था, तो मैंने इसका काउंट 1 कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट चाइल्ड पे गया, नेक्स्ट चाइल्ड इज 3। तो जब मैं नेक्स्ट चाइल्ड 3 पे आया, तो मैंने फिर से देखा कि ये वाला जो नेक्स्ट चाइल्ड 3 है, फॉर ईच लूप जब दोबारा चला तो देखा वो 3 वाला चाइल्ड विजिटेड नहीं था, तो मैंने उसको फिर से क्यू में डाला, उसके पेरेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बिकॉज ये इस अपने पेरेंट के जो चाइल्ड होगा ना जिसपे मैं आइटरेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है। और मैंने इसका विजिटेड मार्क कर दिया ट्रू। और डायरेक्ट चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट के अंदर मैं ये पुश करते जा रहा हूँ कि उसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है हैश मैप में। तो 1 के डायरेक्ट चाइल्ड 2 और 3 मैंने हैश मैप के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये वाली चीज क्लियर है? खेम, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? 38th लाइन जो आप बोल रहे थे।
Khemchand. Okay, so that is fine. So we have these two things right now. Okay, we have one frequency array with us, and we have one graph in which direct childs are stored. So we need these two things only, because अब देखो पेरेंट और चाइल्ड इनके बीच की नोड को ब्रेक करना या नहीं करना, ये कैसे पता चल जाएगा? बिकॉज मेरे को पता है 3 के डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है। वो वाला मुझे कहां से मिल सकता है? इस ग्राफ से मिल सकता है 3 के चाइल्ड कौन कौन है, आइटरेट करके, एंड आई विल गेट जो मुझे चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर चलते हैं एंड लेट्स सी ये चीज वर्क करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि मैं कितनी एजेस को तोड़ सकता हूं, मैक्सिमम कितनी एजेस को तोड़ सकता हूं। तो द इजीएस्ट वे इज, आप ना ये जितनी भी डायरेक्ट चाइल्ड वाली एजेस हैं उन हर एज को चेक कर लो कि वो टूट सकती है या नहीं टूट सकती। ये चीज सबको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मुझे ये चेक करना है ना कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी तोड़ सकता हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तोड़ने के लिए मैं इस ग्राफ पे आइटरेट करके ये पता लगा लूं कि 1 और 2 के बीच में एज है, वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। डायरेक्ट एज है ना, मैं मान रहा हूं कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो ये वाली एज मैं एक बार चेक कर लूं कि टूटेगी नहीं टूटेगी। फिर मैं एक बार 1 और 3 के बीच की एज को चेक कर लूं, ये टूटेगी या नहीं टूटेगी। फिर मैं 3 और 4 के बीच की एज एक बार चेक कर लूं, ये टूटेगी नहीं टूटेगी। 3 ही एजेस हैं डायरेक्ट चिल्ड्रन से, मेरे को ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी थी, और मैं हर एज को चेक कर लूंगा फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करके कि उसके कितने चिल्ड्रन है और उसे तोड़ना है या नहीं तोड़ना। ये एल्गोरिथम सबको समझ आया जो मैं कह रहा हूं? तो अब आप लोगों को समझ आया मैंने डायरेक्ट चाइल्ड वाला मैप क्यों बनाया था? जस्ट टू मेक श्योर कि मैं हर एज को चेक कर सकूं एक बार कि उस एज को तोड़ना है या नहीं तोड़ना। तो अब मैं इस मैप पे जब आइटरेट करूंगा तो मेरे को हर एज मिल जाएगी। 1 और 2 के बीच की एज चेक कर लूंगा, 1 और 3 के बीच की एज चेक कर लूंगा, 3 और 4 के बीच की एज चेक कर लूंगा। फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी टू लिस्ट के साइज से भी हो सकता है। समझा नहीं ऋतिक, आप क्या कह रहे हो? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। फ्रीक्वेंसी एरे से थोड़ा इजी पड़ेगा, मतलब आप पता लगा सकते हो कि उसके कितने चाइल्ड है। इट विल बिकम वेरी इजी यूजिंग दैट थिंग कि मतलब तोड़ना है या नहीं तोड़ना। चिल्ड्रन है ना डायरेक्ट आपके पास। अब जैसे मैं इसमें सिंपली आपसे बोलूं कि भाई मेरे को बताओ 1 और 3 के बीच की एज टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं 3 से ना देखता हूं, अगर ये इवन हुआ, इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स का काउंट इवन हुआ तो मैं तोड़ दूंगा, अगर ये इवन नहीं हुआ तो मैं नहीं तोड़ूंगा, है ना? तो इट विल बिकम वेरी इजी और वो फ्रीक्वेंसी से मैं निकाल लूंगा। तो अब एक काम करते हैं, अब आंसर निकालते हैं। ठीक है, आंसर इनिशियली 0, तो आंसर क्या स्टोर कर रहा है? मैक्सिमम एजेस दैट आई कैन ब्रेक। ठीक है, ये स्टोर कर रहा है हमारा आंसर। तो एक काम करते हैं, अब लेट्स अगेन डू द सोर्स डाल दिया। ठीक है, तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, फिर से मैं बीएफएस एल्गोरिथम को ही फॉलो कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राफ में मैंने 1 को डाल दिया। अब मैं डायरेक्ट चाइल्ड का जो ग्राफ है उसमें हर एक एज पे जाके चेक करूंगा कि वो तोड़नी है नहीं तोड़नी। हर एज पे कैसे जा सकता हूँ? एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्रंट एलिमेंट को निकालते हैं क्यू डॉट फ्रंट से, एंड मैं उसको हटा देता हूँ क्यू डॉट पॉप करके। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, मैं एक काम करूंगा इसमें, अब मैं फॉर ऑटो हर चाइल्ड पे जाता हूँ। ठीक है, हर एज पे जाने के लिए मैंने 1 को क्यू से निकाला। अब 1 को क्यू से निकालने के बाद मैं इसके हर चिल्ड्रन पे आइटरेट करता हूँ। 1 का चाइल्ड 2 भी है, 1 का चाइल्ड 3 भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 की एज देखूंगा टूटेगी नहीं टूटेगी, 1 और 3 की एज देखूंगा टूटेगी नहीं टूटेगी, देन मैं 3 और 4 की देखूंगा। तो 1 और 2 की चेक हो जाएगी, 1 और 3 की चेक हो जाएगी, 3 और 4 की चेक हो जाएगी। तो जितनी एजेस हैं सारी एजेस चेक हो रही हैं। इफ ये वाली चीज
इस छोटे केस पे वर्क कर रही है तो बड़े ग्राफ पे भी वर्क करेगी। तो बेसिक पॉइंट वाज टू चेक ईच एंड एवरी एज। तो ईच एंड एवरी एज चेक करने के लिए मेरे पे सारी एजेस आ गई जो भी यूनिक थी। अब उन एजेस को मैं चेक कर रहा हूं कि वो टूटेगी नहीं टूटेगी, और तोड़ने के लिए आई एम मेकिंग यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो डायरेक्ट चाइल्ड ग्राफ में जाते हैं, इस पेरेंट के, इसको मैं इंट पेरेंट ही बोल देता हूं दोबारा से। ठीक है, मैं उसके सारे चिल्ड्रंस पे आइटरेट कर रहा हूं। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है इस एज को ही चेक करना है। मैंने 1 और 2 को चेक करना ही करना है, विजिटेड है नहीं है उसका कुछ लेना देना नहीं। 1 और 2 को चेक करना है, हाँ करना है। फिर 1 और 3 को भी चेक करना है, वो भी श्योर है। फिर जो नेक्स्ट होगा 3 और 4 को भी चेक करना है। इसमें विजिटेड और नॉट विजिटेड वाला सीन नहीं है, बिकॉज सारी एजेस पे जाना है और हर एक को चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये वाली चीज देखते हैं कैसे होगी। तो अब इस वाली चीज को करने के लिए व्हाट आई विल डू ओवर हियर, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ। पहले तो मैं जो चल रहा था चाइल्ड को मैं सीधे सीधे पुश कर देता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड वेदर इस पेरेंट और इस चाइल्ड के बीच की एज तोड़नी है या नहीं तोड़नी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और 3 को अज्यूम कर लो कि करंटली मैं टाइम जो बात कर रहा हूँ वो 3 की बात कर रहा हूँ। मुझे अब ये पता लगाना है कि 1 और 3 की जो एज है उसको ब्रेक करना है या नहीं करना। तो मैं क्या करूं, मैं इस चाइल्ड के चिल्ड्रन पता लगाऊं कितने हैं। अगर ये ऑड हुए तो प्लस इस चाइल्ड को करके ये टोटल इवन हो जाएगा, तो आई विल ब्रेक इट। अगर ये इवन हुए तो +1 इसको करके टोटल ऑड हो जाएगा, तो आई विल नॉट ब्रेक इट। ये वाली चीज करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इंट कुछ भी बोल देते हैं इसको, इंट लेट्स कॉल इट ए बोल देते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसके थ्रू मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ चाइल्ड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ चाइल्ड्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, मैं उसको पास कर देता हूं एक तो जिसके मुझे चिल्ड्रन फाइंड करने चाइल्ड नोड के, एक मैं उसको डायरेक्ट चाइल्ड का ग्राफ पास कर देता हूं, एक मैं उसको पास कर देता हूं अपना फ्रीक्वेंसी का एरे। ठीक है, अब अगर ए की वैल्यू ऑड हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जो मैं आंसर फाइंड कर रहा हूं वो ऑड हुआ, देखो अगर ये वाली चीज ऑड होती है तो +1 करूंगा तो ये इवन हो जाएगा, तो मैं इस एज को तोड़ सकता हूं, राइट। तो अब अगर ये ऑड हुई वैल्यू तो चाइल्ड को इंक्लूड करके टोटल नोड्स का काउंट इवन हो जाएगा। thus we will break the edge of parent and child। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली चीज सबको समझ आ रही है? ओके, रिपीट इट। देखो मैंने क्या करा है, फिर से आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो हम इस चाइल्ड पे आए, अब मैं इस चाइल्ड की चिल्ड्रंस देख रहा हूं कितने हैं। अगर ये ऑड हुए तो +1 करके इस चाइल्ड के मैंने चिल्ड्रंस देखे हैं कितने हैं। अगर ये ऑड हुए तो मैं +1 करूंगा तो ये टोटल इवन हो जाएगा, तो दैट मीन्स मैं इस एज को ब्रेक कर सकता हूं। अगर ये इवन हुआ तो +1 करके ये टोटल ऑड बनेगा, तो दैट मीन्स मैं इस एज को ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने ये देखा कि मेरे को बताओ इस चाइल्ड के चिल्ड्रन कितने हैं। तो अगर एक ही वैल्यू ऑड हुई तो +1 करके इवन हो जाएगा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं। तो यही लिखा मैंने। अब अगर एक ही वैल्यू ऑड हुई तो चाइल्ड को इंक्लूड करूंगा तो उसकी टोटल नोड्स का काउंट इवन हो जाएगा। thus we can break the edge of parent and child।
ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इफ a mod 2, अगर ये ऑड हुआ, a की वैल्यू ऑड हुई, तो a mod 2 1 आएगा। तो 1 आएगा तो मैं काम करता हूं, आंसर की वैल्यू को एक अपडेट कर देता हूं, बिकॉज एक नोट टूट गई। ये चीज सबको क्लियर है। तो जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं बाहर आके रिटर्न कर देता हूं आंसर को। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड्स का मेरे को फंक्शन बनाना है, तो फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड वाली चीज को भी बना लेते हैं। इंट फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड्स, और यहाँ पे हमारा एक सबसे पहले इंटीजर चाइल्ड आ रहा है, फिर एक ग्राफ आ रहा है, और फिर फ्रीक्वेंसी का एरे आ रहा है। तो लेट्स डू दिस थिंग। एंड सबसे पहले हमारा एक नोड आ रहा है, देन हमारा ग्राफ आ रहा है, ये डायरेक्टेड चाइल्ड वाला। तो डायरेक्ट चाइल्ड वाले का जो ग्राफ था, इट वाज दिस। लेट मी जस्ट कॉपी इट एंड ठीक है। तो अगर मुझे चाइल्ड काउंट करने हैं तो फ्रीक्वेंसी एरे में, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी ना हो बाय रेफरेंस पास कर देता हूँ, वरना कॉपी क्रिएट होगी तो टाइम लगेगा। तो बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, चेंजेस तो होने नहीं है, तो दैट डजंट मेक एनीथिंग। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैं यहां से रिटर्न कर दूं 0। तो देखो हुआ क्या, मैंने इसको बोला था ना कि भाई मेरे को इसके चिल्ड्रन बता, 3 के चाइल्ड बता। तो 3 के चाइल्ड अगर मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे अगर मेरे से किसी ने पूछा 2 के चाइल्ड बताओ, मैंने पूछा इस चाइल्ड के मेरे को ना बताओ कितने चिल्ड्रन है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैं इसके चिल्ड्रन फाइंड कर सकता हूं कितने होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखो और ऑटो नोड डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ सोर्स, ठीक है, आंसर होगा एक जो मेरे को फाइंड करके बताएगा कि इसके चिल्ड्रन कितने हैं। इनिशियली आंसर को 0 रखते हैं, आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड कर देता हूं नोड के। ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर होगी। डायरेक्ट चाइल्ड एंड, ठीक है, बाहर आके हम कर देते हैं रिटर्न आंसर। ये चीज सबको समझ आई जो फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड्स का मैंने लिखा है कोड। तो हमने क्या करा देखो, ठीक है, तो मैंने क्या करा देखो, अगर किसी भी चाइल्ड के मुझे पता लगाने कितने चिल्ड्रन है, मुझे 2 सेकंड नोट के पता लगाने चिल्ड्रन कितने हैं, अगर इसका फ्रीक्वेंसी एरे का काउंट 0 हुआ तो दैट मीन्स कि ये वाले में चिल्ड्रन नहीं होंगे, बिकॉज इसके चाइल्ड ही नहीं है। और अगर मैं जैसे 3 के चिल्ड्रन पता लगा रहा हूँ कितने हैं, तो 3 के चिल्ड्रन पता लगाने के लिए मैंने देख लिया अगर फ्रीक्वेंसी काउंट 0 नहीं है तो दैट मीन्स इसका कोई चिल्ड्रन होगा। तो मैंने क्या करा, 3 के अगर फ्रीक्वेंसी काउंट 0 नहीं है तो भाई उसके चिल्ड्रन होंगे, तो उसको काउंट करने के लिए एक बकेट क्रिएट करी, आंसर 0। तो आंसर के अंदर मैंने 1 प्लस कर दिया, भाई फ्रीक्वेंसी 0 नहीं था तो इसका ऑब्वियस सी बात है एक चाइल्ड तो होगा। तो 1 प्लस मैंने बोला कि इस बाकी रिमेनिंग ट्री के जो चिल्ड्रन है वो मुझे पता करके बता दे कितने हैं। तो जितने भी वो मेरे को रिकर्जन बताएगा कितने होंगे, तो मैं 1 प्लस ऐड करके उसको रिटर्न कर दूंगा। वाई रिकर्सिव फंक्शन, बिकॉज ग्राफ के अंदर, ट्रीज के अंदर वी नीड टू यूज रिकर्जन, अदरवाइज आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसिडर ईच एंड एवरी स्टेप। मतलब चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड और चाइल्ड के नेबर्स, आप ये खुद से तो नहीं देखना चाहोगे। ट्रीज के अंदर रिकर्जन ही यूज होता है। ठीक है, तो रिकर्जन के बिना तो नहीं होगा काम। देखो सिंपली बताता हूं, 3 है, 4 है, 5 है। रिकर्जन जब करते हैं तो इसके मुझे चिल्ड्रन पता लगाने हैं, राइट, इस नोड के मुझे चिल्ड्रन पता लगाने कितने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इधर बोला कि मेरे को इस नोड के चाइल्ड पता लगाने कितने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना नीचे वाले जितने भी नोड्स हैं वो रिकर्जन को बोलता हूं कि मेरे को पता करके बताओ इधर का काउंट कितना है।
जो भी रिकर्जन मेरे को इसका आंसर बताएगा 1 प्लस करके इसको रिटर्न कर दूं, ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने यही करा है। अगर मेरे को किसी भी एक सोर्स के चिल्ड्रन पता लगाने थे कितने, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई उसके सारे चिल्ड्रंस पे जितनी भी नोड्स उसके साथ अटैच्ड हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मुझे इसके जितने भी चिल्ड्रन है सब पता लगाने हैं। तो मैंने बोला भाई इस रिमेनिंग वाले का सब आप बता दो, ठीक है, जो भी होगा वो मुझे आप बताओ, और उसे ऐड करने के बाद इसमें +1 कर दूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देख सकते हो। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग। नहीं, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी, अथर्व प्लीज कंसिडर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप किसी भी नोट से अगर उससे चिल्ड्रन पूछते हो, ठीक है, तो वो वाली चीजों को आपको नीचे वाली नोट्स को काउंट करना है। मैं इस वाली ट्री की ब्रांच को काउंट करना चाहता हूँ, इस वाली ट्री की ब्रांच को काउंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को वो चीज चाहिए होगी। ठीक है, तो ये रिकर्जन है, मतलब बेसिक स्टेप है। आपको अगर काउंट करना है तो आप बाकी के पूछ लो और एक ऐड करके आप रिटर्न कर दो उस वाली चीज को। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस थिंग एंड सी वेदर दिस थिंग रन्स और नॉट। ठीक है, तो इसको हम बिल्ड करते हैं। कुछ एरर आया है, तो लेट्स सी। ओके, तो ये 1 होगा बिकॉज हमेशा रूट नोड 1 है, तो आई कैन पास 1 ओवर हियर। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं इस वाले स्पेस में। ठीक है, तो ये आउटपुट सही आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। तो यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड। ठीक है, तो ये हमारा कोड सही चल रहा है। स्क्रीन पॉज हो गई है, सबके लिए स्क्रीन पॉज हो गई क्या? इज इट नॉट वर्किंग एनी मोर? ओके, तो इट्स वर्किंग। आई होप द एल्गोरिथम इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो ये चीज चल रही है, टीएलए नहीं आया। ठीक है, तो वी डिडंट गेट अ टीएलई एरर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाँ, कोड मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई होप कि आपने ये वाली आईडी को स्टोर कर लिया होगा। ठीक है, पहले वाली आईडी को। तो आई एम अपडेटिंग द कोड। ठीक है, तो आई सेव इट। तो आप ये यूआरएल को स्टोर कर लो, यू विल गेट द कोड फ्रॉम हेयर। वैसे में भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब जो आप कह रहे हो नंबर ऑफ एजेस को रिमूव करने का। ठीक है, वो वाली चीज आप ट्राई करके देख सकते हो। आई हैव टू लुक एट इट कि वो चीज चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे, दिस इज वन ऑफ द वेज। आपका वे भी चल सकता है। वी आर कंसिडरिंग वन ऑफ द वे जो चीज चलती है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, सिर्फ मेरा मेथड है जिससे चलेगा। ठीक है, आई होप कि अभी आपने यूआरएल नोट कर लिया होगा और ये वाली चीज आप चला सकते हो। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम सबको क्लियर है? आफ्टर फाइंडिंग द नंबर ऑफ नोड्स एट ईच नोड, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग कुणाल। ये जो हमने एल्गोरिथम लिखी है, ये एल्गोरिथम क्लियर है सबको कि एल्गोरिथम क्या क्या रही है? ठीक है,
ठीक है, तो अब यू टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका मैं कोड कराऊं या फिर आई जस्ट एक्सप्लेन यू द एल्गोरिथम एंड यू कैन कोड इट ऑन योर ओन? कैसे करना है? इजी लग रही है प्रॉब्लम्स? ठीक है, प्रॉब्लम्स आर इजी, तो ऐसा लग रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है, हाँ मतलब आई विल एक्सप्लेन द एल्गोरिथम, और आप लोगों को पिछली दो प्रॉब्लम्स में आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई आई यूज्ड दोज पर्टिकुलर अप्रोचेस और इंट्यूशन कैसे बिल्ड हुई उसकी। ठीक है, वो वाली चीज आप उससे देख सकते हो। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज दिस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विद स्वैप्स। तो ये वाली प्रॉब्लम एक्चुअली में अमेरिकन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में आ रखी है। ठीक है, तो ये पूछी गई थी अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो आप इस प्रॉब्लम को पढ़ो, जस्ट ओपन दिस प्रॉब्लम, आप इस यूआरएल पे जा सकते हो एंड दिस इज ऑफ लीड कोड जो हम करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखो गिवन क्या है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट दिस प्रॉब्लम सेज एंड हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो दिस प्रॉब्लम सेज कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड आपको पेयर गिवन है इंडिसेस के। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या है और वो what we need to do in this algorithm, let us try and figure this thing out और इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो just let me go to a new page and तो we are given a string, तो एग्जांपल ले लेते हैं, dcab स्ट्रिंग गिवन है और हमें पेयर गिवन है, pairs are 0 and 3 and 1 and 2, so we have these pairs 0 3 and 1 and 2। so हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, we can switch और swap इन पेयर्स के बीच में n नंबर ऑफ टाइम्स, वो हमें अलाउड है, मैं जितनी बार स्वैप करना चाहूं मैं उतनी बार स्वैप कर सकता हूं। तो इंडिसेस होते हैं 0 1 2 3, तो 0 और 3 इंडिसेस को मैं स्वैप कर सकता हूं जितनी मर्जी बार चाहूं, 1 एंड 2 को मैं स्वैप कर सकता हूं जितनी बार मैं चाहूं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे सबसे लेक्सियोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है विच आई कैन क्रिएट, वो क्रिएट करनी है। तो वो क्रिएट करने के लिए देखो डीसीएबी में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेक्सियोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आई कैन डू स्वैपिंग ऑफ 0 एंड 3। 0 एंड 3 की अगर मैं पहले स्वैपिंग करता हूं तो क्या बन जाएगा, बी सी ए डी, तो 0 1 2 3। अब 0 और 3 को आप चाहो तो फिर से स्वैप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज स्वैप हो सकती है दोबारा से इफ यू वांट। नेक्स्ट क्या होगा, 1 और 2 को स्वैप कर सकते हैं, 1 और 2 को अगर मैं स्वैप कर दूंगा तो बी ए सी डी, तो 0 1 2 3। तो इन्हीं में स्वैपिंग कर सकता हूं मैं, अगर इनमें स्वैपिंग मैं करता रहूंगा बार बार तो सबसे छोटी जो स्ट्रिंग है वो यही बन रही है, तो इसका आउटपुट बी ए सी डी होना चाहिए। ठीक है, सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऐसे बन सकती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, डीसीएबी स्ट्रिंग अगर हमें गिवन है और उसके अंदर पेयर बढ़ा दिया, 0 3 है 1 2 है और 0 2 भी डाल दिया। 0 2 डालने से क्या होता है, इफ आई ऐड अ पेयर ऑफ 0 2 देन लेट अस सी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब स्वैपिंग वाली चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डीसीएबी है तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ इन्होंने क्या कर रखा है, देखो डीसीएबी है तो पहले 0 और 3 को स्वैप करा तो बीसीएडी हो गया, देन 0 और 2 को स्वैप करा तो एबीसी एसीबीडी हो गया, देन 1 और 2 को स्वैप कर दिया तो एबीसीडी हो गया। तो लेक्सियोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये बन चुकी है। तो आपको ये वाली पेयर्स का यूज करके और इस स्ट्रिंग को सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना है। तो ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है कि हमें करना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो if the problem statement is clear then we can move forward to the solution and we can see कि how we can solve this particular problem। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी?
आई एम नॉट आस्किंग कि मेरे को कोड बताओ कि कौन सी एल्गोरिदम लगाओगे, क्या यूज करोगे। आई एम जस्ट आस्किंग कि भाई मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं ये स्ट्रिंग है, मैं इससे कैसे बनाऊं सबसे छोटी स्ट्रिंग, क्या अप्रोच को मैं फॉलो करूं। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज वेरी मतलब जेनरिक टर्म, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट एंड हाउ। मतलब थोड़ा सा मतलब लॉजिक कि क्या करोगे, कैसे करोगे। हाँ, तो वैष्णवी इज सेइंग करेक्ट। कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स किसके, बट व्हाट आर कनेक्टेड कंपोनेंट, मतलब किस चीज के कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लें। अजय, जनरेट पॉसिबल ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, नो नो वी वोंट डू दैट। मतलब देखो, मतलब आपने जो बताया है सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स को जनरेट कर दो, दैट इज समथिंग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप फंस जाओगे। हाँ, तो एवरीवन इज करेक्ट भाई, इंडेक्सेस का यूज करते हैं और मस्त इसमें घुमा देते हैं चीजों को और देख लेते हैं चीजें कैसे होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम पहले बेसिक वाला एग्जांपल को कंसिडर करते हैं और लेट्स सी कि वो कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, लेट्स सी वन थिंग, और मैं काम करता हूँ, मैं ना इन पेयर्स का एक ग्राफ क्रिएट करता हूँ। पेयर्स का ग्राफ क्रिएट करने से क्या होगा और क्यों करते हैं वो भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो वी हैव दिस स्ट्रिंग DCAB और इनके इंडेक्सेस मैंने मार्क कर रखे हैं। लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज द कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ग्राफ जो बनेगा, और 1 और 2 का बना दिया। अब देखो ये चीज आपको समझ आती है कि भाई अगर मैं एक कनेक्टेड कंपोनेंट की बात करता हूं, तो इस कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर मैं किसी भी कैरेक्टर को किसी भी पोजीशन पे ले जाके रख सकता हूं। हाँ, आ रहे हैं पैरुल, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब क्यों ग्राफ वाली चीज लगाई और कैसे वो चीज आसान होगी, तो वो चीज आपको भी समझ आ जाएगी। ये चीज बताओ कि भाई 0 और 3, 1 और 2, ये दो कंपोनेंट बन गए। अब मुझे ये चीज मतलब आई कैन से इट फॉर श्योर कि भाई इस कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर मैं किसी भी कैरेक्टर को, मतलब इंडेक्सेस है ना 0 और 3 है, तो इन दोनों के बीच में जो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं मैं उनको किसी भी पोजीशन पे ले जाता हूं। अगर इसके अंदर एक और इंडेक्स होता लेट्स से 4, तो भाई मैं इन 0 और 4 को स्वैप कर सकता हूं। मुझे पता है मैं 0 को पहले 3 पे ले जाऊंगा, फिर 3 को 4 पे ले जाऊंगा, या मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, 4 को 3 पे, 3 को 0 पे। तो जो कनेक्ट इंडेक्सेस कनेक्टेड है आपस में एक वे में, तो मैं इन इंडेक्सेस के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कभी भी किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूं अमंग्स दिस कनेक्टेड ग्राफ। ये चीज सबको समझ आती है। व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही होगा। 1 और 2 ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इफ दे आर कनेक्टेड, तो मैं इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स और इन कनेक्टेड इंडेक्सेस के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी मैं किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूं आराम से। वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं आपस में उनको मैं किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूं। बट एक चीज दैट इज फॉर श्योर इज कि मैं 0 वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट पे नहीं ले जा सकता, बिकॉज दीज टू आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी वे। मैं 0th वाले इंडेक्स के कैरेक्टर को फर्स्ट इंडेक्स पे कभी नहीं ले जा पाऊंगा, बिकॉज दीज टू आर नॉट कनेक्टेड। तो मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि भाई अगर इसमें मैं इनके ग्राफ वाली चीज को क्रिएट कर दूं, ठीक है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा ग्राफ क्रिएट करने से 0, 3 एंड देयर इज समथिंग x, देयर इज समथिंग y, तो इनके बीच में मैं किसी भी कैरेक्टर को किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूं। और मुझे दूसरी चीज ये समझ आ रही है कि अगर दूसरा कोई कनेक्टेड कंपोनेंट है तो मैं इसके किसी भी कैरेक्टर को इसके किसी भी इंडेक्स पे ले जाके रख सकता हूं।
ये दो चीजें आपको सबको समझ आती है जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, कर लेते हैं। कौन सी चीज रिपीट करनी है? मतलब आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपको अगर जीरोथ को थर्ड कैरेक्टर पे, थर्ड इंडेक्स पे ले जाना, जीरो इंडेक्स वाले को, तो आप ले जा सकते हो बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो ना। उसी तरह से 1 और 2 को भी आप स्वैप कर सकते हो बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, 1 और 2 को आप स्वैप कर सकते हो बिकॉज वो गिवन है। तो उसका अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट बना दूं तो इसमें मैं स्वैपिंग कर सकता हूं। तो अगर यहाँ पे एक फोर्थ इंडेक्स और होता और मैं इधर बोलता कि ये फोर्थ इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इसका मतलब हो गया 2 और 4 का भी पेयर एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 और 2 को स्वैप कर दो, देन 2 और 4 को स्वैप कर दो। तो जो फर्स्ट प्लेस का कैरेक्टर था, अगर ए बी सी थे, तो 1 और 2 को स्वैप करोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। देन 2 और 4 को स्वैप करोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो मैं ए को फोर्थ पोजीशन पे ले गया एंड मैं बी को फर्स्ट पोजीशन पे ले आया। सी को भी मैं आगे ले जा सकता हूँ इफ आई वांट। 2 और 1 को, 1 और 2 को दोबारा से स्वैप करके इधर सी आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा। तो इफ आई हैव अ कंपोनेंट जिसमें आपस में कनेक्शन है, तो मैं इसके किसी भी कैरेक्टर को किसी भी उस नोड पे ले जा सकता हूं जो इसके साथ कनेक्टेड है। बट क्या मैं जीरो को फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ले जा सकता हूं? कोई वे नहीं है कि मैं जीरो को फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ले जा सकूं बिकॉज दीज टू आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी वे। या तो 3 1 से कनेक्टेड होता तो मैं कर सकता था, बट 3 भी 1 से कनेक्टेड नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट और टू टेक द जीरोथ इंडेक्स कैरेक्टर टू द फर्स्ट इंडेक्स। ये वाली चीज सबको क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये चीज सबको क्लियर है कि जो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है उन्हीं में मैं कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूं, उनके अलावा मैं स्वैपिंग ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मतलब सॉल्यूशन इज वेरी इजी, सॉल्यूशन इज प्रीटी इजी नाउ। अगर मैं एक बड़ी सी स्ट्रिंग बोलता हूं आपको, मेरे पास कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, तो कंसिडर करो इफ आई हैव अ स्ट्रिंग x a c e f या c d, ये कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं 0 को 1 से कनेक्ट कर देता हूं एंड 1 को मैं कनेक्ट कर देता हूं 5 से। ठीक है, मैं बोलता हूं कि एक तो ये पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और मैं बोलता हूं कि 2 को मैंने 3 से कनेक्ट करा और मैंने 3 को कनेक्ट करा 4 से। तो अगर मैं इनके ग्राफ बनाऊं, इन इंडेसेस के, जो पेयर्स के इंडेसेस मेरे को गिवन है, अगर मैं इसके ग्राफ बना दूं, ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो, एक बनेगा 0 कनेक्टेड है 1 से, 1 कनेक्टेड है 5 से, एक बनेगा 2 कनेक्टेड है 3 से, एक बनेगा 3 कनेक्टेड है 4 से। तो दीज आर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। मैं इसके किसी भी कैरेक्टर को आपस में कभी भी स्वैप कर सकता हूं जब मेरा मन हो। इट्स वेरी इजी। तो अब एक काम करते हैं, देखो इट्स वेरी इजी ना, कि भाई ये इंडेसेस मिल गए 0 1 और 5 के। अब मेरे पास ये अगर इंडेसेस एग्जिस्ट करते हैं तो मैं इस इंडेसेस से 0 1 और 5 से स्ट्रिंग में से ये कैरेक्टर्स भी फाइंड कर सकता हूं जो मेरे पास कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इफ आई हैव 0 1 एंड 5 कि ये मेरे पास इंडेसेस हैं, आई विल गेट x a एंड c एज वेल। तो उसी तरह से मैं इन इंडेसेस के भी कैरेक्टर्स को गेट कर सकता हूं 2 3 4 के। तो आई विल गेट d e एंड f। तो इट्स वेरी इजी। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये कैरेक्टर्स मेरे पास हैं, ये कैरेक्टर्स मेरे पास हैं, तो मैं काम करता हूं, इनको ना मैं सॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, इसके इंडेसेस भी सॉर्ट मार देता हूं, इसके मैं कैरेक्टर्स भी सॉर्ट मार देता हूं। मान लो इन दोनों को सॉर्ट मारता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग करने के बाद आफ्टर सॉर्टिंग ये क्या हो जाएगा, a c x। तो 0 1 5 वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है इंडेसेस, और मैं दूसरे में भी ये करता हूँ, सॉर्ट मार देता हूँ 2 3 4। तो ये भी d e f ही रहेगा। तो मैं देखो इस वाले कैरेक्टर पे जीरोथ इंडेक्स पे a डाल देता हूँ, फर्स्ट वाले पे c डाल देता हूँ, फिफ्थ वाले पे x डाल देता हूँ। तो ये सबसे लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर बनेगा, सबसे छोटा। तो अब क्या होगा,
0th वाले पे क्या आ जाएगा, x की जगह a, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा c, फिफ्थ पे क्या आ जाएगा x। तो मैं d को 2 पे डाल देता हूँ, e को 3 पे डाल देता हूँ, f को 4 पे डाल देता हूँ, d 2 पे ही है, e f। तो इसकी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी, a c d e f x। लेक्सियोग्राफी के लिए सबसे छोटी स्ट्रिंग बन जाएगी। ये एल्गोरिथम सबको क्लियर है जो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी है? तो ग्राफ के थ्रू कितना इजी हो गया ना। ग्राफ के थ्रू आप एक कनेक्टेड कंपोनेंट बना लो, कनेक्टेड कंपोनेंट बनाने के बाद कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, उन कैरेक्टर्स को और उन कनेक्टेड कंपोनेंट्स को सॉर्ट मार दो, ठीक है ना। हाँ, कमाल हो गया ना। तो इसकी मतलब इंडेक्सेस इसलिए सॉर्ट कर दिए क्योंकि हो सकता है कि आप जो रख रहे थे ये ग्राफ आ जाए वो 3 2 4 का आ जाए। तो अब आपको जो रखना है वो अगर 3 2 4 का ग्राफ बन गया तो आप 3 पे तो डी को नहीं डालोगे ना, 3 पे डी को डाल दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यू वांट सॉर्टेड इंडेक्स पे ही सबसे छोटा एलिमेंट जाए, सबसे छोटे पे ही सबसे वो जाए। मैंने ग्राफ सॉर्टेड बना रखा था तो इसलिए आपको वो नीड नहीं लग रही, बट हाँ हो सकता है ना वो चीज हो जाए। तो इसकी एल्गोरिदम लिखें या आप लोग लिख लोगे? Should I write the algorithm of this algorithm, this problem or not? लिख लोगे कंफर्म? मतलब कुछ भी नहीं करना है, दो आपको वेक्टर बनाने हैं, एक इंटीजर का बना देना, एक कैरेक्टर का बना देना, और उनको सॉर्ट करके बस एलिमेंट्स अरेंज कर देना। कनेक्टेड कंपोनेंट बनाने, कंपोनेंट जब कनेक्टेड बन जाएंगे सिंपली बस भाई मतलब हो जाएगा काम। You want me to write the code for this thing or will you be able to write it on your own? You don't want me to write the code. Let's do one thing. मैंने इसका ना कोड सबमिट कर रखा है, तो अगर यहाँ पे जाएं तो मैं आपको इसका कोड दे देता हूँ। तो आप लोग को मैं ये कोड दे दूं, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस थिंग, तो मैं इसका कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कोड, ठीक है? मैं इस कोड को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किया क्या है, तो देख लो कि किया क्या है। तो पेयर्स हैं, पेयर्स के अंदर सबसे पहले हमने एक मैप बनाना है, राइट? तो मैप बनाने के लिए वी हैव दिस कोड इज वेरी इजी, मतलब कोड में कुछ भी नहीं है। वी हैव दिस पर्टिकुलर इंडेक्सेस, तो मैं बना लेता हूँ। आई विल जस्ट गेट यू थ्रू द कोड ताकि आप लोगों को ये वाला कोड मिल जाए और आप ये कर लो, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो इधर हमने क्या किया, देखो पेयर्स हैं, पेयर्स का मैंने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है? वी हैव द वेक्टर ऑफ दिस पेयर। तो इफ यू वांट कि मतलब कैसे बनता है ये वाला तो आप बना ही लोगे, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ना वेक्टर पे आइटरेट करता हूँ एक एक करके। तो देखो इसके अंदर पेयर डले हुए हैं, फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलती है, डॉट फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू कैसे मिलती है, डॉट सेकंड से। तो मैंने क्या करा है इसमें, देखो पेयर्स वाली चीज जो है वेक्टर की, उस पर आइटरेट करा, तो डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड से भी हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो हैश मैप के अंदर अगर आपको डालना है। तो हमारा जो आइटरेटर है वो एक एक करके इसके हर एक एलिमेंट पे जा रहा है। पहले आई का आइटरेटर शुरू हुआ 0 से एंड इट इज गोइंग टिल द लास्ट एलिमेंट। तो इस वाले जब पेयर पे मैं आया हूं तो इस पेयर के अंदर वी हैव अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर वेक्टर है। तो वेक्टर के एलिमेंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहो तो इसको आप 2D की फॉर्म में ही एक्सेस कर सकते हो, 0 1, ठीक है? और 0 को मैं आई से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ऐसे दोनों एलिमेंट्स में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मुझे कनेक्टेड ग्राफ बनाना है तो 0 इज कनेक्टेड टू 3 एंड ये बाय डायरेक्शनल एज है, यूनि डायरेक्शनल एज नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, बाय डायरेक्शनल है। तो हमने क्या करा, दोनों के बीच में एज डाल दी, 0 से लेके 1 पे भी डाली और 1 से लेके 0 पे भी डाली, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, 0 का जो चाइल्ड है 3 का भी चाइल्ड होगा 0, बिकॉज बाय डायरेक्शनल ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा,
ठीक है, तो एक ग्राफ ये बन गया। और 1 और 2 की बात करते हैं। 1 और 2 वाली जब बात करूंगा तो 1 और 2 का भी ग्राफ ऐसे बनेगा। तो 1 के लिए हमने 2 चाइल्ड डाला और 2 चाइल्ड के लिए हमने उसका सेकंड नोड के लिए उसका चाइल्ड डाल दिया 1, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, मैंने एक विजिटेड का एरे लिया कि भाई आप एक पर्टिकुलर नोड पे विजिट कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। ठीक है, तो वो वाली चीज के थ्रू। तो अब इधर देखो हमने क्या करा है, हमने सिंपली ये करा है कि मेरे को इस कनेक्टेड कंपोनेंट पे आइटरेट करना है। तो यू कैन यूज बीएफएस, यू कैन यूज डीएफएस, क्योंकि आपको हर इंडेक्स पता लगाना है कि कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो इस कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो डीएफएस के थ्रू एग्जिस्ट मैं पता लगा सकता हूँ, हर एक नोड पे जा सकता हूँ। तो हमने क्या करा, मैं इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लिया और डीएफएस की एल्गोरिथम लगा दी कि भाई जाओ और इस जीरो के सारे चिल्ड्रंस या फिर जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो सब पता लगा लो। तो अब क्या करा, ऊपर डीएफएस की एल्गोरिथम में गए, इंडेक्सेस को पुश करता रहा। ठीक है, और एक बार अगर एक इंडेक्स इंसर्ट कर दिया, दोबारा इंसर्ट ना हो तो उसके लिए विजिट भी मार्क कर दिया ट्रू। तो उसके लिए डीएफएस एल्गोरिथम लगा के मैं इसके सारे चिल्ड्रन पे चला जाऊंगा, तो मेरे पास इंडेक्सेस के अंदर आ जाएगा 0 और 3। इंडेक्सेस का जो वेक्टर है उसके अंदर आई हैव 0 एंड 3। ठीक है, अब इंडेक्सेस आपके पास यहाँ पे डीएफएस के बाद आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको इसके साथ जो अटैच्ड कैरेक्टर्स हैं वो भी चाहिए, है ना। तो अगर इस वाले की ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो 0 और 3 पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी स्टोर करना है, तो डी और बी मेरे को चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कैरेक्टर्स का वेक्टर बनाया और उसके अंदर मैंने कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इंडेक्सेस वेक्टर पे जो वैल्यूज हैं उन पर्टिकुलर वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है उसको मैंने कैरेक्टर के वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। तो यही करा है। अब क्या करा, इसको भी सॉर्ट मारा और इसको भी सॉर्ट मारा, जो हमने यहाँ पे किया था। दोनों को सॉर्ट कर दिया। दोनों को सॉर्ट करने के बाद अब 0th पे मैंने दोनों को सॉर्ट करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। तो 0th पे बी स्टोर कर दिया, थर्ड पे डी स्टोर कर दिया, तो ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने एक कंपोनेंट के लिए कर दिया, तो उसके अंदर सारी चीजें विजिटेड मार्क हो गई होगी, तो दोबारा उस वाले विजिटेड पे जाओगे नहीं, अगर वो विजिटेड है तो जाओगे नहीं। तो फिर दूसरे कंपोनेंट पे गए, उसके साथ भी सेम चीज करी, उसके साथ भी सेम चीज करने के बाद फिर से तुमने इसको सॉर्ट करके फिर से स्टोर कर दिया। जब पूरी चीज हो गई तो आपने उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। जब आपका ये पूरा लूप चल गया फॉर ईच लूप का, तो बाहर आके आपने उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। जितने भी कंपोनेंट्स थे सबको आइटरेट करा, सॉर्ट करा और स्टोर कर दिया। क्या ये एल्गोरिथम सबको क्लियर है? हाँ हाँ, दे देता हूँ। ये वाला कोड भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, इसमें मतलब क्लास बनी हुई है, बाकी चीजें आप खुद से कर लेना। तो मैंने इस कोड को सेव कर दिया है। तो लास्ट में बस वो जो आपका URL आईडी है उसको सेव कर लो, बाकी तो चीजें सेम रहती है, 160636। ठीक है, स्टोर दिस थिंग, तो ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, मिल गई ये वाली आईडी, लिख ली सबने? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ग्राफ्स के वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड यू हैव डन क्वेश्चन जो आपको पहले नहीं आपने करे होंगे। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गजब। हाँ श्वेतांक, आई ट्राई, मैं और ऐसी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस किया करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई थिंक चलते हैं अब। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। खेमचंद, वी हैव टू यूज, हाँ आप एसटीएल यूज कर सकते हो, मतलब कोई मना नहीं करेगा। खेमचंद, यू कैन यूज एसटीएल, मतलब ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। चलो बाय गाइस।
Hey guys, so this is Sanket here from Coding Blocks, and we are again back with the webinar series on our YouTube channel, right? So आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड काफ़ी टाइम बाद वी आर हेयर विद सम वेबिनार सीरीज. सो ये 3 वेबिनार की सीरीज होगी एंड वी विल बी पोस्टिंग द वेबिनार्स डे आफ्टर एवरी कंजिक्यूटिव डे, राइट? एंड एक वेबिनार आज पोस्ट हो रहा है, सो वी विल पोस्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार टुमारो and the third part will be posted most probably day after tomorrow, right? So किसको देखना चाहिए वेबिनार? What are the target audience? So the target audience are those guys who are good with the basics of dynamic programming, right? मतलब हम यहाँ पे बहुत ही रूट लेवल पे जाके एंड बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके ये नहीं देख रहे होंगे कि what is dynamic programming and how to code a dynamic programming solution, what are the caveats, what are the techniques of the dynamic programming. इतना basic level पे नहीं जाएंगे. What are the basic 6 or 7 dynamic programming problems in which you can build your basics. So इतना basic level पे नहीं जाएंगे, but it is for those who are good with the basics and want to deal some more challenging problems, right? So हम कुछ ऐसी problems को deal करेंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. एंड ऑब्वियसली द प्लेसमेंट सीजन इज़ गोइंग ऑन एंड द इंटरव्यू सीजन इज़ गोइंग ऑन. सो काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी प्लेसमेंट्स हो रही होगी एंड यू विल बी फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ईदर इन योर फेस टू फेस इंटरव्यूज और योर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड नो हाउ टू कोड सम गुड लॉजिक्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग. बिकॉज इफ़ मैं बात करूँ अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन की, दोनों में ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So we will discuss 2 to 3 problems in each webinar per day, and after this series of 3 webinars we will be having good 7 to 8 problems which we would have discussed in this series, right? So कुछ problems हम लोग lead code से लेंगे, कुछ problems हम लोग spoj से लेंगे, some from HackerRank maybe. So अलग अलग platform से we will be discussing various kind of problems, but the focus is you should be good with the basics of dynamic programming dynamic programming, right? So अगर किसी को dynamic programming के basics नहीं आते, I would highly recommend that you should go in the description of this video, right? Because मैंने वहाँ पे एक link post किया है. So the link is for a another webinar which was held some days back, few months back to be very precise. So in that webinar we discussed the basics of dynamic programming. So I would highly recommend कि पहले आप जाके वो वीडियो देखें and just brush up your basics and gear up your basics, right? Because dynamic programming एकदम से आ जाने वाली paradigm नहीं है. So I would highly recommend just go to the link in the description. I will try to post the link also in the iCard at the top, right? So आप दोनों में से कहीं से भी link उठा सकते हैं and you can go. It's also a pretty big webinar, so it will take some time for you to grasp and absorb the concepts, right? So चलो start करते हैं. And the very first problem जो आज हम discuss करेंगे, that is adjacent bit count. So the problem is from spoj. So let us see what the problem says. So the problem is adjacent bit counts, right? So the problem code is GNYR09F and it's a dynamic programming problem. So let us see what the problem says. So problem क्या है कि for a string of n bits x1 x2 up to xn, the adjacent bit count of the string is given by x1 into x2 plus x2 into x3 plus x3 into x4 and so on. So क्या कह रहा है प्रॉब्लम कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन होगी and the string will be a binary string. So what a binary string is, the string will contain only the characters as 0 and 1, right? और उसमें से हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं एडजेसेंट बिट का. So what does the concept of adjacent bit is? So the adjacent number of adjacent bits in a binary string will be the product of the x1 bit with the x2 bit plus the x2 bit with the x3 bit plus the x3 bit with the x4 bit and so on, right? So या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और we can define it as कि कितने consecutive and adjacent pair of 1 है हमारी string में. We will see detailed description. So पहले देखते हैं कि आगे प्रॉब्लम क्या कह रही है. So we have to write a program which takes an input n and k and returns the number of binary strings x
ऑफ n बिट्स, मतलब हमें क्या करना है, n और a का हमारे पास n और k का इनपुट आएगा और वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। हमें बतानी कि ऐसी कितनी बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगी जो n लेंथ की होंगी, राइट, एंड उनके एडजेसेंट बिट काउंट की वैल्यू आएगी 5, सॉरी एडजेसेंट बिट काउंट की वैल्यू आएगी k, एंड फॉर द गिवन एग्जांपल k is given as 5, so n is given as 5 and k is given as 2, right? So हमें क्या बताना है कि एक n और k नंबर आएगा, वी हैव टू डिटरमाइन कि कितनी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगी जो कि n लेंथ की होंगी एंड उनका एडजेसेंट बिट काउंट k होगा. So let us just decipher the problem and see what the problem is trying to say, right? So the problem says that it will be having some binary strings. So the binary string can be like 1 1 0 1 0 1 1 0, right? So this is a given binary string. So we have to determine the adjacent bit count. So adjacent bit count कैसे define कर सकते हैं? Suppose this is the x1 bit, this is the x2 bit, this is x3, x4 and so on, right? So adjacent bit count इन्होंने कैसे define किया है? This is the sum of xi into xi plus 1 for I ranging from 1 to n minus 1, right? So कुछ कुछ ऐसा है, क्योंकि इससे क्या फॉर्मूला बन रहा होगा हमारे पास, दिस विल बी x1 into x2 plus x2 into x3 and so on. इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा. या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वरना तुम ऐसे भी देख सकते हो कि एडजेसेंट बिट काउंट क्या है, दिस बिट is adjacent bit. Why? Because both the bits are 1 and both are adjacent to each other, and this is not an adjacent bit. This will not be counted as in the adjacent bit count, so we will not consider this. So the next pair will be this one, right? So the next pair will be this one. So the adjacent bit count for this given string will be 2, and we can also put it in the formula like 1 into 1 plus 1 into 0 plus 0 into 1 plus 1 into so this is 1 into 1, this is 1 into 0, then this is 0 into 1, then again 1 into 0 plus 0 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 0, right? So अगर हम इसको solve करते हैं, so this will be 1 and rest of the things will be 0 0 0 0 and again 1 and again 0, so this will be 2, so this is coming out to be 2. So ये कैसे 2 आ रहा है? जब भी हमारे पास कंसेक्यूटिव वंस होते हैं, दो कंसेक्यूटिव वन होते हैं, सो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है. अदरवाइज अगर दोनों 0 है या एटलीस्ट एक भी 0 है तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आने वाला है. सो वी कैन सी दैट कि जितने भी कंसेक्यूटिव वंस पेयर में हैं, दैट विल काउंट टू आवर एडजेसेंट बिट काउंट. सो हमें यही निकालना है कि ऐसे कितने वन हैं जो पेयर में एडजेसेंटली प्रेजेंट है, राइट? So I hope the description of the problem is clear to you all, right? So let us see how we can decipher the problem and how we can think for a dynamic programming solution for this one. So मैं क्या कहता हूँ? So obviously to determine a dynamic programming solution, we should first think recursively that how we can code a recursive solution, right? So क्या कह सकते हैं कि हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑब्वियसली हमें बड़ी प्रॉब्लम का आंसर नहीं मालूम है, सो वी विल ट्राई कि हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ें एंड वी कैन सॉल्व द मोस्ट बेसिक वन, राइट? सो सपोज करो फॉर द टाइम बिंग लेट अस सपोज दैट you have to determine the number of binary strings of length n and adjacent bit count as k, right? This is the problem that we have been given, right? तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें n लेंथ की नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ k एडजेसेंट बिट काउंट तो नहीं मालूम है, हमें नहीं पता कि कैसे निकालना है. सो वाई नॉट जस्ट अज्यूम कि भाई कैसे भी करके मुझे n-1 का आंसर पता लग जाए. अगर मुझे पता लग जाए कि n-1 की लेंथ में कितने एडजेसेंट बिट काउंट हैं, तो शायद मैं कुछ बना पाऊँ. मे बी फॉर द टाइम बिंग, मे बी मान लो कि अगर n लेंथ का आंसर तो पता नहीं है, सो रिकर्सिवली हम कुछ ऐसा सोच लेंगे कि हमें n-1 लेंथ के लिए मालूम हो जाए, किसी भी तरीके से n-1 लेंथ के लिए मालूम हो जाए, एंड देन वी विल थिंक दैट हाउ वी कैन कोड द सॉल्यूशन, राइट?
सो इसी तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट वी कैन सी दैट, सपोज कि हमारे पास एक n-1 लेंथ की स्ट्रिंग आ चुकी है, राइट. दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n-1, राइट. एंड मैं क्या कहता हूँ कि मेरा काम पता है क्या होगा. जैसे रिकर्जन में हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं, दैट व्हाट इज द बेस केस, राइट, व्हाट इज द रिकर्सिव अजम्पशन कि क्या मान के आऊँगा कि रिकर्जन कर दे, राइट, एंड व्हाट इज आवर सेल्फ वर्क कि मैं खुद से क्या कर दूँ, राइट. सो मे बी व्हाट वी कैन डू हेयर इज दैट, मैं ये कहूँगा कि मान लो कि पहला जो बिट है दैट इज 1, राइट. मैं कहता हूँ मान लो पहली बिट मैंने 1 सेट कर दी अपने आप से. मैंने कहा कि 1 को पहली बिट सेट कर दो अपने आप, एंड थिंक फॉर दिस n-1 स्ट्रिंग. सो इस n-1 स्ट्रिंग के क्या सिनेरियो हो सकता है कि जो ये तो हो गई हमारी पहली बिट, जो दूसरी बिट होगी इस n-1, और या मैं कहूँ इस n-1 लेंथ की स्ट्रिंग की जो यहाँ पे पहली बिट होगी, या तो वो 0 हो सकती है या फिर वो 1 हो सकती है, राइट. सो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैंने पहली बिट 1 सेट कर दी, और मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ वाली बिट भी 1 सेट कर दी, तो ऑब्वियसली ये एक एडजेसेंट बिट काउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्या करना था, के नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट काउंट वाली स्ट्रिंग बनानी थी, कि ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें के एडजेसेंट बिट काउंट हो, कि एडजेसेंट बिट काउंट की वैल्यू के हो. एंड मैंने क्या कहा कि पहली स्ट्रिंग मैं 1 बना दूं, और ये n-1 लेंथ की जो बची हुई स्ट्रिंग है इसकी भी पहली स्ट्रिंग 1 बना दूं. तो देखने में लग रहा है ना कि ये वाला एक जो पेयर है, दिस विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन आवर एडजेसेंट बिट काउंट. और अब हमें क्या करना है कि अगर n-1 का पहला बिट भी 1 था, और मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट बिट को अपने 1 सेट कर दिया था, तो अब यहाँ से जो बची हुई स्ट्रिंग है उसमें मुझे कितना एडजेसेंट बिट काउंट फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड k-1. वाई k-1? क्योंकि एक तो मुझे यहाँ मिल गया, एक मुझे यहाँ मिल गया, मैं k-1 ढूंढूंगा तो ओवरऑल n लेंथ की स्ट्रिंग में मुझे k एडजेसेंट बिट काउंट मिल जाएंगे ना. सो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट अस सी दिस अप्रोच वंस अगेन. हो सकता है कि एक बारी में ना पता लगाओ, सो लेट अस अगेन सी द सॉल्यूशन, राइट. मैं क्या कहता हूँ कि मैं रिकर्सिवली कुछ सोचूंगा, बट रिकर्सिवली सोचने के लिए आई हैव टू डू सम सेल्फ वर्क, राइट. जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग कुछ सेल्फ वर्क करते थे कि के लिए मान लेते थे, k+1 के लिए प्रूव करते थे. यहाँ पे भी हम लोग एक सेल्फ वर्क करेंगे अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन को बनाने के लिए, बिकॉज आई नो दैट इफ समहाउ आई एम एबल टू कोड द रिकर्सिव सॉल्यूशन आई कैन इजीली कोड द टॉप डाउन डीपी, राइट. सो मैं क्या कहता हूँ, आई विल से दैट लेट अस से कि अगर n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी थी, मुझे n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी थी, और मैंने पहला बिट ऑब्वियसली और एब्सोल्युटली हमेशा 1 सेट कर दिया, तो जो बची हुई स्ट्रिंग होगी वो कितनी लेंथ की होगी. खुद सोचो, अगर n लेंथ की स्ट्रिंग थी, पहला बिट मैंने डिफाइन कर दिया 1, तो ऑब्वियसली बची हुई स्ट्रिंग है n-1 लेंथ की. और मैं कहता हूँ इस n-1 लेंथ की जो बची हुई स्ट्रिंग है इसका भी पहला बिट है 1, एंड ओवरऑल इस n लेंथ की स्ट्रिंग में मुझे k एडजेसेंट बिट काउंट निकालने थे. तो मैं क्या कहूँगा कि अच्छा k निकालने थे, और यहाँ देखो हमें एक एडजेसेंट बिट काउंट तो मिल गया है, तो जो ये बची हुई n-1 लेंथ की स्ट्रिंग है इसमें मुझे k-1 ही तो और ढूंढने हैं, क्योंकि पहले कैरेक्टर को 1 सेट कर दिया और इसका पहला कैरेक्टर भी 1 है, तो ये एक एडजेसेंट बिट काउंट हो जाएंगे. और अब इस n-1 लेंथ में मैं एक और ढूंढ लूँ. एंड व्हाट अदर थिंग आई कैन से दैट, कि अगर मान लो पहला बिट मैंने रख दिया 1, राइट, n लेंथ की स्ट्रिंग में से पहला बिट रख दिया 1, तो लेंथ कितनी बची, अब अगेन n-1. और मैं कहता हूँ इस n-1 का ना पहला बिट है 0. अगर यहाँ पे पहला बिट है 0 और ओवरऑल स्ट्रिंग का पहला बिट है 1, तो ऑब्वियसली ये तो एक एडजेसेंट बिट काउंट नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि 1 और 1 साथ में चाहिए थे. तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर पहला बिट है 1 और n-1 लेंथ की स्ट्रिंग का पहला बिट है 1, तब तो हमें k-1 ढूंढने हैं, k-1 एडजेसेंट काउंट ढूंढने हैं. पर अगर पहली बिट ओवरऑल स्ट्रिंग की है 1 और n-1 लेंथ की पहली बिट है 0, तब तो मुझे के एडजेसेंट बिट काउंट पूरे के पूरे ढूंढने हैं इस n-1 लेंथ की स्ट्रिंग में, क्योंकि पहले कैरेक्टर ने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करा, राइट. एक केस तो ये बन गया जब मैंने पहले कैरेक्टर को 1 सेट कर दिया. व्हाट इफ आई सेट द फर्स्ट कैरेक्टर एज 0? तो देखते हैं. तो मान लो अगर पहला कैरेक्टर मैंने 0 सेट कर दिया है, एंड
वी विल डिटरमाइन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग एज n-1 लेंथ स्ट्रिंग। तो खुद देखो, इसमें तो पहला कैरेक्टर चाहे 1 आ जाए, अगर मैंने ये वाला कैरेक्टर 0 सेट कर रखा है और बची हुई स्ट्रिंग जो n-1 लेंथ की है उसमें तो पहला कैरेक्टर चाहे 1 आ जाए चाहे 0 आ जाए, कभी भी एक पॉजिटिव एडजेसेंट बिट काउंट तो नहीं बनेगा। तो n-1 लेंथ में तो मुझे बार बार चाहे कुछ भी हो जाए के नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट काउंट कैसे भी करके ढूंढने हैं, राइट। तो मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मेरा पहला कैरेक्टर जो अब मैं कहूँ पहला बिट 1 है और मैं मान लूँ कि उससे दो केसेस डिराइव होते हैं कि अगर पहला बिट 1 था तो जो सेकंड बिट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, या मैं कहूँ n-1 लेंथ का जो पहला बिट है वो या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर वो 1 हुआ तो मुझे एक पॉजिटिव एडजेसेंट बिट काउंट मिल गया है और मुझे k-1 ढूंढने हैं क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में k होने चाहिए एग्जैक्टली। और अगर पहला बिट 0 है तब तो मुझे k ही ढूंढने थे। वेयर एज इन दिस सेकंड केस वी कैन सी दैट अगर पहली बिट मेरे पास 0 है तो चाहे दूसरी बिट 1 हो चाहे 0 हो, n-1 लेंथ की स्ट्रिंग में तो मुझे कैसे भी करके k ही ढूंढने हैं, k एडजेसेंट बिट काउंट ही ढूंढने हैं। सो क्या डिराइव हो रहा है हमारे पास फाइनली, दैट फ्रॉम आवर मेन फंक्शन वी कैन मेक टू कॉल्स, राइट, वी कैन मेक टू कॉल्स। और मैं अपना फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, आई विल डिफाइन द फंक्शन एज n k एंड द फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। ऐसे अपना फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो नाउ व्हाट आई विल से इज कि पहले मान लो कि पहला कैरेक्टर क्या है 1 है, दूसरे केस में मान लो पहला कैरेक्टर क्या है 0 है, ठीक है। और मुझे n कॉमा k के लिए निकालना है, n कॉमा k के लिए निकालना है, मैं मेन से ये कॉल मारूंगा, ठीक है। और अब मुझे मालूम है कि अगर मान लो पहला कैरेक्टर 1 है, अगर पहला कैरेक्टर 1 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दो कॉल मारूंगा। कौन कौन सी दो कॉल, एक करूंगा n-1 में k-1 ढूंढ लो, क्योंकि हमने देखा था कि अगर पहली बिट हम लोगों ने फिर से 1 सेट कर दी तो हमें n-1 लेंथ में k-1 एडजेसेंट बिट्स काउंट ढूंढने हैं। वरना n-1 लेंथ में k एडजेसेंट बिट काउंट ढूंढो, अगर मैं n-1 लेंथ की पहली n-1 लेंथ की स्ट्रिंग का पहला बिट बना देता हूँ 0। वेयर एज अगर इनिशियली ही मैंने 0 को एज अ फर्स्ट बिट पास करा था तो n-1 में चाहे पहला कैरेक्टर कुछ भी हो हमें k ही ढूंढना है, चाहे पहला कैरेक्टर 1 हो चाहे पहला कैरेक्टर 0, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, पीछे भेज देंगे पीछे वाली रिकर्जन की कॉल्स में, और यहाँ पे भी इनका जो आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट। नाउ व्हाट विल बी द बेस केस, बेस केस क्या होगा, तो बेस केस होगा कि भाई मान लो कि n डबल इक्वल टू 0 है, तब तो क्या कुछ बना सकते हैं, नहीं, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 0। एंड इफ n इज डबल इक्वल टू 1 तो फिर तो दो केसेस अराइज होते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू भी 1 है तो हमारा आंसर होगा वी विल रिटर्न 1। वाई, कि भाई n की वैल्यू 1 है तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, यही दो पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं जो एक लेंथ की होती हैं। और क्या इनमें कभी एडजेसेंट बिट काउंट मिलेगा, नहीं, सॉरी, दिस शुड बी k इक्वल टू 0। सो मैं कहूँगा क्या इनमें कभी एडजेसेंट बिट काउंट मिलेगा, आई विल से नो। तो कभी कोई एडजेसेंट बिट काउंट नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे तो हमेशा k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमेशा k की वैल्यू होगी 0। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर n इज इक्वल्स टू 1 है और k डबल इक्वल टू 0 है तो एडजेसेंट बिट काउंट का तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग हमेशा रिटर्न कर देंगे 1। वरना अगर k लेस देन 0 है या फिर k ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, राइट। सो अगेन लेट्स रिविजिट द प्रॉब्लम। सो क्या कह रहे थे, एडजेसेंट बिट काउंट निकालने थे k किस में, n लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग में। मैं कहता हूँ n लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर पे डिसीजन ले लो। पहला कैरेक्टर अगर 1 है तो देखो दूसरा कैरेक्टर अगर 1 हुआ तो k-1 एडजेसेंट बिट काउंट ढूंढने हैं, और दूसरा कैरेक्टर 0 हुआ तो k ही ढूंढने हैं। और अगर पहला कैरेक्टर 0 है दूसरा कैरेक्टर 1 है तब तो हमें n-1 लेंथ में भी k एडजेसेंट बिट काउंट ढूंढने हैं। और अगर पहला कैरेक्टर 0 है और दूसरा कैरेक्टर भी 0 है तो अगेन n-1 लेंथ में मुझे k एडजेसेंट बिट काउंट ढूंढने हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रही है प्रॉब्लम। सो कैन वी नाउ कोड द सॉल्यूशन। सो अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड वी विल स्टार्ट कोडिंग आवर प्रॉब्लम। वी विल कोड दिस प्रॉब्लम एडजेसेंट बिट काउंट। तो बहुत ही आसान कोड होने वाला है क्योंकि अब हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन पता है। और तुम एक चीज़ देख सकते हो, इस रिकर्सिव सॉल्यूशन के 3 पैरामीटर हैं जो चेंज होते हैं, दैट इज n, k एंड फर्स्ट। तो हमारी डीपी की जो स्टेट है वो 3 डिफरेंट पैरामीटर से सेटिस्फाई हो रही है।
एंड वी नो द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिससे हमारी डीपी की स्टेट सेटिस्फाई हो रही है उतने डायमेंशन की हम लोग डीपी बना सकते हैं. सो देखो यहाँ पे एन लेंथ की कुछ एक तो पैरामीटर हमारे पास आ गया एन, एक आ गया के, और जो पैरामीटर फर्स्ट है ये या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, इसकी तो वैल्यू 2 ही हो सकती है. सो वी विल मेक समथिंग एन के एंड 2 टाइप की, इस टाइप की कुछ इस डायमेंशन की 3D डीपी बनाएंगे, दैट विल बी एन क्रॉस के क्रॉस 2 टाइप्स. ठीक है. सो तो चलो देखते हैं, पहले कोड करते हैं प्रॉब्लम को एंड देन वी विल रिविजिट अगेन द लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट. So let's just start the coding part for the problem adjacent bit count, right? So चलो देखते हैं कि एक बार input output format क्या है. So we will initially be getting the number of test cases, and for each test case we will get 3 numbers. That is, first number will denote the test case number, the second integer will denote the number n, and the third integer will denote the number k, right? और print भी हमें test case number के corresponding ही अपना आंसर करना है. ठीक है, चलो start करते हैं and just start coding here only in the Spoj editor only. So I will select C++. So I'm coding in C++. You can code in any another corresponding language, right? So चलो start करते हैं and I will first include the header file C string. Why I'm including it? So I will be using memset. तो memset का सारा कोड हमारे पास C string में available होता है. So we will use memset, right? And then let's just start taking the input. So input लेने के लिए सबसे पहले मैं number of test cases का input ले लेता हूँ. So for each test case what I will do, for each test case मैं 3 integers का नंबर लूँ, 3 integers का input लूँगा. int the test case number, then n, then k, right? So this will be c in num n k, right? तो ऐसा कुछ कर लेते हैं and then we will prepare a dp array, right? So this dp array will be a 3D dp array and this will be dp of let us make it as maybe 100 and again 100 and then 2. So maybe we can make it more than 100. Let's make it as 105. Why I'm making it around 10 raised power 2? Because in the problem it has been given that n will never be bigger than 10 raised power 2. So 105 length की dp array will be enough for us. ठीक है. और हर टेस्ट केस के लिए what I will do is use memset and initialize this dp array with -1 value. So I hope memset का syntax सब लोगों को मालूम है. And in case memset का syntax नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ. So memset is a function. It will take the input of the array. It will the second argument will be the what is the value with which we want to fill the array, and the third argument is the size of the array. ठीक है. So size of operator use करके हम लोग भेज देंगे. Then function लिखते हैं. So this function will be int adjacent bit count, right? So ये function क्या पैरामीटर लेगा? This will take int n, int k and int first. और मैं मेन से 2 कॉल मार दूंगा, एक बारी फर्स्ट को 0 रख के, एक बारी फर्स्ट को 1 रख के. तो ठीक है, बेस केसेस लिख लेते हैं. अगर n डबल इक्वल टू 0 हुआ तब तो कोई बन ही नहीं सकता, रिटर्न 0. और अगर n डबल इक्वल टू 1 हो जाता है और अगर k डबल इक्वल टू 0 हो जाता है तो भी रिटर्न 1. एंड अगर else if k is less than 0 तब तो कुछ बन ही नहीं सकता, सो रिटर्न 0. एंड else also रिटर्न 0 कि अगर k कभी बड़ा हो गया तो. ठीक है. सो वी विल राइट else k रिटर्न 0. तो हमने बेस केस अपने सेट कर लिए. Now let us check if we have already the solution coded in our dp array. So if dp of n, k and first is not equal to -1, so we will check if we have not already pre-computed the solution in our dp array, and if we have already pre-computed then we will just return the solution. This will be dp of n, k and 2, right? और एक बार हमने dp को चेक कर लिया तब तो क्या करना है, बस 2 कॉल करनी है. तो चलो 2 कॉल करते हैं. पहले एक रिटर्न वैल्यू बना लेते हैं. लेट्स मेक अ वेरिएबल रिटर्न वैल एंड दिस विल बी इनिशियलाइज्ड विद वैल्यू -1. और अगर मेरा पहला बिट, द फर्स्ट बिट इज 1, तो हमने क्या सोचा था, हमारा आंसर 2 कॉल्स के आंसर पे डिपेंड करेगा. सो ritval विल बी डिपेंडिंग ऑन द एडजेसेंट बिट काउंट फॉर n-1 लेंथ, where we have to find k-1 adjacent bit count and the first character will be 1, whereas the second call will be for n-1 k bit adjacent bit count with the first number as 0, right? यही 2 कॉल सोची थी. और अगर फर्स्ट की वैल्यू 1 नहीं है तब तो बहुत ही आसान है. अगर फर्स्ट की वैल्यू 1 नहीं है तब तो हमें n-1 लेंथ में अगर पहला भी 1 है तो भी k ढूंढने हैं, और अगर अगला भी 1 है, अगला 0 है, पहला 0 है तो भी k ढूंढने हैं.
यही दो कंडीशन हमने सोची थी। और रिटर्न करते टाइम, बस रिटर्न करते टाइम व्हाट आई विल डू इज डीपी ऑफ एन के और फर्स्ट में ले जाके मैं अपनी वैल्यू को सेट भी कर दूंगा सुरेट वैल, और यहीं से मैं रिटर्न मार दूंगा। सो आई होप दिस ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस सिंटैक्स आल्सो। सो चलो फंक्शन को कॉल करते हैं। सो लेट मेक्स इंट x इज इक्वल्स टू, लेट अस जस्ट कॉल द फंक्शन एडजेसेंट बिट काउंट, राइट। तो पहली कॉल में जो एडजेसेंट बिट काउंट में मारूंगा, आई विल मेक इट फॉर n देन k देन 0, कि भाई पहला कैरेक्टर एक बारी 0 रख के भेज दिया, और एक और कॉल मारेंगे क्योंकि उसका आंसर अपने में प्लस कर लेंगे। सो दिस विल बी एडजेसेंट बिट काउंट ऑफ n k, 1। वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज अगर तुम्हें यहाँ पे याद हो तो मेन से मैं दो कॉल्स मार रहा था, एक बारी 1 को पहला कैरेक्टर रख के, एक बारी 0 को पहला कैरेक्टर रख के, और दोनों का जो भी आंसर आ रहा था उसको ऐड कर रहा था। सो सेम आई एम डूइंग हेयर ऑल्सो, and we will print it in the form cout. First we have to print the test case number, then a space, then I will print x, and then I will print a new line character. So this will be backslash n. So I hope सब कुछ सही लग रहा है and we have easily coded our DP solution. तो एक बार कॉपी कर लेते हैं कि in case अगर कुछ दिक्कत आती है तो we will again resume from here only. So let's just start and okay, so एक गलती मुझे यहाँ पे दिख गई है, this will be first, right? बिकॉज दो साइज का तो हमने बनाया है 0 और 1 की स्टेट को स्टोर करने के लिए, बट दिस विल बी फर्स्ट, क्योंकि वॉट एवर द फर्स्ट बिट आई एम सेंडिंग आई विल चेक इन द DPRA फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ओनली। सो चलो देखते हैं कि कैसे हो रहा है एंड वी विल सबमिट द सोल्यूशन। सो लेट अस सी कि चलता है या नहीं चलता है। इन केस अगर नहीं चलेगा तो वी विल डिबग दैट। सो ओके, सो हियर यू कैन सी इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सो इट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड ऑन स्पॉज। सो मैं आपको एक बारी दोबारा सोल्यूशन दिखा भी देता हूँ कि हमने क्या किया है। So let us again just open the problem and click on submit solution. So this was our solution, हमने यही solution कोड किया था। So सबसे पहले क्या करा कि एक 0 का इनपुट ले लिया एज द फर्स्ट कैरेक्टर, देन एक इनपुट ले लिया 1 एज द फर्स्ट बिट, और दोनों का आंसर भेज दिया। अगर पहली बिट 0 है और एक ही लेंथ का स्ट्रिंग बनाना था और k की वैल्यू 0 थी, k की वैल्यू 0 मतलब एडजेसेंट बिट काउंट बनानी तो भी रिटर्न 1, और पहली बिट अगर 1 है तो भी रिटर्न 1, तो ये दो बिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग काम हो जाएगा। और कोई भी रिकर्जन कॉल मारने से पहले मैं चेक कर लूंगा कि मेरी DPRA में कुछ भी फील्ड है या नहीं है। और अगर DPRA में ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड नहीं थी ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट DP की, तो वी विल मेक 2 कॉल्स फॉर ईच कॉरेस्पॉन्डिंग बिट। अगर पहली बिट 1 है तो 2 कॉल करेंगे। किस चीज की 2 कॉल? कि n-1 लेंथ की स्ट्रिंग में अगर पहली बिट 1 रखता हूं तो k-1 एडजेसेंट बिट काउंट ढूंढ लाओ, और n-1 लेंथ की स्ट्रिंग में अगर पहली बिट 0 रखता हूं तो k नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट काउंट ले आओ। वरना अगर पहले बिट ही 0 था तब तो n-1 की पहली बिट को 1 सेट करके k ले आओ, और दूसरा भी n-1 की पहली बिट को 0 सेट करके k एडजेसेंट बिट काउंट ले आओ। whatever your answer is in the retrieval variable, store it in our DPRA and just return. So ये solution हमारा कोड हो गया है एंड बढ़िया से सबमिट हो गया है। So if any one of you are still facing any doubt, then you can ask in the comment section. एक बारी मैं बेस केस का भी बता देता हूँ कि n is equals to 1 पे और k is equals to 0 पे आंसर 1 कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, एक 0 एक 1। ये इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मैं मेन से 2 कॉल्स करूँगा, एक बारी पहले कैरेक्टर को 1 करके, एक बारी पहले कैरेक्टर को 0 करके। तो एक बेस केस से 1 ये रिटर्न करेगा, एक बेस केस से 1 ये रिटर्न करेगा, दोनों सम होके 2 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ बेस केस लाइक this. So in case you are facing any problem in this following solution, so please ask in the comment section, and after this we will discuss another problem, right? So the next problem that we are going to discuss in this session is the longest palindromic subsequence. So क्या problem है? So you will be given a string, एक string मिलेगी, and we have to find a subsequence which is palindromic, and among all the palindromic subsequence it is the longest palindromic subsequence. ठीक है? So I hope सब लोगों को पता है कि एक string की subsequence क्या होती है। So subsequence is a subsequence can be considered as subset of a string, जिसमें हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं बट कंटिन्यूटी का फैक्टर मेंटेन नहीं होता। आई मीन सबको सबसीक्वेंसेस पता होंगे। सो वी हैव टू फाइंड सच अ सबसीक्वेंस विच इज पैलेंड्रोमिक एंड इट इज लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द पैलेंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस, राइट। सो सपोज जैसे हमारे पास इनपुट आया बी 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 ए बी, सो द लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सबसीक्वेंस विल बी ऑफ लेंथ 4, दैट इज बी 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 एंड बी। ए को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। एंड अगर इनपुट आता है सी बी बी डी, तो लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सबसीक्वेंस आएगा हमारे पास 2 लेंथ का, विच विल बी बी एंड बी। तो
we can let us see how we can solve this problem, right? So longest palindromic subsequence, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो सपोज हमारे पास स्ट्रिंग जो इनपुट आ रही है दैट इज बी 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 ए बी. ठीक है, यही हमारे पास इनपुट गिवन था एंड इसके लिए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हमें मालूम है, इट विल बी 4, कि 4 लेंथ की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस हम लोग बना सकते हैं. तो अगर रिकर्सिवली सोचना होता तो कैसे सोचते? तो हम लोग यही कहते कि सारी की सारी सब सीक्वेंसेस बना लो एंड हर सब सीक्वेंस को जाके चेक कर लो कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है. अगर पैलिंड्रोमिक है तो एक ग्लोबल पैलिंड्रोमिक वेरिएबल रखो जिसमें सबसे बड़ा साइज हम लोग स्टोर कर रहे हैं. अगर वो उससे उस बड़े ग्लोबल वेरिएबल से भी बड़ा है तो हम लोग अपडेट कर देंगे. बट ऑब्वियसली इन रिकर्जन कॉल्स में काफ़ी सारी रेपिटेशन होगी, सो वी विल नॉट डू दैट. इंस्टेड व्हाट वी विल डू इज जस्ट एक्सट्रैक्ट सम इंट्यूशन, थोड़ा इंट्यूशन डेवलप करते हैं, इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक इंट्यूशन जिससे शायद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, चलो देखते हैं. तो मैं क्या कहता हूँ कि कभी भी किसी भी इंस्टेंस पे कोई भी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, सपोज यही स्ट्रिंग मुझे गिवन है, मैं क्या कहता हूँ अगर इसका पहला कैरेक्टर और इसका आखिरी कैरेक्टर बराबर है तो मुझे इस बीच वाली स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस अगर पता लग गया तो उसमें मैं +2 कर दूंगा. +2 किसके नाम का? एक इसके नाम का और एक इसके नाम का, तो ये 2 कैरेक्टर तो +2. तो अगर बीच वाले स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस मिल गई उसमें मैं +2 कर दूंगा तो हमारे पास ओवरऑल लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस आ जाएगा. ठीक है, तो या मैं कहूँ ग्लोबल लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस आ जाएगा. तो मैं कहता हूँ अगर मैं दो वेरिएबल लेके चल सकता हूँ कि वी हैव अ वेरिएबल आई एंड वी हैव अ वेरिएबल जे. ठीक है, तो अगर कभी भी str@i डबल इक्वल टू str@j हो गया, सो व्हाट वी कैन से इज दैट आवर आंसर विल बी हिडन इन str,i+1, j-1 +2. यही हमारा आंसर होगा. बट व्हाट इफ, अब देखते हैं इस बची हुई स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है. सो दिस स्ट्रिंग इज बी बी ए. अब यहाँ पे तो पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर बराबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे? सो मैं कहता हूँ अच्छा कि सब सीक्वेंस ही तो बनाने थे, हमेशा सब सीक्वेंस ही तो बनाने थे. तो मैं कहता हूँ एक सब सीक्वेंस पता है क्या बनाओ, इसमें से 2 केसेस निकालो, वी विल एक्सट्रैक्ट 2 डिफरेंट केसेस. एक केस निकालो कि तुम पहली वाली कैरेक्टर जो इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको हटा के जो स्ट्रिंग बनती है उससे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस ले आओ, और लास्ट वाला कैरेक्टर जो है उसको हटा के जो भी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस आता है वो ले आओ. हमें सब सीक्वेंस ही तो बनाने थे, और सब सीक्वेंसेस बनाने में हमें पता होता है कि हर कैरेक्टर को या तो चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो एक बारी पहले को चूज नहीं करेंगे लास्ट को चूज करेंगे, एक बारी लास्ट को चूज नहीं करेंगे पहले को चूज करेंगे. अगर हमने पहले वाले को चूज नहीं करा तो हमारे पास बी ए बचेगा, और अगर लास्ट वाले को चूज नहीं करा तो हमारे पास बी बी बचेगा. अब इन दोनों का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस हम रिकर्सिवली निकाल लेते हैं, सही बात है. और अगर इन दोनों का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस रिकर्सिवली ले आए तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा. तो मैक्सिमम कहाँ से आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आएगा 2 क्योंकि बी भी एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बन रहा है. यहाँ पे तो आएगा 1, या तो सिर्फ बी या सिर्फ ए, तो यहाँ से 1 आएगा, दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा 2. तो ये कॉल 2 रिटर्न करेगी और यहाँ पे मैं इन दोनों के नाम के 2 ऐड कर ही दूंगा, तो ओवरऑल आ जाएगा आंसर 4. एक तो पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली इसमें डीपी की स्टेट कैसे डिफाइन हो रही है, एक स्टार्ट वाला वेरिएबल है आई, एक पीछे वाला वेरिएबल है जे, तो डीपी की स्टेट 2 वेरिएबल से डिफाइन हो रही है. सो वी कैन कोड अ डीपी सॉल्यूशन व्हिच विल बी टॉप डाउन. आई गेस इसका बॉटम अप सॉल्यूशन देखना बनता है. इसका बॉटम अप सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वी विल सी व्हाट इज द बॉटम अप सॉल्यूशन फॉर दिस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम. सो लेट मी जस्ट रब एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू दैट कि क्या इसका ओवरऑल आंसर बनेगा अगर मैं बॉटम अप सॉल्यूशन से कोड करता हूँ. ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, सो हमारे पास दोबारा अपनी स्ट्रिंग तो एक्सट्रैक्ट हो गई है. अब देखते हैं इसका बॉटम अप सॉल्यूशन कैसे करते हैं. अब बॉटम अप सॉल्यूशन में आप लोगों को पता होगा कि बॉटम अप डीपी जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम से नहीं, सबसे छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और फिर बिल्डअप करते रहेंगे, उससे जस्ट बड़ी प्रॉब्लम, फिर उससे भी जस्ट बड़ी प्रॉब्लम, ऐसे जस्ट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पे आते आते हम लोग चीज़ों को बिल्डअप कर लेंगे. इससे क्या होगा
कि एक 2D ग्रिड होगी और एक आइटरेटिव मैनर में हम लोग एक आइटरेटिव मैनर में चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। सही बात है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि लेट अस जस्ट मेक अ 2D ग्रिड ऑफ, अगर इसकी लेंथ है n, तो वी कैन मेक अ लेंथ ऑफ n क्रॉस n। इस डायमेंशन की एक 2D ग्रिड बना लेते हैं। तो चलो, सो वी विल मेक अ 2D ग्रिड ऑफ 5 क्रॉस 5 here. So this will denote B, 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 A, B, and again 5 columns also. So एक ग्रिड बना ली बढ़िया से हमने, ठीक है। सो लेट अस मेक 5 कॉलम्स हेयर ऑल्सो। चलो ठीक है, सो ग्रिड हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ को कैसे फिल करेंगे, राइट। सो ये भी डिनोट क्या कर रहा है, बी 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 ए बी। चलो ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे छोटी प्रॉब्लम पता है क्या है, क्या एक लेंथ की स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक होती है? ऑब्वियसली। अगर मैं इस गिवन स्ट्रिंग की सारी एक लेंथ की स्ट्रिंग चेक करूं, ये वाली, ये वाली और ये वाली, सारी की सारी एक लेंथ की हैं, सब पैलिंड्रोमिक है, तो मेरी डीपी ऑफ ये मेरी डीपीआर है, ये मेरी डीपीआर है। सो डीपी ऑफ आई कॉमा जे, ये जो सेल होगा आई कॉमा जे, पता है क्या वैल्यू स्टोर करेगा कि मेरी स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर से लेकर jth कैरेक्टर तक में कितना लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बना पड़ा है। ठीक है, हम लोग यही स्टोर कर रहे होंगे। चलो देखते हैं कि इसके बाद अब क्या चीज़ बन सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 0 1 2 3 4 एंड दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3 4। एक बात सोचो कि पहली एक लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी, ये 0,0, तो 0,0 पे आंसर होगा 1। वाई, बी से शुरू होने वाली और बी पे ही खत्म होने वाली स्ट्रिंग एक ही लेंथ की है और लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक उसका 1 साइज का है, तो ठीक है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। क्यों? जैसे ए से स्टार्ट होके थर्ड वाले इंडेक्स पे स्टार्ट होके थर्ड वाले इंडेक्स पे ही खत्म हो गए, मतलब एक लेंथ के। सही बात है। अब तुम एक चीज देखो कि यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, ये तो इरेलीवेंट सा है। क्यों? सेकंड से स्टार्ट होके फर्स्ट पे खत्म हो रहे हैं। अरे ये तो कुछ बना ही नहीं ना, ये तो हम लोग इस ऑर्डर में देखने लग गए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो हमेशा इसी ऑर्डर में देखना है। तो ये नीचे वाला पार्ट तो थोड़ा वेस्ट ही है। चलो आगे देखते हैं। हमने एक लेंथ की सारी स्ट्रिंग देख ली है, सो लेट अस नाउ सी ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, राइट। अब सारी 2 लेंथ की स्ट्रिंग देखते हैं। तो 2 लेंथ की पहली स्ट्रिंग ये हो गई। अब ये 0 से शुरू होके 1 पे खत्म हो रही है, तो ठीक है, 0 से 1 पे खत्म हो रही है, ओके। और इसका पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर बराबर है, तो अगर पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर बराबर है तो हमें याद था कि आंसर कहाँ छुपा होता था, i+1 कॉमा j-1 में। यहाँ पे i है 0, j है 1, तो i+1 कितना हो गया, 0+1, और j कितना हो गया, 1-1। सो ये कितना हो गया, दिस विल बी 1,0। सो 1,0 यहाँ पे ओरिजिनली हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ 0 फिल कर देंगे, क्योंकि हमारे इरेलीवेंट है फिलहाल के लिए, तो सब कुछ 0 फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 1,0 से आएगा, और उसमें हम लोग क्या ऐड करते थे, इसका जो भी आंसर आता था उसमें 2 ऐड करते थे। सो वी विल ऐड 0 + 2 विच विल बी 2। कूल है। अगली 2 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी, अगली 2 लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी हमारे पास, दैट विल बी दिस वन। सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 2। सो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो i+1 कितना हो जाएगा 2, j-1 कितना हो जाएगा 1। सो 2,1 पे हमारा आंसर पड़ा होगा। सो 2,1 पे जो भी आंसर है उसमें मैं +2 कर दूंगा, तो ये भी 2। और ऐसा क्यों हो रहा है, बी पहले और आखिरी कैरेक्टर बराबर है। अगर पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर है तो आंसर कहाँ छुपा होता, बीच वाली स्ट्रिंग में छुपा होता था, और बीच वाली स्ट्रिंग तो क्या है, खाली पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली पीछे से 0 आ रहा है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगली 2 लेंथ की जो स्ट्रिंग बनेगी वो देखते हैं। दिस इज बी ए, और अब हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, यू कैन ईजिली सी दैट कि यहाँ पे पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर नहीं है। तो जब पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता था, मैक्सिमम ऑफ i+1 कॉमा j और i कॉमा j-1। चलो i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 3, सो 2 + 1 दैट इज 3,3। तो 3,3 पे पड़ा है 1, एंड दूसरी वैल्यू क्या हो गई 2,2, 2,2 पे पड़ा है 1, दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 1। सो आई विल स्टोर अ 1 हियर, ओके। एंड अगेन जो अगली 2 लेंथ की स्ट्रिंग आएगी दैट विल बी ab। सो ab में हम लोग देख सकते हैं, सो i की वैल्यू है 3, j की वैल्यू है 4, दोनों अगेन i और j पे पड़े हुए वेरिएबल बराबर नहीं है। सो i+1 कॉमा j, सो 4,4 का आंसर यहाँ पड़ा है।
i कॉमा j माइनस 1, 3,3 का आंसर यहाँ पड़ा है, दोनों का मैक्सिमम 1। तो देखो 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग में हमने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ढूंढ लिया है बहुत ही आसानी से। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं। सो अब 3 लेंथ की अगर स्ट्रिंग चेक करेंगे, सो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक की पहली स्ट्रिंग है जो 3 लेंथ की है, ठीक है। तो i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू क्या हो गई 2। क्या i और jth इंडेक्स पे पड़े हुए कैरेक्टर बराबर है? जी हाँ बराबर है। तो आंसर कहाँ छुपा होगा? i प्लस 1 कॉमा j माइनस 1 में जो भी आंसर है उस पर प्लस 2। सो i प्लस 1 में हो जाएगा 1, j माइनस 1 में हो जाएगा 1। सो 1 कॉमा 1 पे आंसर पड़ा है b, और ऑब्वियसली दिस इज 1 कॉमा 1। यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है 1 उसमें 2 ऐड कर देंगे, दिस विल बी 3। एंड यू कैन सी 3 लेंथ की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन रही है। अगली 3 लेंथ की चेक करते हैं, दिस विल बी 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 ए। अब यहाँ पे पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर नहीं है, और i की वैल्यू हो गई है 1, j की वैल्यू हो गई है 3। तो आंसर कहाँ होगा? 2,3। तो 2,3 पे पड़ा है 1, और या फिर 1,2, 1,2 पे पड़ा है 2। तो दोनों का मैक्सिमम 2, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 2। और 2 लेंथ की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन भी रही है, दैट इज बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रिंग जो बना रहे हैं हम लोग, दैट इज बी ए बी, और आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2, जे की वैल्यू हो चुकी है 4। ओके, सो 2 और 4 पे पड़े हुए कैरेक्टर बराबर है, बी और बी है। तो आंसर कहाँ से आएगा? 3,3 से। सो 3,3 पे वैल्यू पड़ी है 1, और ऑब्वियसली वो 1 किसके नाम की है? ए के नाम की। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। सो 2 + 1 3। सो यू कैन सी बी ए बी में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या बन रहा है? बी ए बी पूरा का पूरा। सही बात है। चलो हम लोगों ने 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स के लिए सब कुछ काम कर लिया, ठीक है। अब 4 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए काम करते हैं। सो 4 लेंथ की स्ट्रिंग में i की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लेंथ की स्ट्रिंग के लिए i इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, एंड j विल बी इक्वल्स टू 3। सो क्या पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर है? जी नहीं। तो आंसर कहाँ पे होगा? i प्लस 1 कॉमा j। सो व्हाट इज i प्लस 1? दिस विल बी 1 कॉमा 3। सो 1 कॉमा 3 पे पड़ा है 2, एंड i कॉमा j माइनस 1 दैट इज 0 कॉमा 2। सो 0 कॉमा 2 पे पड़ा है 3, तो दोनों का मैक्सिमम विच इज 3। सो 0 से 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस आएगा 3 लेंथ का, विच इज ट्रिपल बी। So I will fill 3 here. Okay. So the next string of length 4 will be this one. So यहाँ पे i की वैल्यू हो चुकी है 1, j की वैल्यू हो चुकी है 4। क्या पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर है? जी हाँ बराबर है। सो हमारा आंसर कहाँ होगा? i प्लस 1 कॉमा j माइनस 1 है इंडेक्स पे। सो i प्लस 1 विल बी 2 एंड j माइनस 1 विल बी 3। सो दिस विल बी 2,3। सो यहाँ पे पड़ा है, एंड इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। सो 2 ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी 3, and obviously the longest palindromic subsequence in BBAB will be BAB, which is of 3 length. Okay, तो हमने 4 लेंथ के लिए तो देख लिया। नाउ द फाइनल लेंथ विल बी ऑफ लेंथ 5। यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू हो जाएगी 0, j की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो क्या पहला और आखिरी कैरेक्टर बराबर है? जी हाँ बराबर है। तो हमारे पास आंसर कहाँ पे होगा? सो आवर आंसर विल बी इन i प्लस 1 कॉमा j माइनस 1th इंडेक्स प्लस 2। तो i प्लस 1 की वैल्यू हो गई 1, j माइनस 1 की वैल्यू होगी 3, तो दिस इज 2, एंड वी विल ऐड 2 here, so this will become 4। एंड ऑब्वियसली here you can see b b b a b में जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन रहा है दैट इज 4 टाइम्स b, विच इज ऑफ लेंथ 4, एंड हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे फिल्ड है। सो आवर फाइनल आंसर इज हिडन इन 0, n माइनस 1th इंडेक्स। सो तुम देख पा रहे हो कि कितनी आसानी से हम लोगों ने बस एवरी पॉसिबल लेंथ कंसीडर करी है, and for every possible length I'm just checking the first character and the last character. If they are same, then our answer is hidden in the i plus 1 comma j minus 1th index, and अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो obviously हमारा आंसर कहाँ पे छुपा है? maximum of i plus 1 comma j में। तो let us just start coding this algorithm, and iteratively we will build the whole solution. So here's the lead code environment, and we will directly code in here. So पहले एक डीपी एरे प्रिपेयर कर लेते हैं। आई विल मेक अ ग्लोबल डीपी एरे। सो लेट्स मेक अ डीपी एरे ऑफ 1005 रोज एंड 1005 कॉलम्स। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी डीपी एरे हमने बना ली है। एंड स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? वी विल यूज मेमसेट। थोड़ी देर पहले हमने अभी मेमसेट पहले भी यूज़ किया था। सो मेमसेट ऑफ डीपी फिल द होल एरे विद 0, एंड वी विल पास साइज ऑफ डीपी। तो पूरी की पूरी एरे 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। नाउ वी विल फिल द बेस केसेस। बेस केसेस क्या थे? एक लेंथ की सारी स्ट्रिंग जो कि हमारे पास पैलिंड्रोमिक होगी, एंड ऑब्वियसली वन लेंथ स्ट्रिंग इज ऑलवेज पैलिंड्रोम। सो व्हाट आई विल डू इज फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, एंड लेट अस मेक अ वेरिएबल n। तो थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना।
So this will be n of s dot size, n की value s dot size. So now for int I is equals to 0, I less than n and I plus plus. ठीक है. So what I will store is dp of I comma I में हम जाके 1 भर देंगे. So I comma I पहले 0 comma 0 पे 1 हो जाएगा, then 1 comma 1 पे 1 हो जाएगा, then 2 comma 2 पे 1, 3 comma 3 पे 1 and 4 comma 4 पे 1. तो हम लोग यहाँ से बेस केसेस अपने भर लेंगे. ओके, सो नाउ बेस केसेस भरने के बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे. फॉर इंट लेंथ इज इक्वल्स टू 2. हमने एक लेंथ की सारी स्ट्रिंग को तो एज अ बेस केस मान के स्टोर कर लिया. अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंथ की स्ट्रिंग से लेंथ को कहाँ तक चलाएंगे. लेंथ विल बी इक्वल टू n की मैक्सिमम जितने लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग है उतने लेंथ को कंसिडर करेंगे एंड लेंथ प्लस प्लस. ओके, देन आई विल आइटरेट फ्रॉम फॉर int I is equals to 0 and I will be will be stopped on I less than n minus current length and then I plus plus. How this n minus current length is coming, here you can see. जब हमारे पास suppose 4 लेंथ की स्ट्रिंग थी, so just give me a second, या मैं कहूँ 3 लेंथ की स्ट्रिंग थी कि हम लोग 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे थे, तो I शुरू हो रहा था 0 से. ओके, देन 3 लेंथ की अगली स्ट्रिंग में ये वाली बात थी, I की वैल्यू 1 हो जाती थी. देन 3 लेंथ की अगली स्ट्रिंग में I की वैल्यू 2 हो जाती थी. सो I की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है. सो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज n माइनस करंट लेंथ. सो n की वैल्यू कितनी है 5 एंड करंट लेंथ हम लोग 3 लेंथ की लेके चल रहे हैं, सो दिस इज 2. सो I 0 से n माइनस करंट लेंथ तक चल रहा है. ओके, और अगर एक बारी मेरे पास I की वैल्यू आ गई है तो क्या J की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि तुम खुद देखो जब I की वैल्यू 2 थी तो J की वैल्यू क्या है, इट इज 4. और 4 कैसे निकल पा रहा है, दिस इज करंट वैल्यू ऑफ I प्लस द करंट लेंथ माइनस 1. सो I की वैल्यू है 2, लेंथ है 3, सो 2 प्लस 3 इज 5 एंड माइनस 1 4, तो J की वैल्यू है 4. सो हर बारी हम लोग J की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस विल बी I प्लस लेंथ माइनस 1. और एक बारी I पॉइंटर आ चुका है, एक बारी J पॉइंटर आ चुका है. सो वी विल जस्ट चेक दैट इफ str और I must say s of I is double equal to s of j. अगर ऐसा है तो हमारा आंसर dp of ij का आंसर कहाँ स्टोर्ड होगा, दिस विल बी dp of I plus 1 j minus 1 plus 2. ऑब्वियसली I को I plus 1 पे शिफ्ट करेंगे, j को j minus 1 पे और I plus 1 को j minus 1 पे, जो भी आंसर होगा उसमें प्लस 2 कर लेंगे. और अगर ऐसा नहीं है, if this is not the case, then dp of ij will be maximum of dp of I plus 1 j. Okay, so let me make this as opening parenthesis. So this will be dp of I plus 1 j and dp of I j minus 1. इन्हीं दोनों में आंसर होगा. और एक बारी पूरी आइट्रेशन हमारी हो चुकी है, I will return dp of 0 and n minus 1. यहीं पे हमारा आंसर होगा. So let us just run this code and see if there is any issue or not. Okay, so we have to write it as int dp. Yeah, so I have corrected it. Okay, so the output is coming as 0. So let me just debug it once so that I can rectify the issue, what's happening exactly. So we have initially initialized the whole array with 0. Okay, this is correct. Then we have put the base cases. This is also looking pretty good. Then length is equals to 2, length is less than equal to n, and length plus plus, pretty fine. And this will be I is equals to 0, I less than, okay, this will be I less than equals to, right? This will be I less than equals to n minus length. Okay, I guess this was the issue. Let us just run the code again. Okay, so now the output is coming exactly equal to the expected output. And let me just submit the solution. And okay, so here you can see the solution has been correctly submitted. So you can see that how easily we coded the bottom-up solution, right? All we did was just develop the recursive intuition that if the first and the last character of a corresponding string are equal, then our answer will be hidden inside the middle substring, and whatever the answer is in the middle substring, we will just add 2 to it, one for the sake of the first character and one for the sake of the last character. और अगर ऐसा नहीं है, if this is not the case, then हम लोग दोनों subsequence check करेंगे. कौन से दो subsequence, एक बारी पहले कैरेक्टर को हटा के जो सबसीक्वेंस बन रहा है, एक बारी लास्ट कैरेक्टर को हटा के जो सबसीक्वेंस बन रहा है, दोनों से जो आंसर आएगा
दैट इज i plus 1 comma j और i comma j minus 1 से जो भी आंसर आएगा we will take maximum of that, just this thing, right? So काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस. कभी कभी इसमें एक ट्विस्ट भी आता है कि हाउ मेनी डिलीशंस आर रिक्वायर्ड इन अ स्ट्रिंग टू मेक इट अ पैलिंड्रोम. तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें नंबर ऑफ डिलीशंस निकालने हैं तो व्हाट यू कैन डू, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकाल लो, उसकी जो भी लेंथ आती है उसको टोटल गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में से माइनस कर लो, तो जो भी वैल्यू आई सब्ट्रैक्शन के बाद वही एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे, मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, उनको डिलीट करके तुम पैलिंड्रोम बना सकते हो. तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो जाती है और भी कई सारे सॉल्यूशंस डेवलप हो जाते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. अगर मैं तुम्हारे इंटरव्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग बोलूँ, सो काफ़ी टॉप कंपनीज में ये चीज़ पूछी जाती है एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग ऑन. सो आई हैड अ वर्ड विद सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो उन्होंने भी कहा या सम ऑफ देम गॉट दिस क्वेश्चन इन ईदर देयर ऑनलाइन टेस्ट और इन देयर फेस टू फेस इंटरव्यू. सो काफ़ी सही है और हमने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है. आगे नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वेबिनार कल या उसके अगले दिन रखेंगे एंड दिस विल बी अ 3 वीडियो सीरीज ऑफ वेबिनार ऑन डीपी. सो लेट अस सी कि कैसा चलता है एंड ऑल्सो वी आर कमिंग विद समथिंग बिग in dynamic programming. So maybe you guys can wait or maybe think what we are planning. So it will be big, it's nowhere else और हम लोगों ने काफ़ी यूनिकली सोचा है. So let us see क्या होता है and apart from that you can mark the date 15th August because on 15th August बाकी दुनिया में भी कुछ बढ़िया होने वाला है, कंट्री में तो बढ़िया होता ही है एंड वी आर ऑल्सो कमिंग विद अनदर बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस डीपी थिंग. वी आर कमिंग विद अनदर बिग थिंग. सो लेट्स सी. सो व्हाट यू कैन डू, अगर आज की वीडियो में कोई भी इशू आया है, कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल डू रिप्लाई ऑल ऑफ योर डाउट्स, राइट? ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग अपडेट्स के लिए कि कब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं एंड क्या चीज़ नया करने वाले हैं, यू कैन फॉलो आवर सोशल हैंडल्स. You can follow us on LinkedIn, you can follow us on Instagram, Facebook and YouTube, right? So you can also press the bell icon and subscribe our channel so that you will never miss any video from Coding Blogs. And if you like this video, if you like the 2 questions that we discussed today in this video, then do put a like and comment down your views. And if you want some another topics to be discussed, you can either post on our Instagram channel or you can post in the comment section down below. So we have I will put the link of the code in the description below, and if you want to brush up your dynamic programming basics, then you can go to the iCard and click on the link, and the description of that webinar will be listed below in the description also. So I hope you liked the video and we will meet tomorrow or day after tomorrow and we will discuss some new problems on dynamic programming. So in इस 3 वीडियो की सीरीज में हम लोग 6-7 अच्छी प्रॉब्लम कर लेंगे. So I hope you like this video. So do share and do like the video. We will meet you in our next video. So subscribe the channel of Coding Blogs, right? So you can subscribe our media handles and subscribe the channel of Coding Blogs so that you will be updated for the every corresponding video. So thank you guys, thank you for being with us, and we will come up with some new awesome content regularly on our YouTube channel. So thank you guys, see you next time. This is Sanket here from Coding Blogs, and today we are back with the second webinar on the dynamic programming webinar series, right? So बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला लास्ट वेबिनार से एंड वी गॉट very good comments and very good feedback on the last webinar that we did in the dynamic programming webinar series. So अगर किसी ने नहीं देखा है webinar, so I will drop the link in the description below. So I will highly recommend that कि आप पहले वो webinar देख लें. And also if you want to brush up your skills on dynamic programming and you don't know the basics of dynamic programming, then एक basic video का link भी, हमारे channel की video का link भी मैं description में डाल दूंगा. So as promised, we are back with the second part of the webinar series. So आज के webinar में as requested by you guys, तो काफ़ी लोगों का comment आया and काफ़ी लोगों की request आई मेरे पास कि please take some problems from code forces also. So today we will take one problem from code forces and one problem again from lead code, right? So काफ़ी interesting problems हैं दोनों
एंड आई होप कि जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की वेबिनार के दोनों प्रॉब्लम्स भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले होंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम फ्रॉम कोड फोर्सेस विच इज जॉन स्नो एंड हिज फेवरेट नंबर। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। प्रॉब्लम जॉन स्नो एंड हिज फेवरेट नंबर। सो क्या कहती है प्रॉब्लम? So Jon Snow has to fight the White Walkers, and he has n Rangers, each of which has his own strength. Also, Jon Snow has his favorite number X. ठीक है, तो क्या गिवन है कि हमारे पास n Rangers होंगे और एक नंबर गिवन होगा X, right? Each Ranger can fight with a White Walker only if the strength of the White Walkers equals his strength. ठीक है. He, however, thinks that his Rangers are weak and need to improve. John now thinks that if he takes the bitwise Zor of strength of some Rangers with his favorite number X, he might get the soldiers of high strength. So he decided to do the following operation K times. So एक value K भी हो सकता है हमारे पास आने वाली होगी, ठीक है? So what we are supposed to do? Arrange all the Rangers in a straight line in the order of increasing strength. Take the bitwise Zor of the strength of alternate ranger with X and updated strength. तो हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास रेंजर्स की इनिशियल स्ट्रेंथ आएगी, वी हैव टू इनिशियली सॉर्ट देम, और सॉर्ट करने के बाद ऑल्टरनेट रेंजर्स की स्ट्रेंथ को पकड़ना है और सबको X के साथ जोर करके अपडेट कर देना है, राइट? उसके बाद देखते हैं क्या गिवन है. नाउ जॉन वांट्स टू नो द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रेंजर्स after performing the above operations k times. He wants your help, can you help him? तो अब क्या गिवन है कि जो भी फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास रेंजर्स की, उसमें हमें क्या करना है कि मिनिमम स्ट्रेंथ किस रेंजर की है एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस रेंजर की है, हमें दोनों मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करनी होगी, ठीक है? सो क्या करना है, एक एरे गिवन होगी स्ट्रेंथ की एंड वी हैव टू रेगुलरली सॉर्ट इट, एंड आफ्टर सॉर्टिंग ऑल्टरनेट चॉइस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जोर करेंगे गिवन वैल्यू x के साथ. थोड़ा कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. सो हियर कंस्ट्रेंट्स से दैट the value of n will range from 1 to 10 raised per 5. The value of k will range from 0 to 10 raised per 5. The value of x will range from 0 to 10 raised per 3. ठीक है, तो n मतलब साइज ऑफ द जो एरे हमारे पास आ रही है कि n रेंजर्स हैं वो 10 रेज्ड पर 5 है, ठीक है, और k हमारे पास 10 रेज्ड पर 5 तक का आ सकता है, ठीक है, और जिस नंबर x के साथ जोर करना है वो 10 रेज्ड पर 3 का हो सकता है. उसके बाद जो स्ट्रेंथ आ रही है, जो n एरे का हमारे पास इनपुट आएगा, उसमें वैल्यू मैक्सिमम 0 से 10 रेज्ड पर 3 हो सकती है, ठीक है. सो अगर हम थोड़ा ब्रूट फोर्स सोचें और मैं ये कहूँ कि ठीक है, अगर मेरे पास एरे आ रही है तो क्या करना है, एरे को सॉर्ट करो. तो ये कोई भी काम जो भी हम लोग अभी काम डिस्कस करेंगे उसको k बार करना है, तो एट मैक्स k की वैल्यू 10 रेज्ड पर 5 हो सकती है, ठीक है. अब n लेंथ के एरे को सॉर्ट करना n log n का काम है, सो 10 रेज्ड पर 5 इनटू log ऑफ 10 रेज्ड पर 5, ठीक है, और ये काम k टाइम्स होना है. सो दिस विल बी 10 रेज्ड पर 5 इनटू 10 रेज्ड पर 5 इनटू log ऑफ 10 रेज्ड पर 5. तो ये तो 10 रेज्ड पर 8 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, एंड वी नो दैट एक सेकंड में हम लोग 10 रेज्ड पर 8 कॉम्पिटिशंस कर सकते हैं. तो ये तो नहीं चलेगा कि बार बार मैं सॉर्टिंग कर दूं और बार बार उसमें ऑल्टरनेट नंबर्स पे आइटरेट करके मैं अपने x की वैल्यू बदल दूं या बढ़ा दूं, ये तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो वी विल थिंक दैट कि ये जो बार बार रिपीटिशन करना पड़ रहा है, हमें बार बार जो रिपीट हो रही है हमारी प्रॉब्लम की, सबको सॉर्ट करके एंड देन एक्सट्रैक्ट करना है, इसको हम लोग थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. वी विल नाउ सी द ऑप्टिमाइजेशन टू दिस प्रॉब्लम. तो अब हमें ये बात तो पता लग गई कि हम लोग बार बार सॉर्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज वो डिजायर्ड कम्प्लेक्सिटी से अबव कम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन हमें दे देगा. सो व्हाट सॉल्यूशन आई प्रपोज इज दैट कि क्यों ना हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बना ले. एक फ्रीक्वेंसी मैप बना ले किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का. अब हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि जो इस एलिमेंट्स की जो रेंज है, कि यहाँ पे जो इनकी रेंज है वो एट मैक्स 10 रेज टू द पावर 3 हो सकती है, ठीक है. सो अगर मैं एक 10 रेज टू द पावर 3 की एरे बनाऊं, मैं एक 10 रेज टू द पावर 3 लेंथ की एक एरे बनाऊं जो कि हमारे एक फ्रीक्वेंसी मैप या फ्रीक्वेंसी एरे का काम करे, तो शायद हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं. सो दिस कैन बी फ्रीक्वेंसी एरे, राइट. और मैं क्या कहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी एरे आ गई कि मान लो
कि हमारे पास जीरोस का काउंट आ रहा है 7, देन 1 का काउंट आ रहा है 10, देन 2 का काउंट आ रहा है 53, देन एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी आ गई। तो तुम खुद सोचो ना, अगर ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आई हैं, तो अगर मैं गिवन एल्गोरिदम के हिसाब से चलता, अगर मैं जो भी एल्गोरिदम मुझे गिवन है कि सबको पहले सॉर्ट करो एंड देन उसके बाद एक एक करके जोर करो, तो सॉर्ट करने के बाद भी क्या होता, इनिशियली 7 जीरोस होते, उसके बाद क्या होता 10 1 होते, उसके बाद क्या होता 53 2 होते, ऐसे करते करते ही चलता। और मैं क्या करता, ऑल्टरनेट नंबर्स को जोर करता एक्स से। सो लेट अस से कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो मैं क्या करता, इस वाले जीरो को एक्स से जोर करके इंसर्ट करता, देन इस वाले जीरो को एक्स से जोर करके इंसर्ट करता, इसको करता और इसको चूज करता। एक बार इनका काम हो जाता तो अगला एलिमेंट जो चूज हो रहा होता वो ये होता, देन ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद अगेन ऑल्टरनेट नंबर्स पे हमारा काम हो रहा होता। तो तुम एक बात देख रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने पूरे के पूरे एलिमेंट भरे हैं या नहीं भरे हैं, जो भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी थी उसके हाफ एलिमेंट्स ही तो जोर होने वाले हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 7 जीरोस प्रेजेंट थे, तो देखो 7 जीरोस मैंने लिखे, और उनमें से मैं जोर कितनों को कर पाऊंगा एक्स के साथ, सिर्फ 7/2 को ही तो कर पाऊंगा, राइट। अब आगे देखेंगे कि 7/2 का हम लोग फ्लोर वैल्यू लेंगे या सील वैल्यू लेंगे, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट इतनी बात पक्का पक्का से पता लग रही है कि अगर यहाँ पे 7 जीरोस थे तो मैंने 7/2 दैट इज 4 जीरोस को स्वैप किया और जोर किया एक्स के साथ। हमारे पास 10 वंस प्रेजेंट थे, तो देखो मैंने 5 वन दैट इज 10/2 जो हमारे पास वैल्यू आती है उतने नंबर ऑफ वंस को जोर करके अपडेट किया, बाकी सारे के सारे वंस को छोड़ दिया। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे 53 टूज है, तो 53/2 ये जो भी वैल्यू आएगी, इतने नंबर ऑफ 2 को मैं जोर करूंगा एक्स से और बाकी सारे टूज को रहने दूंगा, यही तो करूंगा। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ठीक है, इनिशियली हमें क्या करना था, जो भी एलिमेंट है उन्हें एरे में भरो, देन उन्हें सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद ऑल्टरनेट नंबर्स का जोर लेना था। चलो ठीक है, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ऑल्टरनेट नंबर्स का जोर जब मुझे लेना था, और मान लो कि मेरे पास 0 की फ्रीक्वेंसी है 7, 1 की फ्रीक्वेंसी है 10, 2 की फ्रीक्वेंसी है 53, ऐसे मान लो 3 की फ्रीक्वेंसी है 17, तो अगर मैं ऑल्टरनेट नंबर्स का जोर ले रहा हूँ तो कितने जीरोस जोर होंगे एक्स से, 7/2 क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहे हैं, देन कितने 1 जोर होंगे जीरो से, 10/2, देन अगेन कितने 2 जोर होंगे एक्स से, 53/2। जब एक बार सारे 2 वाली जो ये रेंज है ये एक बार जोर हो जाएगी सॉर्टेड एरे में, देन हम लोग 3 को जोर कर रहे होंगे, ऐसा ही तो कुछ कर रहे होंगे, और जो भी जोर होके वैल्यू आ रही होगी उसको अपडेट कर देंगे। सो व्हाट सॉल्यूशन आई एम ट्राइंग टू प्रपोज इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक काम करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी मैप, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट अस जस्ट मेक अनदर एरे, एक और एरे बनाते हैं इस फ्रीक्वेंसी मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट, इस फ्रीक्वेंसी मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और एरे बना लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ इस फ्रीक्वेंसी मैप वाली एरे पे पूरा का पूरा ट्रैवर्स करेंगे, राइट, और हर एलिमेंट पे, माइंड माय वर्ड्स, हर एलिमेंट पे, या मैं कहूँ हर इंडेक्स पे, ये होगा 0th इंडेक्स, ये होगा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो हर इंडेक्स पे जो फ्रीक्वेंसी पड़ी है, हर इंडेक्स पे जो भी फ्रीक्वेंसी पड़ी है, उस फ्रीक्वेंसी को, मेरा मतलब जैसे अगर 7 है तो 7/2 एलिमेंट्स को हम लोगों को x के साथ जोर करना था, मान लेते हैं x की वैल्यू है 12, तो मैं पता है क्या कहूंगा कि ठीक है 7/2 जीरोस को x के साथ स्वैप करना था ना, तो भाई एक ही जीरो को स्वैप करूंगा तो वही वैल्यू बाकी जीरोस के लिए भी तो होगी, सो लेट्स जस्ट जोर 0 विद 12, ठीक है, मैं 0 को 12 के साथ जोर कर दूंगा। अब मुझे क्या करना था, ऐसे 4 जीरोस के साथ करना था, तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई अगर एक जीरो को भी मैं अगर यहाँ पे जोर कर देता हूँ, जैसे कि तुमने देखा मैंने यहाँ पे एक जीरो को जोर करके क्या वैल्यू आएगी, 12 ही वैल्यू आएगी, बाकी सारे जीरोस के लिए भी तो वही आएगी। और मुझे फिर ओरिजिनल एल्गोरिथम के हिसाब से क्या करना था, यहाँ से 4 जीरोस को हटा के 4 12 इंसर्ट कर देने थे। सो लेट अस से कि मैं क्या कहता हूँ
कि ओके मैं यहाँ पे जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा, घटा दूंगा। मैं यहाँ पे जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या कर दूंगा कि इंसर्ट करेंगे जीरो की फ्रीक्वेंसी 3, कि अब भाई 3 ही जीरोस बचे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 4 जीरोस थे वो तो जोर हो गए 12x के साथ, और जो बाकी के 4 जीरोस 12 के साथ जोर हुए हैं, सपोज ये हमारा 12th इंडेक्स है, वहां पे जाके 12 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो मैं यहाँ पे 12 की फ्रीक्वेंसी 4 कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगेन अगला वैल्यू क्या है, 1। अब ये 1 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10, तो 10 में से 5 1 ऐसे होते जो हमारे पास 12 के साथ क्या होते, जोर हो जाते। तो ठीक है, अगर मैं 1 को 12 के साथ जोर करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, 13। ठीक है, तो अब 10 के 10 1 तो 13 नहीं बनने वाले, 5 ही 1 तो 13 बनेंगे, बचे 5 1 तो एज इट इज रह जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, 1 की फ्रीक्वेंसी 10 से घट के 5 हो गई, बट हमारे पास अब 13 की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर 13 की फ्रीक्वेंसी इनिशियली कुछ भी थी, यहाँ पे अगर 13 की कुछ भी फ्रीक्वेंसी थी, अब वो बढ़ के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 13 आ चुके हैं हमारे पास। मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 0 थी 13 की, तो 0 प्लस 5 इज 5। मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कुछ x थी, तो x प्लस 5 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे करते करते ही हम लोग चलेंगे। बस ध्यान क्या रखना होगा, ध्यान क्या रखना होगा, देखो मैं क्या कहता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि सपोज हमने पहले 7 वंस थे हमारे पास, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास 7 वन थे, देन हमारे पास सपोज 7 जीरो थे, 10 वन थे, एंड लेट अस से 9 2 थे, एंड 8 3 थे, देन 5 4 थे। ठीक है, और बाकी 0। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके कुछ फ्रीक्वेंसी यार बनी होगी। मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, पहले वाले 7 जो जीरोस थे उसमें से तो 4 जीरोस x के साथ जोर हो जाएंगे, सही बात है। तो जो ये 7 जीरोस थे, इसमें से ये वाले 4 जीरोस x के साथ जोर हो जाएंगे, और जो 10 वन होंगे इसमें से ये वाले 5 हो जाएंगे जोर। सही सही सा लग रहा है। अभी भी वैल्यू क्या हो रही है, 10/2 और 7/2 का 7/2 का सील। पर अब देखते हैं, अगर हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने 2 हमारे पास जोर होने वाले हैं। एक ये वाला 2 जोर हो जाएगा, ये वाला 2 जोर हो जाएगा, ये वाला 2 जोर हो जाएगा, और ये वाला 2 जोर हो जाएगा। तुम एक बात देख रहे हो, अगर मैं 9/2 करता और इसका सील वैल्यू निकालता, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सील वैल्यू आ रही थी 7/2 के केस में, तो 9/2 की सील वैल्यू आती 5, जबकि यहाँ पे मैं जोर कर रहा हूँ सिर्फ 4 2s को। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना मेरी बात। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 3 की फ्रीक्वेंसी 8 थी, सो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। अब देखते हैं, अगर ये वाला 2 जोर हुआ है तो अगला ये वाला 3 जोर होगा, ये वाला 3 जोर होगा, ये वाला 3 जोर होगा, और ये वाला 3 जोर होगा। इस केस में तो अगेन 8/2 आ रहा है 4। ओके, देन 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, सो 1 2 3 4 5। अब अगला जो 4 जोर होगा वो होगा ये, अगला ये, और अगला ये। यहाँ पे अगर मैं 5/2 की वैल्यू निकालूं और उसका सील कैलकुलेट करूं, तो 5/2 का सील कितना आएगा, 3। और देखो यहाँ पे 3 4 जो है वो x के साथ जोर होने वाले हैं। तो मतलब हमें ये चीज मेंटेन करनी होगी कि अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में तो कोई केस ही नहीं है, इवन नंबर तो हमेशा नंबर बाय 2 ही अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। बट जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर में कभी कभी हमें सील वैल्यू चाहिए होगी, कभी कभी हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए होगी। कब हमें सील वैल्यू चाहिए होगी, कब हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए होगी, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एक ऐसी सीरीज आ जाती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो अगली सीरीज के लिए, अगली ऑड सीरीज के लिए मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए होगी। जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए थी, फ्लोर वैल्यू, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए थी, सील वैल्यू। अब जैसी एक सील वैल्यू आ गई है और एक फ्लोर वैल्यू आ गई है, अगली बार दोबारा मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो हमें सील वैल्यू चाहिए, दैट इज 5/2 का सील। ओके, एक काम करते हैं, लेट अस मेक दिस 5 एज दिस 0 एज 3। तो 5 की फ्रीक्वेंसी अगर 3 है, सो 5 5 5। एंड अगेन अगर अब तुम देखो, अगर लास्ट मैंने ये वाला 4 चूज किया था, तो अगला मैं यही वाला 5 ही चूज कर सकता हूँ। तो 3/2, और अगेन अब हमें क्या चाहिए, फ्लोर वैल्यू चाहिए, अगेन हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, राइट। और
इसी तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को क्या कर लेंगे, बिल्डअप कर लेंगे कि एक बार अगर सील वैल्यू आ रही है तो अगली बार वी विल मेक श्योर कि फ्लोर वैल्यू आ रही है, देन अगेन सील, मतलब इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे कि कब सील वैल्यू आ रही है, कब फ्लोर वैल्यू आ रही है। बट जो मेन जिस्ट है प्रॉब्लम की वो ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ कि तुम बार बार सॉर्टिंग करो, हर एलिमेंट को बार बार सॉर्ट करके हर ऑल्टरनेट नंबर को जाके एक्स से जॉर करने की जगह, लेट अस मेक दिस एज, वी विल मेक अ फ्रीक्वेंसी एरे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होगी, थोड़ी छोटी साइज की बनेगी, राइट, 10⁻³ की, क्योंकि एलिमेंट्स का रेंज ही 10⁻³ तक है। एंड देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इनिशियली 7 जीरो लिखे होते, सॉर्टेड होने के बाद 7 जीरो लिखे होते, अगर जीरो अवेलेबल होता ओरिजिनल एरे में तो 7 जीरोज ही तो होते, तो उन 7 में से 7/2 जीरोज ऐसे होंगे जो जोर हो रहे होंगे, बाकी सारे नहीं हो रहे होंगे, राइट। जैसे हमारे पास अगले 10 वंस थे, तो 10/2 वंस ऐसे होंगे जो एक्स से जोर हो रहे होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट ले रहे हैं ना, एक उठा रहे एक नहीं उठा रहे, एक उठा रहे एक नहीं उठा रहे, तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल हाफ जनता ऐसी होगी जो जोर हो रही होगी और बची हाफ नहीं हो रही होगी। पर ऑड और इवन का थोड़ा केस बदल जाता है, क्योंकि इवन में तो कैसे भी कर लो हाफ वैल्यू एग्जैक्ट ही होती है, बट ऑड में कभी हम फ्लोर वैल्यू कंसिडर करेंगे, कभी सील वैल्यू कंसिडर करेंगे। उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि अगर लास्ट वैल्यू हमारी सील वैल्यू आ रही थी तो अगली बार हमें फ्लोर वैल्यू ही कंसिडर करनी है, ठीक है। सो इस चीज को ऐसे हैंडल कर लेंगे। तो बताओ क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक मैं कह रहा हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस फ्रीक्वेंसी बनाओ, और हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी की जगह ओरिजिनली भी एरे को मैं सॉर्ट करके रखता तो भी तो ऑल्टरनेट नंबर को जोर करता, ऑल्टरनेट नंबर को जोर करता तो आधे नंबर अपडेट होते आधे नहीं होते, तो क्यों ना फ्रीक्वेंसी मैप में जितने अपडेट हो जाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी घटा दो, और नई जो जोर वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी मैप में वहां जाके अपडेट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हर बारी सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। वी विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ कर दें कि फ्रीक्वेंसी एरे में ही सारा काम हो जाए, और एक बार फ्रीक्वेंसी एरे को ट्रैवर्स करना है तो फ्रीक्वेंसी एरे को ट्रैवर्स करना है 10⁻3, और ये काम हमें k टाइम्स करना है, k की रेंज एट मैक्स 10⁵ है, सो दिस विल बी 10⁵ into 10⁻3 एंड दिस विल कम आउट एज 10⁸ और ये तो एक्सेप्टेबल कम्प्लेक्सिटी की रेंज में लाई कर रहा है, क्योंकि 10⁸ की कम्प्लेक्सिटी तो हम लोग अचीव कर सकते थे, ठीक है। तो एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी, तुम पहले क्या करो, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, ठीक है। उसके बाद किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट था और सॉर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पहुंचने वाला था। तो अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी किसी भी इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो क्या करना है, हमें उस इंडेक्स की वैल्यू को एक्स के साथ जोर कर लेते हैं, क्योंकि चाहे 7 जीरोस को अलग अलग जोर करूं मैं या एक ही जीरो को जोर करके पता कर लूं, बाकी जीरोस के जोर करने की वैल्यू भी तो सेम ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि इस वाले जीरो को अगर मैं जोर करूंगा 12 के साथ तो अलग वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, दोनों की तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो बार बार क्यों कंप्यूट करना है। लेट अस मेक श्योर कि हम लोग एक ही बार जीरो को जोर एक्स के साथ जोर करें और उसी में बाकी का काम कर लें। फिर मैं कहता हूँ कि एक बार तुमने जोर करके कर ली वैल्यू, उसको स्टोर कर लो वेरिएबल में, और उसके बाद देखो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑड बन रही है इवन बन रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, इवन में तो हमेशा हाफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अपडेट हो रहे होंगे, हाफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अपडेट नहीं हो रहे होंगे। ऑड में थोड़ा सा केस अलग है। एक बार हमें ये पता लग गया कि कितने एलिमेंट अपडेट हो रहे हैं कितने एलिमेंट अपडेट नहीं हो रहे, तो जो भी वैल्यू ये आएगी, जो भी हाफ वैल्यू हमारे पास आएगी, हम उसको अपनी फ्रीक्वेंसी एरे के जीरोथ इंडेक्स में, अगर हम लोग जीरो के लिए सोच रहे हैं तो जीरोथ इंडेक्स में से उतना घटा देंगे, और जोर करके जो नई वैल्यू आ रही है, जैसे 1 और 12 को जब हमने जोर किया था तो वैल्यू आ रही थी 13, तो 13 न्यू वैल्यू आ रही है, तो 13 में जाके 5 बढ़ा दो, क्योंकि 5 ऐसे 1 होंगे जो x के साथ जोर होने के बाद 13 में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन 5 ऐसे भी होंगे जो ट्रांसफर नहीं होंगे, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 5 से घटा दो और 13 की फ्रीक्वेंसी जो भी अवेलेबल है उस टाइम, जो भी जीरो है या कुछ और नंबर है, उसको 5 से बढ़ा दो, और बस ऑड नंबर के लिए चेक करते रहो कि अगर लास्ट बारी मेरे पास कहीं ऑड नंबर आया था और उसमें मैंने सील वैल्यू कंसीडर करी थी, मैं सील वैल्यू से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास ऑड है या इवन है, अगर पहली बार ऑड का ग्रुप आ रहा है तो मैं उसकी सील वैल्यू लेने का पसंद करूंगा, वरना अगर लास्ट सील वैल्यू ली थी मैंने तो इस बारी मैं फ्लोर वैल्यू लूंगा, ठीक है। आर यू ऑल गाइस गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका कोड कैसे करेंगे एंड विल ट्राई टू रिपीट द लॉजिक। एक बार कोड देख लेते हैं, और कोड में हम लोग ये भी देखेंगे कि सील और फ्लोर वाली चीज़ को हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक बार कोड देख लेते हैं, और करना क्या है, 2 एरेज बना के रखेंगे और पहली एरे को ट्रांसफॉर्म कर देंगे दूसरी वाली एरे में, और अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी विल कोड द सॉल्यूशन।
start coding our solution, right? So I'm coding my solution in id.codingblocks.com. So if you are not aware about our ID, so this is a free online ID. This is ad free, and uh, you can code in C++, C Sharp, Java, C, Python, any preferred language that you like, right? So यहीं पे कोड करेंगे. So let's just start, right? So क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर्स का इनपुट आ रहा है, दैट इज n k x, राइट? तीनों का इनपुट ले लेते हैं, दैट इज n k x को cin कर लिया हमने, ओके. अब मैं क्या कहता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं. सो int स्टार फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू न्यू int, और नंबर्स की रेंज 10⁻³ तक की थी, तो ठीक है, एक काम करते हैं, 1500 तक की लेंथ की एरे बना लेते हैं, और काफी डुएबल है. दिस इज ऑल्सो 10⁻³, थोड़ा सा मार्जिन रख के चल रहे हैं कि 10⁻³ में थोड़ा अबव या ग्रेटर वैल्यू आ गई तो क्या कर रहे होंगे, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं अपने सारे के सारे एलिमेंट्स का. सो दिस विल फॉर int i is equals to 0, i less than n, i plus plus. We will take a number input x, c in x, और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ x को जाके इंक्रीमेंट कर देंगे. और एक काम और करते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे को 0 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे. सो आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस सिंटैक्स. अगर हम लोग कभी भी डायनेमिकली अपनी मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं और हम लोग साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का एक पेयर लगा देते हैं, सो पूरी की पूरी एरे 0 से इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है. तो इससे क्या इंश्योर हो रहा होगा कि कोई गार्बेज वैल्यू नहीं पड़ी है, सब कुछ 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, एंड इक्वली सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, राइट. अब कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ एक दूसरी एरे बनाओ, टेम्परेरी एरे, सिमिलर साइज की, ठीक है. सिमिलर साइज की हम लोग एरे बना रहे हैं, ठीक है. और कुछ काम करना है, कितनी बार, k टाइम्स कुछ काम करना है. सो वाइल k माइनस माइनस, राइट, इतनी बार हमें कुछ काम करना है. क्या काम करना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ i, तो एक काम करते हैं, पहले पूरी एरे पे आइटरेट करते हैं. सो फॉर int i is equals to 0, i less than n, i plus plus. अगर कभी भी किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें दोबारा वो अपना जॉर और वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला काम करना है, ठीक है. तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो अपनी टेम्परेरी एरे में अपनी ओरिजिनल एरे को कॉपी कर लेते हैं. तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं जो भी चेंजेस करूंगा टेम्परेरी एरे में करूंगा, और वैल्यूज को पढ़ूंगा कहाँ से, ओरिजिनल एरे में से. तो देखते हैं क्या कर रहा हूँ मैं. तो अभी के लिए बस कॉपी कर लेते हैं अपना सारा का सारा सामान. So I less than 1500 and I plus plus. So this will be temp at I is equals to frequency of I. ठीक है. So ये हमने स्टोर करा लिया, ठीक है. एक मैं वेरिएबल रख रहा हूँ int parity. ये पैरिटी वेरिएबल जो होगा ना, यही डिसाइड करेगा कि अगर हमारे पास ऑड की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमें सील वैल्यू लेनी है या फिर फ्लोर वैल्यू लेनी है. चलो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है. अब मैं अपनी ओरिजिनल एरे पे ट्रैवर्स करूंगा, दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एरे पे ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है. और अगर मुझे कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इंडेक्स ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो सबसे पहले तो जाके जॉर वैल्यू निकाल लो. सो आई जॉर एक्स, क्योंकि आई का मतलब क्या होगा, हम 0 की बात कर रहे हैं या फिर 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर ith एलिमेंट की बात कर रहे हैं. अब उस ith एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, एक बार ही x के साथ जॉर होगा, सारे के सारे x के साथ जॉर होने के बाद सेम ही वैल्यू ला रहे होंगे, तो बार बार जॉर करने की तो कोई पॉइंट ही नहीं है. बस एक काम करते हैं कि एक बार ही जॉर करके रख लिया. एंड वन मोर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, इस x को वे x i कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सेम स्कोप में आ जाए. सो इस वेरिएबल को मैंने xi कर लिया, क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी एक x नाम का वेरिएबल बना रखा है, ठीक है. सो चलो हम लोगों ने क्या करा, जॉर करी हुई वैल्यू निकाल ली, ओके. अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चेंज वैल्यू. चेंज वैल्यू में पता क्या स्टोर करूंगा मैं, कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ i डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या है. अभी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ i को ऑड इवन के लिए कैसे मैनेज करना है, बट अभी इतना कुछ तो पता ही है कि हाफ वैल्यू ही कंसीडर करनी है, जिसमें हाफ वैल्यू अपडेट होगी, हाफ वैल्यूज अपडेट नहीं होंगी. ऑड इवन में बस इसको फ्लोर और सील के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना है. तो अब फ्लोर और सील के कॉरेस्पॉन्डिंग पता कैसे चेक करेंगे, ये पैरिटी बिट जो है ना, ये थोड़ा स्टेटस की तरह काम करेगी. मैं कहूँगा कि अगर पैरिटी बिट हमारी या पैरिटी वेरिएबल हमारा 0 है, तो पैरिटी वेरिएबल अगर हमारा 0 है, इसका मतलब हमें सील वैल्यू कंसीडर करनी है. सो दिस विल बी कंसीडर सील वैल्यू फॉर ऑड. अब ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सिर्फ ऑड में ही सील वैल्यू जाए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इज, आई विल राइट करंट, और आई शुड से चेंज वैल्यू प्लस इक्वल टू, आई विल राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एम्परसैंड 1. अब इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा होगा,
अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई हमारा इवन नंबर हुआ तब तो ये स्टेटमेंट कुछ भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि इवन नंबर का एंड करेंगे 1 से तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और चेंज वैल्यू में 0 ऐड होगा तो चेंज वैल्यू की वैल्यू नहीं बदलेगी। पर अगर ये ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और चेंज वैल्यू में जो कुछ भी पड़ा होगा उसका फ्लोर हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो C++ का हमारा एनवायरनमेंट है वो सॉरी चेंज वैल्यू में सील हो जाएगा, एंड बाय डिफॉल्ट जो C++ का एनवायरनमेंट है वो फ्लोर करता है। जैसे 7/2 किया तो 3 हो गया, 19/2 किया तो 9 हो गया। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर 19/2 कर रहे हैं तो 20 चाहिए, क्योंकि अभी पहली बार वैल्यू है तो सील वैल्यू कंसिडर करनी है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो भी वैल्यू थी उसमें +1 कर दो। और 1 कैसे आ रहा होगा, अगर ऑड नंबर है उसका हमने बिटवाइज एंड कर दिया, दिस इज बिटवाइज एंड, उसका हमने बिटवाइज एंड कर दिया 1 से तो वैल्यू आ जाएगी 1। इवन नंबर को तो छेड़ना ही नहीं था, तो इसमें बिटवाइज एंड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि क्योंकि मैंने टेम्परेरी वाली एरे में सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एरे को हम लोग खराब नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर थे ith पे, जितने ith नंबर की जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसमें से आधे नंबर चेंज होंगे, आधे नहीं होंगे। तो अगर आधे नंबर चेंज हो जाएंगे तो मेरी वैल्यू घट जाएगी। किससे घट जाएगी, चेंज वैल से घट जाएगी, क्योंकि इसी में हमारे हाफ नंबर्स का काउंट स्टोर्ड होगा। और जो नया जोर होके वैल्यू आई, नई जोर होके वैल्यू कितनी आई, करंट वेरिएबल में पड़ी है, तो जो भी नए जोर होके वैल्यू आई उस वाले इंडेक्स पे जाके चीजें बढ़ जाएंगी। सो दिस विल बी प्लस चेंज वैल्यू। जैसे सपोज करो आई की वैल्यू थी 1, तो मैंने 1 को 12 के साथ जोर किया, करंट में आ गया 13। ठीक है, मान लो कि फ्रीक्वेंसी थी 10, तो चेंज वैल्यू कितनी हुई, 10/2 इज 5। पैरिटी कुछ भी हो, ये वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई 10 है, 10 एंड 1 हमेशा 0 बनेगा, तो ये चीज कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगी। अब मैं क्या कहता हूँ, 10 में से 5 1 जोर होके 13 बन जाएंगे, बचे 5 1 का कुछ भी नहीं होगा। तो इनिशियली हमारे पास 10 थे 1, अब वो घट के 5 हो जाएंगे, तो कैसे 5 करेंगे, 10 - 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और 13 पे जाके 13 की ओरिजिनली जो भी वैल्यू थी उसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि अब एरे में नए 13 5 नए 13 ऐड हो गए हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने पैरिटी वाले इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, वी विल जोर द पैरिटी वेरिएबल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एंड 1। अब इससे क्या हो रहा होगा, देखो इनिशियली हमारा पैरिटी, सो देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो इनिशियली हमारा पैरिटी वेरिएबल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी रेंज आ गई जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑड थी। ठीक है, तो उसने पहली बार है तो सील वैल्यू ले ली होगी, गुड है। अब क्या होगा, अब उसने पहली बार सील वैल्यू ले ली तो पैरिटी बिट पे 0 पड़ा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ऑड था, तो ऑड नंबर का एम्परसैंड किया हमने या बिटवाइज एंड किया 1 से, तो वैल्यू आ गई 1, तो 0 और 1 विल बी 1, राइट। ठीक है, तो अगली बार हमारे पैरिटी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, दैट विल बी 1। इवन होगा तो कोई बात ही नहीं है, पर ऑड होगा, अगर अगला भी रेंज हमारी ऑड की आई तो यहाँ पे पैरिटी वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो चेंज वैल्यू की वेरिएबल कभी नहीं बदलेगी। मान लो पहली बार में 7 था, पर अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 9 था, तो 9/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और क्योंकि पहले सील ले चुके हैं तो अगली बार फ्लोर वैल्यू लेनी है, तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, और ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि पैरिटी को मैंने क्या कर दिया है, पैरिटी को मैंने कर दिया है 1। फिर उसके बाद जो भी अपने अपडेट करने हैं इंडेक्स में वो अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, 9 एंड 1 करेंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगली बार जब दोबारा हमारे पास ऑड नंबर आएंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे पैरिटी दोबारा 0 होगी और दोबारा हम लोग सील वैल्यू ले लेंगे। अब पैरिटी चाहे 0 हो चाहे 1 हो, अगर मैं कभी 0 कर देता हूँ कभी 1 कर देता हूँ, तो वो सिर्फ ऑड वाली फ्रीक्वेंसी को छेड़ रही होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इवन होगी तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, सो आर यू ऑल गाइस गेटिंग माय पॉइंट। और एक बार ऐसा हो जाता है, पूरी की पूरी एरे हमारी ट्रैवर्स हो जाती है, तो अगली बार के ट्रैवर्सल के लिए मैंने टेम्प एरे में सारी की सारी नई वैल्यूज को अपडेट करा था, क्योंकि पहले मैंने टेम्प में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के एरे को कॉपी कर लिया था, टेम्प में ही चेंजेस करे थे, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी एरे पढ़नी भी तो है। और एक बारी मैंने टेम्प में सारे के सारे चेंजेस कर दिए, मैं दोबारा क्या करूंगा, टेम्प के करे हुए चेंजेस को
फ्रीक्वेंसी एरे में भर दूंगा. सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी टेम्प. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मान लो कि ओरिजिनली 13 की कुछ काउंट पड़ा था और 1 ने आधे वंस 13 बन चुके हैं और वो जाके ऐड हो जाएंगे. तो जब मेरा ये जो लूप है वो 13 पे आएगा, जब मेरा ये लूप 13 पे आएगा तो इसको तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाले फ्रीक्वेंसी एरे वाली वैल्यू के ऊपर अपनी डिसीजन लेनी है कि कितनों को चेंज करना है, कितनों को नहीं करना. नए वाले के ऊपर तो चेंज नहीं करना क्योंकि हम लोग नए एलिमेंट्स को नए एरे में भर रहे हैं. ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा है, टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी एरे बनाई है. सारे चेंजेस मैं उसमें करता हूँ और अगली के की अगली आइट्रेशन के लिए मैं दोबारा उसको फ्रीक्वेंसी एरे में भर देता हूँ. एक बार ही मैंने ऐसा कर लिया तब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं है. पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी एरे पे ट्रैवर्स करना है और अपना मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना है. सो लेट अस मेक टू वेरिएबल्स, इंट min value. So int min val is equals to int max, right? And the next variable we will make as max val is equals to int min, right? तो दोनों वेरिएबल हमने बना लिए और उसके बाद कुछ नहीं करना, अब तो बस मिनिमम और मैक्सिमम का खेल है. सो फॉर int I is equals to 0, I less than 1500, I प्लस प्लस. ठीक है, और कहीं भी if frequency of I is greater than 0 तो हमें अपने min और max को चेंज करने की जरूरत है. सो हम क्या करेंगे, min val is equals to minimum of min val कॉमा I, दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको स्टोर कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है. एंड सिमिलरली यही काम हम लोग मैक्स वैल के लिए कर लेंगे, बस कंपैरिजन मैक्स के साथ करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी मैक्स, राइट. एक बार ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वी विल सी आउट मैक्स वैल विद अ स्पेस एंड मिन वैल. ठीक है, ये हम लोग सी आउट कर लेंगे और सही सही सा लग रहा है कोड, कोई दिक्कत सी तो लग नहीं रही है. लास्ट में बस एक बार ही देख लो मैंने क्या करा है, फ्रीक्वेंसी एरे में से वो वाला एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम है. तो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हम लोगों को एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हम लोगों को आई रखना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कुछ करा है. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इस कोड को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं. सो जस्ट लेट्स मेक इट एज john.cpp and let's just download the code, right? So कोड मैंने डाउनलोड कर लिया है and let us just submit this code. So let us just submit this code, right? So I guess it will take some time in submitting. Okay, so I guess my internet is slow, maybe that's why, or there are a lot of cases, that's why it's running pretty late. So it's still running on test case 1. ठीक है, जब तक ये टेस्ट केस 1 पे रन कर रहा है देख लेते हैं क्या वर्डिक्ट आता है. हो सकता है कोड में अगर कुछ गलती होगी तो अपडेट कर लेंगे, तब तक एक बार ही दोबारा लॉजिक को रिविजिट कर लेते हैं. ओके, सो वी हैव एन इशू इन आवर टेस्ट केस 1 ओनली. सो ठीक है, देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने कुछ गलत करा होगा. सो लेट अस जस्ट रिविजिट आवर लॉजिक. सो हम लोगों ने इनपुट ले लिया एन के और एक्स का. ठीक है, उसके बाद अपनी एक 1500 लेंथ की एरे बना ली है क्योंकि 10⁻³ तक रखना था. ओके, दिस इज लुकिंग pretty fine. उसके बाद हमने n का इनपुट लिया और c इन करा लिया और फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली. ठीक है, बढ़िया लग रहा है. उसके बाद एक टेम्परेरी एरे बनाई दोबारा 1500 लेंथ की, ये भी बढ़िया लग रहा है. देन वाइल k माइनस माइनस, पहले मैंने टेम्परेरी एरे को टेम्परेरी एरे में पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी एरे को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है. ठीक है, उसके बाद एक पैरिटी वेरिएबल बनाया, सही लग रहा है, पैरिटी वेरिएबल 0 से. देन i इज इक्वल्स टू, ओके, सो दिस विल बी 1500, दिस विल बी 1500. वाई? बिकॉज पूरी की पूरी एरे पे ट्रैवर्स करना है ना, हम खाली n तक ट्रैवर्स कर रहे थे. ठीक है, सो दिस इज वन मिस्टेक, क्योंकि हम लोगों को पूरी फ्रीक्वेंसी एरे पे ट्रैवर्स करना है. n तो चाहे जो भी हो, हम लोग तो फ्रीक्वेंसी एरे के ऊपर काम कर रहे थे. ठीक है, अब कहीं भी अगर फ्रीक्वेंसी एरे की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो अपनी जॉर वैल्यू निकालो, हाफ जो भी हाफ करके वैल्यू आ रही है वो निकालो. पैरिटी को चेक करो कि सील लेना है या फ्लोर लेना है. देन टेम्परेरी एरे में पहले घटा दो, फिर टेम्परेरी एरे में बढ़ा दो, लास्ट में फ्रीक्वेंसी एरे को क्या करना है, कॉपी. आई गेस दिस वुड वर्क फाइन. लेट मी अगेन डाउनलोड द कोड. लेट अस मेक इट एज john1.cpp and let us just download the code, right? And we will resubmit it.
सो आई होप दिस वुड वर्क फाइन दिस टाइम. छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी बट ठीक है. सो लेट अस जस्ट सबमिट द सॉल्यूशन. Okay, so it's running pretty fast this time. ओके, सो वी हैव गॉट द वर्डिक्ट एज एक्सेप्टेड. तो सॉल्यूशन चल गया है हमारा. ठीक है. सो इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ एंड दिस इज सेव्ड ऑन द लिंक id.codingblocks.com एंड अभी हमें एक आईडी मिल जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द लिंक 113665. तो सब लोग यहाँ पे जाके कोड को ले सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कोड में मैंने क्या लिखा है. ठीक है. सो पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है. पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट लिया है, फ्रीक्वेंसी भरी है और फिर अपना जोर वाला काम किया है. सो लेट अस जस्ट रिविजिट द लॉजिक कि एग्जैक्टली हमने करा क्या है. तो मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम में क्या गिवन था कि एक एरे आ रही है, बार बार एरे को के टाइम सॉर्ट करके ऑल्टरनेट नंबर्स का जोर लेना है और एरे को अपडेट करना है, एरे में इंसर्ट करना है. मतलब जिस जिसका जोर लिया उसको रिमूव करो और जो भी नई वैल्यू आ रही है उसको इंसर्ट कर दो, फिर दोबारा सॉर्ट करो, दोबारा ऑल्टरनेट नंबर का जोर लेके रिमूव करके अपडेट कर दो. ठीक है. अच्छा प्रॉब्लम है बट कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या जा रहे थे, 10⁸ से बड़े जा रहे थे. तो मैंने क्या कहा कि सॉर्ट करने के बाद सारे के सारे जीरो एक तरफ हो जाएंगे, फिर सारे 1 आ जाएंगे, फिर सारे 2 आ जाएंगे, फिर सारे 3 आ जाएंगे. सॉर्ट होने के बाद तो यही होगा. ठीक है. और जब मैं इस सॉर्टेड एरे में ऑल्टरनेट नंबर्स को उठा रहा हूँ तो कुछ जीरोज उठेंगे, कुछ 1 हटेंगे, कुछ 2 हटेंगे, ऐसे करते करते चीजें हटेंगी. अब जो जीरोज हट रहे हैं या 1 हट रहे हैं वो ओरिजिनल जो भी फ्रीक्वेंसी है, जितने वो जीरोज प्रेजेंट है उसमें से आधे जीरोज हट जाएंगे, आधे 1 हट जाएंगे, आधे 2 हट जाएंगे और हट के क्या होंगे, एक्स के साथ जोर होंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इंसर्ट हो जाएगी. तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जब मुझे पता है कि आधे जीरो अपडेट होने वाले हैं और आधे रहने वाले हैं, आधे 1 अपडेट होने वाले हैं और रहने वाले हैं, तो बार बार जोर करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना. एक बार ही जोर करो, जो भी वैल्यू आ रही है 1 की फ्रीक्वेंसी में से आधा माइनस कर दो और जोर करके जो भी नई वैल्यू आ रही है उसमें 1 की फ्रीक्वेंसी का आधा प्लस कर दो. यही तो मैं कह रहा हूँ. और इससे फायदा क्या हो रहा है कि बार बार जोर नहीं करना पड़ता, बार बार हमें सॉर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप जो है वो तो सॉर्टेड के कॉरेस्पॉन्डिंग ही भरा होता है. ठीक है. सो आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है. एंड वो पैरिटी वाला लॉजिक भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पैरिटी वाले लॉजिक में क्या हो रहा है. पैरिटी वाले लॉजिक में क्या है कि देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पहले हमें सील वैल्यू लेनी है, फिर हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है, फिर अगेन सील वैल्यू, फिर फ्लोर वैल्यू. अगर ऑड है फ्रीक्वेंसी, इवन फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं कहता हूँ इनिशियली पैरिटी को 0 रखो. ये पैरिटी एक फ्लैग वेरिएबल टाइप का, इसको 0 रखो. जब ये 0 होगा ना तो मैं सील वैल्यू लूंगा और जब ये 1 होगा तो मैं फ्लोर वैल्यू लूंगा. अब 0 और 1 कैसे है, अगर पहली बार कभी ऑड फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 0 को 1 कर दो, और अगर दोबारा ऑड फ्रीक्वेंसी आ गई तो दोबारा 1 को 0 कर दो. तो 0 को 1 और 1 को 0 कैसे कर रहे हैं, जोर वगैरह करके कर लेते हैं. सो अगर लग रहा है कि ठीक है समझ में आ गया है बट एग्जैक्टली कोड पता नहीं लग रहा है, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि वेबिनार के बाद एक बार सब लोग पेन पेपर पे छोटे इनपुट के लिए जरूर से एक बार ड्राई रन करके देखो कि क्या चीजें कैसे चल रही है. ठीक है. सो आई होप द लॉजिक फॉर द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू ऑल एंड नाउ वी विल जंप टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem that we are going to discuss is arithmetic slices. So this problem is on lead code and the problem number is 413. तो क्या कह रही है problem? So we will be given a sequence of number and a sequence of number is called arithmetic, right? If it consists of at least 3 elements and if the difference between any two consecutive elements is the same. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें एक array given होगी और उस array में एक term इन्होंने define करी है which is arithmetic slices. So कोई arithmetic slice क्या होगी कि एरे की ऐसी सब एरे, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली इसकी एक और वेरिएशन होती है जिसमें सब एरे की जगह सब सीक्वेंस होता है, बट अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एरे की ऐसी सब एरे जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हों और हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो बराबर हो, मतलब एपी बन रही हो और एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स की, राइट. तो हमें क्या बताना है इस प्रॉब्लम में कि अगर कोई एरे गिवन है तो कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस हमारे पास अवेलेबल होंगी उस कॉरेस्पॉन्डिंग एरे के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुल मिलाकर एरे की ऐसी सब एरे जो जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो, 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, और वो पूरे के पूरे जो सब एरे है वो एपी हो, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो.
ठीक है, तो मैं बताने की ऐसी कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ LCS, सॉरी, this is a slight modification of LIS. So LIS is the problem of longest increasing subsequence. तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बाकी बहुत आसानी से 1D DP लग जाएगी, और मीडियम का टैग है, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ इजी मीडियम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड पूछा जाता है इंटरव्यूज में, पूछ सकते हैं। सो अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है LIS और DP की। सो लेट्स जस्ट डीबग द सॉल्यूशन एंड लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो एक टेस्ट केस लेते हैं। सो लेट अस टेक द टेस्ट केस एज -3, then 4, then 6, then okay, so this will be maybe 15, right, then 8, then 10, then 14, right, and maybe we can take one more element as 25, and one more element as 35, right. So ये हमने इनपुट एरे ले लिया, सो दिस इज आवर इनपुट, ठीक है। सो दिस इज आवर इनपुट, और अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी डीपी सॉल्यूशन मैं प्रपोज करता हूँ सब लोगों के सामने। मैं क्या कहता हूँ कि लेट अस मेक अ न्यू डीपी एरे, एक डीपी एरे बना लेते हैं, एंड उस डीपी एरे को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। डीपी एरे के डायमेंशंस क्या होंगे, डीपी एरे 1D होगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डीपी एरे में होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन एरे में, ठीक है। सो बराबर साइज की डीपी एरे बना लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। और इनिशियली पूरी की पूरी डीपी एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो अब मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स में तो कभी कोई स्लाइस बन ही नहीं सकती। ये डीपी एरे पता है क्या स्टोर करेगी, ये डीपी एरे स्टोर करेगी कि डीपी एट आई का मतलब होगा कि ith इंडेक्स पे खत्म होने वाले एलिमेंट पे कितनी एरिथमेटिक स्लाइसेस एंड हो रही हैं, ऐसा कुछ स्टोर करेंगे। देखते हैं और उसके बाद दोबारा मीनिंग को डिफाइन करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि 0 और फर्स्ट पे तो कभी कोई अरिथमेटिक स्लाइस एंड करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ होगी या तो 1 या तो 2, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। और पता है क्या चेक करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है और ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर हैं। अगर ये दोनों जो भी हमने डिफरेंस निकाला, ये अगर हमारे पास बराबर आ जाते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया केस आ गया। और हम लोग क्या करेंगे कि डीपी एट आई पे पता है क्या स्टोर करेंगे, हम कहेंगे कि डीपी एट आई, अगर ये जो डिफरेंस है, इफ ए आर आर एट आई माइनस ए आर आर एट आई माइनस 1 becomes equals to ARR at I minus 1 minus ARR at I minus 2। अगर ये चीज हमारे पास कभी भी डिफाइन हो जाती है, सो आई विल से DP at I will be equal to 1 plus DP at I minus 1। कुछ LIS जैसा दिख रहा है सब लोगों को, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जैसा। और एल्स क्या स्टोर करेंगे, DP at I equal to 0, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर ये एक स्लाइस बन सकती है, सो यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर दूंगा, 1 प्लस DP एट आई माइनस 1। सो आई की वैल्यू है 2, तो यहाँ का एडिशन हो जाएगा 1। तो देखो 6 पे एंड होने वाली एक हमारे पास अरिथमेटिक स्लाइस बन रही है। कैन यू सी दिस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि आई इज इक्वल्स टू 2 से अब आई इज इक्वल्स टू 3 पे आ गए। अब तुम खुद देखो कि क्या इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर है। सो ओके, सो हमने थोड़ा सा एरे थोड़ी गड़बड़ सी ले ली है। सो ओके, सो थोड़ी एरे में अपडेट कर लेते हैं, वरना बढ़िया सा सोल्यूशन बनेगा नहीं। सो लेट अस जस्ट मेक द एलिमेंट्स, लेट अस जस्ट अपडेट सम एलिमेंट्स। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं 6 एंड ओके, सो यहाँ पे भी हमने थोड़ी गलती कर दी है। एंड okay, so let's just try run again, and let us just make the elements as 4 6 8 10, then 6 8, this will be 10 14 18, then 22 and then 26, ठीक है। अब थोड़ा बेटर है। तो चलो अब दोबारा से देखते हैं कि क्या हो रहा है।
सो हम दोबारा i इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे और मैं कहूँगा कि क्या इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है. सो 6 माइनस 4 इज 2 बट 4 माइनस माइनस 3 इज 7. तो डिफरेंस बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, डीपीआई टाइप पे 0 का 0 रहने देंगे. अब यहाँ पे आए, क्या इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर है? 8 माइनस 6 इज 2 एंड 6 माइनस 4 इज ऑल्सो 2. तो मैं क्या कहूँगा कि 6 पे एंड होने वाली जितनी भी अरिथमेटिक स्लाइसेस थी, 6 तक एंड होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस थी? एक भी नहीं है. तो सब में 1 ऐड कर दो. तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है, सो यहाँ पे अपडेट होके 1 आ गया. ओके, अब क्या कहता हूँ कि इस वाले इंडेक्स पे आते हैं. आई की वैल्यू अब हमारे पास हो जाएगी 4. ठीक है, सो फॉर आई इज इक्वल्स टू 4 अगेन आई विल चेक कि क्या 10 माइनस 8 का डिफरेंस 8 माइनस 6 के डिफरेंस के बराबर है. सो 10 माइनस 8 इज 2 एंड 8 माइनस 6 इज अगेन 2. तो तुम एक चीज देख सकते हो, मेरे पास कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस बन रही हैं. मेरे पास एक अरिथमेटिक स्लाइस बन रही है 4 6 8, उसका तो हमने यहाँ पे काउंट रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. एक अरिथमेटिक स्लाइस बन रही है 6 8 10 और एक बन रही है 4 6 8 10. तो मैं पता है यहाँ पे क्या चीज डिफाइन कर रहा हूँ, डीपी एट आई को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई 8 पे एंड होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइस थी? 4 6 8, राइट. 8 पे एंड होने वाली इतनी अरिथमेटिक स्लाइसेस थी. तो एक अरिथमेटिक स्लाइस इसके बाद अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? 4 6 8 10. और एक सिर्फ इन दोनों की मदद से क्या बन जाएगी? 6 8 10. तो अब देखो 10 पे एंड होने वाली कितनी है? 2 बन रही है. सो दिस विल बी 1 प्लस 1, सो दैट इज 2. यहाँ पे हम लोग 2 स्टोर करा देंगे. 14 पे आते हैं. 14 पे आते हैं. आई विल से दैट कि 14 के लिए पता है क्या होगा? 14 के लिए अगेन आई विल चेक द डिफरेंस ऑफ दिस वन एंड दिस वन, और ये दोनों बराबर नहीं है. तो तुम खुद सोचो, क्या कभी 14 पे कोई ऐसी सवेरे एंड हो रही होगी जो अरिथमेटिक स्लाइस बनाएगी? कभी नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव होने चाहिए थे और कम से कम 3 होने चाहिए थे. तो नहीं हो रहा, तो यहां से हट जाते हैं, ये हटा लेते हैं. ओके, नाउ 18 minus 14 and 14 minus 10. This is an arithmetic slice. Why? 18 minus 14 is 4, 14 minus 10 is again 4. तो 14 पे एंड होने वाली कोई अरिथमेटिक स्लाइस है नहीं. तो 18 पे एंड होने वाली कोई अरिथमेटिक स्लाइस क्या होगी? 10 14 18. तो एक बन रही है विच इज 1 प्लस 0. तो आगे आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं. सो दिस इज 1. ओके, नाउ 22 के लिए 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 14. सब में डिफरेंस 4 आ रहा है. तो 18 पे एंड होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस थी? देखो 18 पे एंड होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस हैं? सो 18 पे एंड होने वाली अरिथमेटिक स्लाइसेस है 10 14 18, राइट. अब यहां से मैं 22 से ऐड करके 2 अरिथमेटिक स्लाइसेस बना सकता हूं. कौन सी? 10 14 18 और 22. एक 14 18 22, राइट. तो यहां पे क्या होगा? दिस विल बी 1 प्लस डीपी एट आई माइनस 1. तो यहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2. अब ये लास्ट वाले में बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर होने वाली है कि लास्ट वाले में देखते हैं कि कैसे हो रहा होगा और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो देखते हैं 26 पे आए. इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस अगेन बराबर है. तो देखते हैं 22 पे खत्म होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस थी. तो ये थी 14 18 22 और एक थी दिस इज 10 14 18 22. ठीक है, तो यहां से 26 पे एंड होने वाली पता है, मैं दोबारा 2 बना सकता हूँ. कौन सी? एक मैं बना सकता हूँ 14 18 22 26, और यहां से क्या बना सकता हूँ? 18 22 26. और उसके बाद यहां से पता है मैं क्या बना पाऊंगा? यहां से मैं बना पाऊंगा 10 14 18 22 26. इसके अलावा कोई और बनेगी? देखो एक बार ये 3 कंसिडर कर लिए, फिर ये 4 कंसिडर कर लिए, फिर ये 5 कंसिडर कर लिए. इसके अलावा तो कोई अरिथमेटिक स्लाइस नहीं बनेगी. तो टोटल कितनी बन रही है अरिथमेटिक स्लाइस? दिस इज 1 प्लस डीपी एट आई माइनस 1. पिछले वाले से एक ज्यादा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी वैल्यू. और एक बारी मैंने अपनी पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी एरे बना ली है. तो कुछ नहीं करना, ये डीपी एरे में आइट्रेट करो और एक रिजल्ट वेरिएबल रख लो. इनिशियली 0, और सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो. पूरी एरे में ये पता है हमें कि हर एलिमेंट पे एंड होने वाली अरिथमेटिक स्लाइस कितनी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक स्लाइसेस पता लग जाएंगी. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम जो है ये डायरेक्टली एलआईएस जैसा ही होता है, क्योंकि एलआईएस पे हम लोग क्या कहते हैं कि हर एलिमेंट पे
देखते हैं कि इस एलिमेंट पे एंड होने वाली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर जितना सोल्यूशन चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एन स्क्वायर जितना सोल्यूशन जैसे उसमें चलता था वो चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा। कैसे नॉर्मली हो रहा है देखो, अगर मैं ये कहूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से मैं ये चीज़ डिफाइन कर पा रहा हूँ कि अगर मुझे ओ एन में सोल्यूशन चलाना है, कि अगर ओ एन में मैं सोल्यूशन चला देना चाहता हूँ और देखना है कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक स्लाइसेस बना पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस वाला क्राइटेरिया है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्राइटेरिया है, अगर कम से कम 3 बंदे जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि उस बंदे पे एंड होने वाली, मतलब जिस करंट एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस करंट एलिमेंट पे एंड होने वाली जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस जो अरिथमेटिक स्लाइसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट ट्रैक द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सैटिस्फाइंग द कॉमन डिफरेंस, जो भी एपी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे। तो ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स थे उसमें उसके काउंट इनटू काउंट प्लस 1/2 टाइप्स का कुछ स्टोर कर रहा होगा, तो लास्ट में जब हम लोग इसकी सम करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आ रही होगी। तो बस हमें क्या करना है, अगर तुम्हें ये काउंट इनटू काउंट प्लस 1/2 वाली बात समझ में नहीं भी आ रही है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर अरिथमेटिक स्लाइस 26 से हमारे पास एक बन रही है, तो टोटल अरिथमेटिक स्लाइसेस कितनी होंगी, 22 तक एंड होने वाली जितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस होंगी, हर एक में मैं 26 तो लगा ही पाऊंगा, और एक और 26 किसके नाम का, इसके नाम का। देखो 22 तक एंड होने वाली, 22 पे एंड होने वाली जितनी थी 3 या 3 से बड़ी, उन सब के आगे तो मैं 26 लगा ही सकता हूँ, और एक और कौन सी, ये वाली। तो दिस इज द 1 प्लस डीपी एट i-1। ठीक है, एक बारी रिपीट कर देता हूँ कि अरिथमेटिक स्लाइसेस में हमारा लॉजिक क्या है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं ये कहता हूँ कि पूरी की पूरी एरे पे आइटरेट करो, i और i-1 का डिफरेंस और i-1 और i-2 का डिफरेंस अगर बराबर है, तो डीपी एट आई पे क्या स्टोर हो रहा होगा कि i-1 पे जितनी सारी अरिथमेटिक स्लाइसेस एंड हो रही हैं, i-1 पे जितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस एंड हो रही हैं, हर एक के आगे मैं अपना ith एलिमेंट तो लगा सकता हूँ, और एक और अरिथमेटिक स्लाइस कौन सी, जो इन तीनों के नाम की होगी। ठीक है, जैसे एक बार इसको रब कर लेते हैं और थोड़ा सा पीछे वाले केसेस में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 आ रही थी, यहाँ पे जैसे वैल्यू 2 आ रही है, ये 2 कैसे आ रही है कि 8 पे एंड होने वाली कितनी अरिथमेटिक स्लाइस थी, 4, 6, 8, तो वो तो उनके आगे तो मैं 10 लगा ही सकता था कि 4, 6, 8, 10 बन जाता। तो एक अरिथमेटिक स्लाइस 10 पे होने वाली तो वो है जो 8 पे एंड हो रही है, और एक और कौन सी, इन तीनों के नाम की। ठीक है, अगेन अगेन आगे देखते हैं। 22 के लिए जब मैं देख रहा हूं तो मैं कहता हूं 10, 14, 18, ये एक 18 पे एंड होने वाली अरिथमेटिक स्लाइस है, उसके जस्ट आगे तो मैं 22 लगा ही सकता हूं, तो एक डीपी एट i-1 पे 1 पड़ा है, और एक और कौन सी, इन तीनों के नाम की। ठीक है, सिमिलरली जब मैं लास्ट एलिमेंट पे आता हूँ, मैं अपनी लास्ट वाले एलिमेंट पे आता हूँ 26 पे, तो मैं अगेन दोबारा क्या देखूंगा कि 22 तक एंड होने वाली कौन कौन सी हैं, दिस इज 10, 14, 18, 22 एंड 14, 18, 22, दोनों के आगे मैं 26 लगा सकता था, तो ये दोनों तो एग्जैक्टली 26 के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी, और एक और कौन सी आ रही है, इन तीनों के नाम की। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1, की ये जो कंसेक्यूटिव वाले इन तीनों के नाम का एक, और जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा था उतनी, तो उन सब के आगे तो मैं 26 लगा के अपना काम चला ही सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप द लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू ऑल। सो इसका कोड बहुत आसान है, हम लोग बहुत आसानी से इसका पूरा सोल्यूशन कोड कर लेंगे। तो लेट्स जस्ट मेक अ डीपी एरे, सो इंट n is equals to a dot size, and let me just expand it. Okay, so now let us make just a dp array int star dp is equals to new int of size n, और इनिशियली सबको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, i is equals to 2 से स्टार्ट करेंगे, फॉर int i is equals to 2, i less than n, i plus plus, चेक कर लेंगे कि if arr at i minus arr at i minus 1 is double equals to arr at i minus 1 minus arr at i minus 2। अगर ये कंडीशन बराबर है, अगर ये कंडीशन कभी हो जाती है, सो दिस इज arr at i minus 2। अगर ऐसा हो जाता है तो dp at i is equals to 1 plus dp at i minus 1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उस पे एंड होने वाली कोई अरिथमेटिक स्लाइस नहीं बनेगी, तो dp at i पे क्या कर देंगे, 0 स्टोर कर देंगे। लास्ट में एक वेरिएबल ले लेते हैं int result is equals to 0, और पूरी की पूरी dp array पे आइटरेट कर लेंगे।
ठीक है, और रिजल्ट में ऐड कर देंगे जो भी डीपी के हर इंडेक्स पे पड़ा है। सो डीपी एट आई, लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। सो आई होप दिस वुड वर्क फाइन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, रन करके देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड ओके, सो वी हैव सम compilation issues. Okay, so this is a, let me make it as a, okay, so let us just run code. Okay, so this is working fine for the sample, and if I submit this, okay, so the solution has been submitted, right? So बहुत आसान है इसको सबमिट करना। इसकी एक ऑप्टिमाइजेशन तुम और क्या लगा सकते हो कि पूरी डीपी एरे क्या लेने की जरूरत है। एक बार इसके बारे में सोचना कि क्या पूरी की पूरी डीपी एरे लेने की जरूरत है, क्योंकि आई गेस बिना पूरी डीपी एरे लिए भी हमारा काम बन सकता है, क्योंकि सिर्फ एक डीपी वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। सो लेट जस्ट वी कैन जस्ट ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन। सो एक काम करते हैं कि डीपी एरे नहीं लेते, एक सिर्फ वेरिएबल ले लेते हैं इंट डीपी, और जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। हर बारी क्या करना है कि लास्ट डीपी पे जो भी पड़ा था उसमें 1 प्लस कर देना है। सो डीपी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डीपी, अगर ऐसा कभी हो रहा है। और एक रिजल्ट वेरिएबल ऊपर ही रख लेते हैं, इस रिजल्ट वेरिएबल को भी ऊपर ही रख लेते हैं, और हर बारी क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल टू डीपी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डीपी को जीरो कर देंगे, और आई गेस दिस वुड वर्क फाइन। इससे बस हमने थोड़ा स्पेस ऑप्टिमाइज कर लिया है, और कुछ नहीं है, कि जो काम पूरा का पूरा एरे लेके कर रहे थे हमने सिर्फ एक वेरिएबल में कर लिया। क्यों? क्योंकि ith इंडेक्स पे मुझे बस i माइनस 1th इंडेक्स का आंसर चाहिए, पूरी की पूरी एरे का तो आंसर नहीं चाहिए। जैसे फिबोनाची होती है, फिबोनाची में ith इंडेक्स पे i माइनस 1 और i माइनस 2th इंडेक्स का आंसर चाहिए, पूरी एरे का तो आंसर नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, एक वेरिएबल में अपना काम कर लिया। सो अगेन इफ आई रन द कोड एंड सो लेट मी जस्ट सबमिट इट। सो देखो इस बारी थोड़ा हमारा रन टाइम फास्ट हो गया, एंड 100% सी प्लस प्लस सोल्यूशंस में सबसे फास्ट हो गया, तो काफ़ी सही है। एंड आई होप द लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। तो एक बारी देख लेते हैं कौन सी दोनों प्रॉब्लम्स हमने देखी है। सो दिस इज अरिथमेटिक स्लाइसेस। क्या कह रही है प्रॉब्लम कि एक ऐसी सब एरे जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो और वो पूरी सब एरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हो, वो अरिथमेटिक स्लाइस होती है। तो बताना है एरे में कितनी अरिथमेटिक स्लाइसेस हैं। तो मैंने क्या सोल्यूशन प्रपोज करा कि सेकंड एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक जाओ, आई और आई माइनस 1 का डिफरेंस देखो, और आई माइनस 1 और आई माइनस 2 का डिफरेंस देखो। अगर ये चीज बराबर है तो ith इंडेक्स का आंसर पता है क्या होगा, वो सारे आंसर जो i माइनस 1th इंडेक्स के लिए थे उन सब में मैं ith एलिमेंट तो जोड़ देता, तो सीधा डीपी एट i माइनस 1 तो हो ही जाता, साथ साथ एक इन तीन के नाम का। तो यहाँ पे तो वो चीजें नहीं बन रही इस वाले में, बट यहाँ बनेंगी। तो एक इन तीनों के नाम का, तो दिस विल बी 1 प्लस डीपी एट i माइनस 1। ठीक है, सो आई होप the logic for this problem is clear to you all. कोई भी डाउट आ रहे हैं तो you can comment in the comment section and we can just chat and discuss what the problem is. And इससे पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी थी, कौन सी, जॉन स्नो वाली। उसमें क्या था कि एरे को बार बार सॉर्ट करके ऑल्टरनेट नंबर्स का जोर लेना है x के साथ और एरे में इंसर्ट करना है। उसमें मैंने क्या कहा था कि सॉर्ट करने के बाद भी जीरो सारे एक साथ हो जाएंगे, तो क्यों ना सबकी फ्रीक्वेंसी लेके उनमें से हाफ को अपडेट कर दो और हाफ को यहाँ पे एज इट इज रहने दो। सो अगर कोई भी डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क मी, एंड कमेंट सेक्शन में पूछो कि क्या दिक्कत आ रही है। एंड दोनों प्रॉब्लम्स का हमने कोड किया, दोनों बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, एंड इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, एंड कॉम्पिटेटिव में तो ऑब्वियसली हर चीज़ रेलेवेंट ही है। सो I hope you are liking the webinar series of this DP, and there is one more webinar scheduled, तो उसको भी हम लोग 2-3 दिन में पोस्ट कर देंगे, and let's see उसमें कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। But I hope you all like this webinar, and please give a thumbs up if you like the webinar। and कोई भी अगर अपडेट है, अगर तुम्हें लगता है कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे तुमने कहा कि कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम चाहिए, तो वी डिस्कस द कोड फोर्सेस प्रॉब्लम। सो अगर तुम्हारी कोई सजेशन है, तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड डू शेयर द वीडियो। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑफ कोडिंग ब्लॉग्स, right? So just subscribe the channel of coding vlogs and hit the bell icon such that you never miss a video from coding vlogs। so हम लोग काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू सीजन है, सो अगर किसी को प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने हैं, सो वी हैव ऑल्सो अपलोडेड प्रोजेक्ट वीडियोज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो तुम वो भी देख सकते हो। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड एंड algorithm and data structure related stuff also uploaded on our YouTube channel, तो देख सकते हैं। एंड कोई भी सजेशन हो सो प्लीज पिंग मी, एंड
डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वेबिनार एंड देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है. पिछली वीडियो का तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाली वीडियो का रिस्पॉन्स और भी बेटर आए. सो दिस पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव फीडबैक हमें भी मोटिवेट करता है कि हम लोग भी अच्छा कंटेंट, फ्री कंटेंट अपलोड करें. सो ठीक है, सो चलते हैं. एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व देयर. सो कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कोई भी अदर डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क मी, सो यू कैन पिंग मी. सो थैंक यू गाइज. सो keep watching the channel of Coding Blogs. Thank you guys. See you next time.